Okay, so okay, guys. So let's begin. Okay, so before I get into this today's class, let's just give you guys a quick recap of what we discussed yesterday. Okay, well, I'm not going to share that again. Okay, because that will take another 2 hours, which we are not going to do. Okay, so what we talked about yesterday was mainly about what are the market participants, various market participants, what are the asset classes. So we discussed there are asset classes like equities there, commodities there. Okay, there you have uh, real estate is there, bonds are there. Okay, so there are various asset classes, and we discuss why it is important to invest in equity. Why? Because the returns in equities are far better, so it's always advisable that you invest in equities rather than investing other asset class. But yes, at the same time, we also discuss the need to diversify your portfolio, why you should have other things also in your portfolio so as to minimize the risk in case of any downturn, the same like the one that we saw लास्ट ईयर. ठीक है, सो कल हमने ये डिस्कस किया था कितने टाइप के एसेट क्लासेस हैं. ठीक है, इक्विटी है, कमोडिटी है, रियल स्टेट एंड ऑल है, और किस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करना. तो दैट वाज वन थिंग जो हमने कल डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट we discuss about what are the various types of market participants. Market participants कौन कौन है. So we discuss के FIIs हैं, DIIs हैं, ठीक है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं लाइक PMS हाउसेज हैं, एंड वी हैव देन रिटेल ट्रेडर्स. फिर हमने ये डिस्कस किया था किसकी ज्यादा पावर होती है मार्केट में और क्यों होती है ज्यादा पावर. ओके, क्या FII DII की पावर सेम होती है? नहीं. क्यों नहीं? क्यों FII की पावर DII से ज्यादा होती है, जबकि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टर्म्स में अगर देखो तो पैसे दोनों के पास होते हैं. ओके, सो we discussed why FIIs had more power, and that was mainly because they have a concentrated view on the market. Okay, so that was one thing we discussed. Then we discussed about technical analysis. What is technical analysis? Use क्या है technical analysis का. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करती क्या है, हाउ टेक्निकल एनालिसिस यूजेस पास्ट के डेटा को आगे बताने के लिए कि हाँ पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में ये हो सकता है. सो दैट इज वन थिंग विच वी डिस्कस. फिर हमने कैंडल स्टिक्स चार्ट्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो होते हैं. ठीक है, वो देखा था. एंड देन वी रियलाइज, जो हमने एक प्रैक्टिकल किया था, वी रियलाइज कि एक्चुअली कैंडल स्टिक्स थेरी जो है सिर्फ कैंडल देख के वी कैनॉट डिसाइड. ठीक है, सिर्फ अगर ग्रीन कैंडल है, मार्बूजो बना, इट डजंट मीन मार्केट विल गो अप. ओके, सो वी डिस्कस व्हाई we cannot make a decision just by seeing a candle. सिर्फ एक कैंडल देख के कि हाँ भाई ग्रीन कैंडल बना है, आप नहीं डिसाइड कर सकते मार्केट ऊपर जाएगा. आपको उस कैंडल को कंटेक्स्ट में देखना होता है कि वो प्राइस में बनी कहाँ पे, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. देन ओनली यू कैन मेक अ करेक्ट डिसीजन. सो वो हमने एक प्रैक्टिकल किया था. ठीक है, एंड वी अंडरस्टूड दैट या कैंडल्स alone they do not give any kind of signal. You also have to see where they are forming. Okay, and we'll continue on that today also. Okay, we'll continue on that mainly from the point of view of chart patterns. लोग जैसे मार्केट में बोलते रहते हैं ना, सर ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अभी बाई करना चाहिए, सर डबल टॉप है, डबल बॉटम है, और थिंग्स लाइक दैट. सो हम ये डिस्कस करेंगे ये आज, चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल, एंड विल डिस्कस दैट कि कब वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कब उनको नहीं ध्यान देना चाहिए. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस. सो एवरीवन अंडरस्टूड अंटिल नाउ? ठीक है, सो दिस वाज व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे. अब चलो आज का स्टार्ट करते हैं. ओके, so welcome guys everyone, this is the intermediate course. Let's first go through the topics that we are going to discuss today. What are the things that we'll be discussing today? Okay, so we'll be having a short introduction. We have already had it. Okay, we'll not waste much time on that. Okay, what topics will we cover? Technical analysis के major components will cover. So आज हम eliott wave के बारे में बात करेंगे, डाउ थ्योरी क्या होती है वो हम बात करेंगे. ठीक है, so आज ये सब काम करेंगे. ठीक है, डाउ जोन्स थ्योरी, फिर eliott wave लाइक आई सेड, प्लस फ्यूचर ऑप्शंस में ऑप्शंस की प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ऑप्शंस कैसे प्राइस होते हैं. तो कल हमने फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है वो समझ लिया. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन. इन बिगिनर वी कवर्ड what is a future, what is an option, how, what is a call option, what is a put option, how they are made. So I gave few examples to make people understand. So that was it yesterday. Now today we'll build on that and we'll talk about how options are priced. Okay, what are different kind of option Greeks and what are different option strategies, कि कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती हैं, वो बात करेंगे. कब वो एप्लीकेबल होती है वो भी बात करेंगे. प्लस क्या जरूरी है कि हम ऑप्शन ग्रीक्स लाइक कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करें मार्केट में, इज इट नेसेसरी? ओके, सो वो हम बात करें. लाइक आई से यू गाइस ऑलवेज कि इसका वीगा कम है, थीटा कम है, सो वो पता है
वो महसूस करने वाली चीज है. वी डोंट नीड टू एक्चुअली टेक ए कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट, okay, and during market ask भाई इसका कितना अल्फा है कितना बीटा. We don't need to do that, okay. We need to just feel it, okay. And how will we able to do that, that will explain today. ठीक है. Everything clear, guys? Any issues? No. Okay, so and guys, we will I have keep one it a bit question. interactive. Okay, though I understand people have said that it becomes a bit difficult, but I like personally things when they are interactive and people can ask me questions. Okay, so keep questions flowing, put it on group पे डालो, and जो हमारे दो volunteers हैं वो आप लोग खुद को unmute करो and ask me those questions. Thanks, baby. Bye. Thank you. Thank you. So this will be our area of learning today. Okay, guys. So if there is any questions, feel free to put it on group. Okay, and these two people will ask. Chalo. So let's move on. So a bit of introduction about me. I'm from Delhi, work in MNC in Bangalore, passed out from IIT Dhanbad. These are the YouTube channels and the Telegram channel. I have almost 6+ years experience in market, and my core strength I consider as price action and eliott waves. Okay, so price action and eliott waves are two things which I feel like, okay, they are my forte. Then this is one slide which I even discussed yesterday. I showed it yesterday. Okay, what is this? What is technical analysis? Okay, what is the definition? Okay, so like I mentioned, technical analysis. What does it do? So people can read it. Okay, right? Technical analysis, study of historical market data, including price and volume. Is there anything else which is mentioned here? नहीं. ठीक है. So technical analysis सिर्फ दो चीजों पे फोकस करता है, price, volume. मार्केट डेटा में प्राइस और वॉल्यूम, प्लस वो क्या कंसिडर करता है और क्या क्या चीजें दिमाग में रखता है मेकिंग डिसीजन. मार्केट साइकोलॉजी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. नाउ व्हाट हैपेंस नाउ, like I said na कि आप जब भी candlestick pattern देखो, whenever you guys see a candlestick pattern, if it is green doesn't mean you have to buy, because what technical analysis is saying, it also keeps in mind the market psychology, behavioral economics. You also have to, so when you are seeing a candlesticks, it is only giving you two things, price plus volume. Okay, actually only price. A candlestick only gives you price, and volume you can get on the chart, right? But what it misses out is the market psychology, behavioral economics, and quantitative analysis part. So that's why I always say, sirf just by watching a candlestick, you cannot make a decision. You also have to see the context, okay, of the market at that particular time. What is happening? Okay. Then what is the use of technical analysis to find entry, exit, and instruments? So that is the uh, use of it. प्लीज स्पीक हिंदी. ओके ओके गाइस. तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, वो डिस्कस की. टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप पुराना डेटा, पहले प्राइस कैसे बिहेव किया, पहले कैसे वॉल्यूम क्या था, वो देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा. ओके, सो ये होता है काम टेक्निकल एनालिसिस का. ठीक है, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस यूज होती है. और उसका मेन यूज क्या होता है हमारा, कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है. सो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलती है. ओके, ठीक है गाइस. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ दीज आर द वेरियस थिंग्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, आरएसआई, एलियट वेव थ्योरी एंड ऑल. ये भी चार्ट मैंने कल दिखाया था. ठीक है, उसमें से कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. हमने लाइन चार्ट क्या होता है वो डिस्कस किया था, लाइन चार्ट का क्या यूज होता है, कैंडलस्टिक्स का क्या यूज होता है, कैंडलस्टिक चार्ट डिस्कस किया था. ठीक है, प्लस हमने और मूविंग एवरेज क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, दैट वी डिस्कस यस्टरडे. ठीक है, आरएसआई एंड ऑल. सो ये छोटी मोटी चीजें कल हमने डिस्कस कर ली. आज विल फोकस ऑन दीज थिंग्स, इलियट वेव थ्योरी. आज विल फोकस ऑन डाउ जोन्स थ्योरी. सीपीआर विल डिस्कस इन एडवांस्ड. ओके, then candlestick chart we have already discussed. We'll in short we'll touch upon Heikenhachi also. So what is Heikenhachi? Okay, so that will be the content for today. गाइज, हर चीज हिंदी में मैं नहीं बोल सकता, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो वो बताना, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो वो बताना. ठीक है, एनीवे चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. ओके, सो ये जो छह हैं, दीज 6 आर द मेजर कंपोनेंट्स
ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं हमें ये 6 चीजें दिमाग में रखनी है। ओके, सो वी हैव टू कीप दीस 6 थिंग्स इन माइंड व्हेन वी आर डूइंग टेक्निकल। एक चीज क्या है, पहले तो हमें ट्रेंड देखना है। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके हम ट्रेंड पता लगाते हैं। ओके, वी आइडेंटिफाई ट्रेंड कि ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ओके, या साइडवेज है। फिर टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स इंक्लूडेड होते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स है, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर का, हम ये डिस्कस करेंगे ये सारे आज, ठीक है। क्यों अलग अलग टाइप के जो चार्ट पैटर्न्स है वी डिस्कस है। सो दीज आर द पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। फिर वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर्स। ओके, मेनली इनका यूज क्या होता है वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर्स का, ट्रेंड की स्ट्रेंथ डिटरमिन करने को, क्या ट्रेंड स्ट्रांग है, ट्रेंड स्लो है, वो काम होता है आपका वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर से। ओके, सो वी यूज वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ। फिर ऑसिलेटर्स होते हैं। ऑसिलेटर लाइक नेम से, ऑसिलेटर मतलब क्या, कोई चीज जो एक मीन के, मीन आई गेस वो मीन सबको पता होगा, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू मीन। ओके, जो चीजें अपने एक मीन के राइट लेफ्ट ऊपर नीचे होती रहती है वो ऑसिलेटर होती है। लाइक एंड फॉर एग्जांपल RSI, बिटवीन टू पर्टिकुलर रेंजेस जो चीज मूव करती है उसे ऑसिलेटर बोलते हैं। लाइक RSI, स्टोकेस्टिक, दीज आर ऑल फॉर क्या होता है 0 to 100 के बीच में। मनी फ्लो इंडेक्स भी होता है, मनी फ्लो इंडेक्स इज अनइम्पॉर्टेंट, डोंट इवन आस्क, ठीक है। फिर होता है आपका मूविंग एवरेजेस, ठीक है। मूविंग एवरेज कल हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए विल नॉट टच अपॉन इट अगेन। मूविंग एवरेज सिंपली क्या होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है, लाइक वी डिस्कस यस्टरडे, सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है मूविंग एवरेज का, एंड दैट इज कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं है, ठीक है। मूविंग एवरेज के बेसिस पे और ट्रेड में एंट्री नहीं होती है कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो बाय, ये इसके नीचे चला गया सेल, ये सब चूतियापा है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है मत मानो। ओके, मूविंग एवरेज का सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल होता है मार्केट में, वो है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड है कि नहीं है। अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो अप ट्रेंड, फॉलिंग है तो डाउन ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल है साइडवेज ट्रेंड, दैट इज द ओनली यूज ऑफ ए मूविंग एवरेज। देन वी डिस्कस yesterday what we discussed else, why 5 minute 5 period moving average is more important, why 20 period is moving average is more important. So what is the difference between 5, 20, 50, 150? Okay, what is the major difference? So that also we discussed yesterday. Okay, that's the only thing we discussed, ठीक है। RSI does work as a strength indicator, Ravi. Anyway, so Pinky and Aryan, guys, people are asking questions here. Please make note of it, okay? Because I'm noticing it. You guys should notice and make a Sir, we note are of it. just waiting for you to complete so that I can Okay. ask questions. No, no, just go ahead, मतलब unmute आपको and ask. interrupt There's करके no question issues. पूछना is not good now. That's why I was waiting. No issues, no issues, Arihant. You can ask me. Okay, I like things to Okay, be no problem. interactive. Okay. Then we talk about support and resistance. ठीक है, क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, डायनेमिक और फिक्स्ड। अब एक और चीज गाइस इंपॉर्टेंट है, आज की जो क्लास है, देखो कल बेसिक क्लास जो थी, बिगिनर्स क्लास थी, इन दैट वी डिस्कस मेनी थिंग्स ऑन द पावर पॉइंट। Today's class we will focus a lot on charts. We'll open charts on TradingView. We'll look at those charts to understand a lot of things. And advanced में तो mostly I can just tell you there will be a very little presentation and mostly it will be chart. Okay, because we have to start moving towards the practical from the theoretical knowledge. Okay, so support and resistance also we discuss, dynamic and fixed क्या होते हैं दो तरीके के, ठीक है, those things also we discuss. Okay guys, so before I move ahead, please ask me any questions until now that you have. Sir, does EMA crossover tells us the trend? Please आशीष let का Arihant question. ask you question on your behalf. Okay, let him ask. Yes, sir. Aryan here. आशीष का question है sir. Does EMA crossover tell us the trend? So like I mentioned, Ashish, na abhi, moving average, EMA is also a moving average. Okay, the only difference between an EMA and SMA, we also yesterday learned SMA EMA क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हमने कैलकुलेटर पे किया था। The only difference between SMA and EMA is the way of calculation. Only the formula is different. जहाँ पे SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपली एवरेज दे लेता है क्लोजिंग प्राइसेस का। EMA क्या होता है कि वो एक ज्यादा वेटेज देता है करंट प्राइस को और नियर प्राइस को, एंड धीरे धीरे व्हेन यू मूव अहेड वो वेटेज कम करता जाता है, ठीक है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन EMA, SMA और इवन WMA। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मूविंग एवरेज जो हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है, दैट इज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। यू डू नॉट मेक एनी एंट्री बेस्ड ऑन दोज, वो जो क्रॉस ओवर है नॉट,
बच्चों वाली चीजें हैं यार. डू यू रियली थिंक कि राकेश झुनझुनवाला या से कोई म्यूचुअल फंड हाउस है वो जाकर देखता होगा अरे हाँ 2050 क्रॉस ओवर हो गया चलो बाई कर लेते हैं. Guys, do you guys really think that does it make sense? No. वैसा कभी नहीं होता है. नो वन डज गिव शिट अबाउट ऑल दिस इंडिकेटर्स क्रॉस ओवर. इट्स जस्ट फ्यू थिंग्स यू शुड नो. जैसे होता है ना पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सो नाउ यू आर ग्रोइंग अप, फर्स्ट यू लर्न ऑल दिस, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ उनका कोई यूज नहीं हो. नाउ इग्नोर दैट, मूव ऑन टू थिंग्स व्हिच एक्चुअली वर्क. इट्स गुड टू नो ऑल दोस थिंग्स बट दे डोंट वर्क इन मार्केट. So Pinky here. The next question is from Anand. Sir, how to analyze long term or short term from technical analysis? How to analyze long term, short term? I do not understand. The stocks, yeah, whether Anand, you the only. सर मैं बात करूं, आनंद बोल रहा हूँ. बोलो. टेक्निकल एनालिसिस दोनों के लिए अलग अलग तरीके से होगा ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो जानना था. First of all, देखो, there is a difference between short term and long term. Short term is mostly about trading. Long term is about investing. Okay. Correct. When you trade, what is more important for you is the entry and exit. Okay. And that's why you use only technical analysis and current market. You observe what is happening in the market currently. जब आप इन्वेस्ट करते हो, so आपको एंट्री एग्जिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. What you have to focus on when you are investing is the health of the company, its financials, okay, its management, the market in which it is operating. Okay, so in there you don't have to focus on technical analysis. Now, if you are asking questions regarding swing trading, then yeah, that's another question. So for that we discussed yesterday already why we should use 5 minutes for intraday, why we should use hourly for swing trading. So वो थोड़ी बहुत चीजें हमने कल देखी थी और आज भी आप क्वेश्चन पूछो, we will answer, but mainly we will cover all this in our advanced. Okay, so we don't need to worry about it. Okay, we'll cover practical things, we'll cover in advance. Okay, right now we are talking more about the theory part and how the theory should be interpreted, and then in advance we'll talk about different setups and how to enter, exit and all those things there. Okay, थैंक यू. सर और एक क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स and fundamentally necessary, are these institutional traps necessary for intraday? Okay, so the only way you can identify an institutional trap, see, you don't actually identify institutional trap. What you actually see on chart, when you see a high volume, you know someone big is there. Now that someone big, say for example if it is a small stock, okay, say for example it is small stock, something like say idea right now, okay, or small stock, all the small caps, any one of the small caps you pick. Like recently हम बात कर रहे थे अम्बालाल, ठीक है. So जब small caps होते हैं ना, तो the number of shares that are floated in market is very less. Okay, first of all. Secondly क्या होता है कि उनकी market cap बहुत छोटी होती है, तो even one HNI with a good amount of money can move that. So if you see a huge volume in a small cap type of stock, then you can assume it not to be an institution. You can actually assume it to be someone, a good HNI or a PMS or a house or something like that. But when you see HDFC Bank moving, okay, and you see high volume in HDFC Bank, okay, and then you should understand that it is coming from an institutional person, because HDFC Bank, if not a HNI cannot move that, a PMS cannot move that. And when an institutional investor comes and invests, or a FII or a DIA, when they invest, they do not invest in one single stock, they invest in sector. Okay, so when you see whole banking sector is moving, it will never be only HDFC moving, it will be like HDFC, ICICI, SBI, everything, because institutional investing is not focused on a stock, they are more focused on sector. Unless and until you have a situation like addition of some stock to Nifty or deletion of some stock, उसके बिना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. दे डू नॉट ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर वन सिंगल स्टॉक. अपार्ट फ्रॉम देखो रिलायंस वाला जो केस था, दैट वाज आल्सो लाइक आफ्टर 8 or 9 years रिलायंस वाज देयर एंड इट वाज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू स्पॉट. न्यूज़ आती रही, इट वाज वेरी इजी. ठीक है, चलो गाइस, लेट्स मूव अहेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेटर. एंड गाइस, ट्राई टू स्टिक टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस. अभी अब देखो इंस्टीट्यूशनल ये वो सब तो अभी डिस्कस ही नहीं किया ना. ठीक है, सो try to stick to questions which we are talking here. Okay, what is not here,
वेट फॉर इट टू कम. अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो समझो एडवांस में आएगा. ठीक है, Bro, या I have लास्ट one में पूछना. question, detailed question. So No, no, you are let Arihant ask. There is no point. You type the question, let Arihant ask. सर यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है RSI के रिलेटेड. कैन वी पिक ट्रेड्स बेस्ड ऑन RSI? नो, यू डू नॉट. इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ यार, ये बताओ पहले. इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है ना, इट्स जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. ओके, जस्ट एक्ट्स एज ए सपोर्टिंग एक्टर, इट्स नॉट एन एक्टर. आप मूवी देखने जाते हो तो आप ये देखते हो ना कि मूवी में एक्टर कौन है. आप ये थोड़ी ना देखते हो कि हाँ सपोर्टिंग रोल में कौन है, उसको देख के आप जाते हो मूवी देखने. राइट, यू डोंट डू दैट. मूवी कोई आई है, उसमें असरानी था, पुराने जमाने में मूवी था, असरानी को देख के लोग नहीं जाते थे ना. लोग देखते थे हाँ, अमिताभ, तो लोग अमिताभ को देख के मूवी देखने जाते थे. बस असरानी भी है तो लोग सोचे, चलो ठीक है असरानी पे फनी भी होगा थोड़ा. ठीक है, बट डिसीजन मेकिंग ऑफ वॉचिंग दैट मूवी डिपेंड्स ऑन अमिताभ, नॉट ऑन असरानी. Right, so similarly indicators are just a supporting role they play. Okay, the decision of buying or selling depends on the price action and where the price is at that particular moment when you are analyzing. Okay, what is the trend, strength, momentum, all those things. Now what indicators are, indicators की basis पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ एंट्री करनी चाहिए, और आप जब इंडिकेटर्स देखते हो वो भी बोलते हैं कि हाँ एंट्री करना चाहिए. तो जब वो सपोर्ट करते हैं आपकी थ्योरी को, देन यू मेक द एंट्री. बट जस्ट बेस्ड ऑन एन इंडिकेटर यू कैन नॉट टेक द ट्रेड. ठीक है गाइस. सर यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं, का है नेक्स्ट, डायनामिक अब और बाद में फिक्स्ड. सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल विल इंक्लूड. ओके, सब कुछ अभी नहीं. ये ओके पूरा सर. चार्ट है ना, तो ये पूरा ये पीपीटी डिस्कस होगी ना एक एक पॉइंट. ओके, सो लेट्स मूव. ठीक है गाइस. नेक्स्ट, तो चलो बात करते हैं जो पहली चीज थी मार्केट ट्रेंड की. ठीक है, मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है. ओके, अनलेस एंड अनटिल यू नो द ट्रेंड, trend only determines the type of trade you are taking. Trend only determines what is the type of instrument you are going to use. Are you going to use a future? Are you going to use an option? Are you going to buy in future? Are you going to sell a option? All of these things depend on trend. So सबसे important, in fact अगर आप पीछे जो हमने बात किया था टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी टूल हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो एलियट पे, वो डाउ जोन्स थ्योरी हो, एनी थ्योरी यू पिक अप, anything that you talk about in technical, everything focuses on identifying just one thing, and that is trend. ठीक है, चाहे आप डाउ जोन्स थ्योरी पढ़ लो, it also talks about understanding the trend of market. Elliott wave theory also focuses on identifying trend of the market. Indicators, RSI, if it is high, showing market is going moving up. Okay, strong trend upwards. Or if it is very low, strong trend downward. If it is in middle, it is sideways. So indicators ho ya market ki theories ho, everything focuses on identifying only one thing, that is trend. What is trend of the market? Okay, let's move next. Now what is the characteristic of trend? Okay, so trend के जो characteristics हैं वो मैंने 4 चीजों में डिवाइड किए. These are the 4 most important elements of any trend. Okay, पहली चीज क्या होती है? प्राइस मूव्स इन वन डायरेक्शन. अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट एक डायरेक्शन में होगा, या अगर अप ट्रेंड होगा ऊपर, डाउन ट्रेंड होगा नीचे. दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा क्या होता है ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक, कि वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे. राइट, एक मार्केट जो आर्ली में अप ट्रेंड पे हो सकता है कि वो कंसोलिडेट कर रहा हो वीकली चार्ट पे. ओके, सो you do not say just that oh market is in uptrend. No, that is a wrong statement. You have to understand that market is in uptrend in an hourly chart or a short term, or a market is in uptrend in a long term. That defines market cycles, जो कि Elliott wave में भी आता है. ठीक है, more detail में we'll talk about that in advance, but basic introduction of Elliott we'll have today. ठीक है, then trend क्यों आता है? Mostly caused by smart money or institutional investors, because only they have the power to move the market. So if you see a trending move, mostly it will be caused by institutional investor. Now obviously in intraday trading, sometimes obviously the trend is not most of the time the trend is not cause of smart investor, but that's mainly because that is a small time trend. Okay, that is an intraday trend. But whenever you see a swing trading opportunity or a long-term trend in developing in a stock or an index, that is mainly only
cause of the institutional investor, which is also called smart money. Okay. Next, what is important with trend is it most of the time coincides with important events. Okay, market में कोई trend हो, मतलब market सिर्फ ऊपर जाता रहे या सिर्फ नीचे जाता रहे, वो most of the time कब होता है? When you have some government announcement, कोई result आ गया, ठीक है, या some major breakout हो किसी support या resistance का. So these are few conditions जिसमें आपका एक trending market आपको दिखता है. Okay, apart from that, there is no other situation in which you see a trending market. Okay, chalo. Any questions on this slide? Only on this slide. I have a question. Go ahead. Just before the results and news, what we have seen is that the price of a particular stock is raised by, let's say, these big players, and immediately after the news, as we saw in PNB also a couple of days back, Yeah. the price goes down. So is it manipulation before the result by No, these it's big not players? manipulation. I don't call. See, people call manipulation when they don't understand. It's not manipulation. It's just very simple. It's as simple as buying low and selling high. If I am a person who have bought it and taken the price high, the result has come, the event has happened. I already know, okay, the result is good. I have made money. Why should I be staying with the market, with the stock? I'll just exit. Okay. Yeah, but the buying happens a week before. I mean, starts a week before Exactly, result. So is because it expectation based? it's not just expectation based. See, when me and you retail traders, we are trading, we are looking at various technical factors like price and volume to analyze charts. Similarly, people who are in the management of the company, they are looking at the sales figure. Okay, they are looking at the their demand. They are looking at how much are this they would have sold, what is the market condition. So based on that, they also analyze ki, "Haan, theek hai, the result should be good," and they start pumping in money. Okay, so and once the result comes out to be good, they are like, okay, fine, now it is done. See, in market there is a saying, okay, sell the news, buy the rumor. Okay, because when there is a rumor, okay, लोगों को लगता है कि rumor है because that is just like an calculated guess. It's not a rumor. Most of the time when you see a rumor in the market, that's mostly calculated guess. Now once that event has happened, okay, everyone knows what is there, so there's no surprise, and market likes to surprise. You cannot make money when everything is going normal. You can make only money with surprises and traps and stuff like that. That's why most important part of technical analysis is to understand कि कहाँ पे traps हैं. अगर हमने traps identify करना सीख लिया, we will be making money, use money. ट्रैप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? करेंगे ना यार, एडवांस में यही तो करेंगे. एडवांस में पीपीटी ज्यादा नहीं करेंगे. Trend is a lagging parameter. We can see trends after a event occurred. So मतलब वो पूछना चाहता है कि event होने के बाद trend समझ में आता है, तो उस whether this will be helpful. मतलब ये trends वगैरह का. Yeah, I got your question. So see, trend, yes, trend is a lagging parameter. Only after a market is in trending move, you understand that yeah, it is trending. But what is the use of trend? See, use of trend is not to any aspect of technical analysis. कभी आप दिमाग में एक चीज एकदम हमेशा रख लो, याद रख लो, हमारा मोटिव कभी ये नहीं है कि सबसे लो पे खरीदना है और सबसे हाई पे बेचना है. The motive is never to buy at the lowest of the low and sell at the highest of the high. The motive is always what? To enter at a particular price after establishing that the market is in a particular trend, and then get out before that trend ends. So एक बार जैसे ट्रेंड हाँ लैगिंग है लेकिन पता चल गया ट्रेंडिंग मूव है, सो हम एंटर करेंगे और इससे पहले कि ट्रेंड खत्म हो हम निकल जाएंगे. इसीलिए हम वी पुट स्टॉप लॉस एंड इसीलिए वी पुट द टारगेट. ओके, यू शुड नेवर ट्राई टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स. वो कभी काम नहीं करता है. टॉप एंड बॉटम यू कैन ओनली कैच इन अ sideways market, because in sideways market you will know कि okay, the market is range bound, it is in this particular range, so हमेशा टॉप पे सेल किया, बॉटम पे किया, लेकिन उसमें भी आपको स्टॉप लॉस रखना है, cause अगर ब्रेकआउट हो गया तो. Okay, so that is the need of identifying trend, because the trend may continue, and उसके लिए फिर आप indicators use करते हो, you see कि how strong is the trend. सर बट जो ट्रेंड होता है वो वीकली चार्ट्स पे अलग होता है और आर्ली पे अलग होता है, मिनट्स पे अलग होता है, तो कैसे डिफाइन हम फाइंड आउट करें कि ये
डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? So that's why you have to decide now what is the type of trade you're doing. If you are say taking a swing trade, the particular underlying that particular traded instrument should be in a daily or a weekly chart. It should be a trending. Then only you can take a swing trade, right? Well, अगर आप intraday कर रहे हो, then you just need to see the trend in intraday. Okay, and then you use say 5-minute candle. When you see a swing trade करना है तो आपको hourly या daily chart देखना पड़ता है, तो see कि हाँ लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेंड है कि नहीं, and then you take the trade. Okay, so all of this depends on your motive कि तुम्हें किस टाइप का ट्रेड लेना है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, then you look at मंथली और वीकली चार्ट. से फॉर एग्जांपल लाइक गोल्ड ने दिया 2019 में रिवर्सल दिया था लॉन्ग टर्म, एंड देखो 2020-21 में कितना है, ऑलरेडी मोर देन 27%, 30% अप. ओके, चलो गाइस लेट्स मूव ऑन. ओके सर कोई तो वेटिंग रूम में रुका है, अभिषेक कुमार बोल के, तो उसको सिर्फ आई हैव ऑलरेडी एडेड हियर. थैंक यू. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सबसे पहला क्या है नॉन ट्रेंडिंग में, सेम एज अ trending market, that also depends on a time frame. Okay, if you see a 5-minute candlestick pattern, you might see a uptrend or a downtrend, but that uptrend might be a part of a sideways movement in a daily chart. Okay, so again you have to see the context, you have to see the time frame, and then only you can decide. Okay, so you have to be very clear when you are trading. Are you trading intraday, are you taking a swing trade, and depending on if you are, आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है या आपको स्विंग ट्रेड लेना है, उस बेसिस पे आप देखते हो कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, एंड देन यू लुक एट द ट्रेंड. फिर आप देखते हो ट्रेंड कौन सा है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए. ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ज्यादा इंटरेस्टेड हो. ठीक है, सो आप 5-minute, 10-minute, 15-minute, 3-minute, 1-minute का चार्ट देखोगे. ठीक है, आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आप थोड़े लॉन्ग टर्म के ट्रेंड में इंटरेस्टेड हो, तो उस समय आप आर्ली हाफ एन आवर 2 आवर्स के चार्ट देखोगे. आप थोड़ा शॉर्ट टर्म बाइंग कर रहे हो, लाइक हम 2-3 महीने के लिए, लाइक यू वांट टू कैरी द फ्यूचर्स फॉर 2-3 नेक्स्ट 2-3 months, लाइक आई डिड इन लास्ट ईयर इन टाटा मोटर्स. ओके, in that case I actually looked at the weekly chart. Okay, so depends आप कैसे देख रहे हो, डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम. अगेन लाइक पहले हमने डिस्कस किया था, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है. दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट का, कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते, एंड यही रीजन है कि ये मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है. क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होते हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, तो मी एंड यू पीपल लाइक अस रिटेल ट्रेडर्स, वी डू नॉट हैव दैट मच पावर कि हम मार्केट को एक डायरेक्शन में भगा के ले जाएं. ठीक है, सो हमेशा नॉन ट्रेंडिंग मार्केट तभी होता है जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग नहीं होती. अब इसका देखो एक इम्पोर्टेंट इससे आपको ऑब्जर्वेशन मिला. क्या मिला कि अगर एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप हमेशा वेट कर रहे होगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए. ठीक है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप फॉल्स ब्रेकआउट्स फॉल्स ब्रेकडाउन्स भी हो सकते हैं. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे वॉल्यूम कितना है. जब भी ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम कम है तो आप समझ लो कि वो फालतू है, वो फेक ज्यादा है, वो दैट इज नॉट रियल, बिकॉज स्टिल इट शो देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग कमिंग. ओके, सो हमेशा नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में यू विल सी अ लैक और एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पीपल. ओके, फिर क्या होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट का, प्राइस हर डायरेक्शन में चलती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ होता रहता है. ठीक है, सो इसीलिए नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लियरली पता हो कि टॉप क्या है, बॉटम क्या है. बीच में इफ यू बाय और सेल, इट इज वेरी हाई चांस, बहुत ज्यादा है कि आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि प्राइस इज मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, देयर इज एक्चुअली नो पर्टिकुलर कोहेजन, कोई एक डायरेक्शन नहीं है. दैट इज बिकॉज हम रिटेल ट्रेडर्स इतने ज्यादा हैं, वही ट्रेड कर रहे हैं नॉन ट्रेंडिंग में. प्राइस जो भी दिख रहे हो नॉन ट्रेंडिंग में क्यों है, हमारे जैसे आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स की वजह से. और हम सारे एक जैसा तो सोचते नहीं है. ठीक है, तो कोई गिरा रहा है कोई बढ़ा रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर नीचे होता है. ठीक है, ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन. ठीक है, अब क्या है, चार्ट पैटर्न और थ्योरीज की बात करते हैं. ठीक है, मेनली जो हम आज क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या चीजें कवर करेंगे, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. हम डाउ जोन्स थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम. ठीक है, ये सारी
theories हम आज discuss करेंगे. Okay, anything that guys you think here is missing? So everyone is asking about false breakout. How to identify it's a false breakout? We'll discuss all that. Don't worry. Okay, So Fibonacci is missing, I guess. Fibonacci we'll discuss with eliott wave. It's not missing. It's part of eliott wave, so I have not put it अलग से. ठीक है. eliott wave में हम करेंगे वो. Ashutosh ji, you talked about the volume to figure out whether it is institutional buying or not. So when we are trading in indices, can we look at the futures and can we see a surge of the volume and say that that is an indication of institutional activity? See, when you are trading in futures now, it's all. I always prefer looking at stock volume, unless the index is a different game, because obviously in Bank Nifty index I cannot see volume. Okay, so there I have to see futures volume. But when it is stock, it is better to look at the stock volume rather than the futures volume, because futures में क्या होता है कि you have lot sizes. Okay, so generally the volume is higher in futures, and with something which is already higher, a change of 2%, 3% also on a higher base would be looking much higher. So when in talking about stocks, I prefer looking at stock volume rather than future volume. But in index, since I have no option, I look at obviously the futures volume. Sir, if institutionals are pulling out the money from, can we invest for long term? Will it be helpful? You just see, in investing long term, I said it's based on fundamentals of the company. Okay, it doesn't matter what institutionals are doing. If you done your analysis and you think your analysis is good, yeah, you can go ahead and invest. Okay, institution might have access to all the markets in the world. They might be investing somewhere else. That's why it's just like, like I can go and invest in HDFC Bank, also ICICI. I choose to buy HDFC. Okay, now if someone who can only invest in HDFC Bank and not on ICICI, still he can go ahead and buy in HDFC, because HDFC is also good. Okay, so if your analysis, and that depends on fundamental, it doesn't depend on institutional pulling out or not. Institutional investing आपको ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए. Okay, to see swing trading opportunities and all. That's it. For long term, doesn't make much of a difference, because anyway there are a lot of DIIs who cover it all. Okay, so you don't have to worry about it. Thank you, sir. Okay, guys, so let's discuss now in bits and pieces about everything. Okay, so like for example, what is Dow Jones theory? Let's discuss. Okay, anyone any idea what Dow Jones theory says? One by one. Dow Jones, I think future का मार्केट या एवलॉट का मार्केट है. Dow Jones theory states that market is already discounted. Like market को पहले से हर चीज पता रहती. Market discounts itself before, I guess. Okay, yeah, that's one part of the Dow. There are 6 components mainly of Dow Jones theory. That's one part you said. Anyone else? It tells about the trend of the stock or market at the moment. Yes, that's the second part. Anyone else? When any stock or instrument making higher highs and higher lows, then it shows the Dow theory shows that trend is up, or lower lows are lower highs and lower lows. Then it's in downtrend. Okay. Okay, guys. So I think you all have a little bit idea. Okay, so see, Dow Jones theory, like people said, okay, it's a theory. It was built long back, I think somewhere in 1920, 1930, I guess. It was made by Charles Dow and all. Okay, on whose name later this Dow Jones index was named after him. Okay, so उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोला? Market discounts everything. मतलब क्या हुआ कि like we were discussing ना अभी थोड़ी देर पहले कि sir there is a manipulation, sir there is this, sir result is bad, the result is good, sir there is corona. ठीक है? You don't have to worry about all this. All you have to see is the price. That's what Dow Jones meant by saying that market discounts everything. What he meant कि whatever price you are seeing in the market, okay, that price
is the result of all the activities that are happening, what is the environment the market is on. So only thing that you need to see the behavior of price. That's all he said when he said market discounts everything. Second thing what he said कि market जो है ना वो तीन तरीके के प्राइमरी ट्रेंड में रहता है. ठीक है, he said that the market remains in three primary trends. ठीक है, एक आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जो कि मोर देन ए ईयर तक लास्ट कर सकता है, सच उसको बुल और बियर मार्केट बोलते हैं. और ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है उसके बीच में ना स्मॉल सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रेंड्स होते हैं. सेकेंडरी ट्रेंड हो गया आपका जो सेल विच कैन लास्ट समवेयर फ्रॉम 3 weeks to 5 weeks, एंड देन देयर आर टर्शियरी ट्रेंड्स विच कैन लास्ट फॉर इवन स्मॉलर ड्यूरेशन लाइक 1 to 2 weeks. Okay, so these are the three main type of trends that are present in market. That's what Dow said. Okay, what else he said कि जो ट्रेंड्स होते हैं उनके भी फेसेस होते हैं. जो प्राइमरी ट्रेंड होते हैं डाउ जोन्स ने बोला कि भाई उसके 3 फेसेस होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले बियर मार्केट होता है, मतलब सब सारे लोग परेशान है जो हमने मार्च में देखा था. ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है जो अप्रैल में हुआ लास्ट ईयर. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि हाँ जो बियर सेंटिमेंट था वो धीरे धीरे कम होता गया, लाइक हाउ मच विल यू सेल यार. ओके, so now there is a distribution phase and then people start buying and then there is now again bull phase. Okay, so these are the 3 trends he said. Okay, he forgot about the accumulation. Okay, but you get the idea. Okay, so there are 3 types of main things that are happening in the market. There is a bull trend, accumulation, continuation of bull. But that's not what Dow said. Dow said कि नहीं, there is a bear, there is a distribution and then there is bull. Okay, so ये Dow ने बोला. फिर उन्होंने बोला एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पूरी डाउ थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, वो 2 पॉइंट्स है जो उन्होंने बोले. इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर. ही सेड कि सिर्फ अगर एक इंडाइस जो है आपका इंडेक्स, एक इंडेक्स सिर्फ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेयर ट्रेंड खत्म हो गया, वो बुल ट्रेंड शुरू हो गया. आप ये देखो कि दूसरा इंडेक्स भी क्या ऊपर जा रहा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल से निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है बट निफ्टी नहीं ऊपर जा रही, जो कि हम देखो डेली ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, राइट. तो बोलते हैं कि नहीं, अगर दोनों नहीं ऊपर जा रहे हैं मतलब भाई कुछ तो झोल है. ठीक है, कुछ तो दाल में काला है. दोनों ऊपर जा रहे हैं तो फिर हाँ ठीक है, बट अगर एक भी ऊपर नहीं जा रहा है इट मींस कि अभी अपवर्ड ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है. तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप डेली ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो. तो बाकी जो अभी तक मैंने बोला डाउ जोन्स थ्योरी के बारे में, फॉरगेट दैट. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक इज व्हेनेवर यू मेक अ डिसीजन, the only thing that you have to take from Dow Jones theory is you have to understand that just one data point you should not use to make a decision whether a trend is upward or downward. Okay, you use multiple data points and see if all the data points are confirming, then only you take the trade in the direction that you are choosing. Okay, and the other thing which important is said that volume must confirm the trend. So he said कि जब भी upward trend रहेगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा वॉल्यूम ज्यादा होगा. एब्सेंस ऑफ वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेंड है देन ही सेड कि फिर वो ट्रेंड में वीकनेस है, वो ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है, एंड दैट इज ट्रू. ओके, सो दैट इज वन थिंग आल्सो व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस ऑन डाउ जोन्स? इसका ज्यादा यूज नहीं है हमारे आज के मार्केट में, बहुत पुरानी थ्योरी है, बट जस्ट आई कवर्ड सो दैट you have a better idea. Yeah, Ashutosh, you mentioned sometimes that during your live trading कि अरे यार बैंक निफ्टी जा I lost you, bro. रहा है लेकिन strength नहीं ले रहा है. Is this sometimes during your live trading also you have mentioned कि यार बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन निफ्टी उसको strength नहीं दे रहा है, या vice versa. So is this similar theory as Dow Jones theory? Exactly. That's why I said that is the only important. There are only 2 important takeaways that I also take from Dow Jones theory. Is the thing indices must confirm and volume should confirm, because these 2 are things which are still applicable in today's world and which you can use in trading day in and day out. Like I said, like you mentioned very clearly, if Nifty so this Bank is going about up, 2 indices. Yeah. What about one stock? What about one stock? Let's say if we are tracking HDFC, so we should also be looking at the bank nifty. Is No, it so supporting when it? you say looking at a particular stock, so what he meant कि अब अगर stock is, for example, like you mentioned about HDFC, and say HDFC is going up, so every theory works in a different way. So in HDFC, when it is going up, what you will see, since it is a single stock, it's not an index, right?
So you see, look at the volume. Is it going up with volume or not? There you don't focus on the index part. There you focus on the volume part. Okay. And if a good volume के साथ ऊपर जा रहा है, it means yeah, institutional buying is happening. People are interested in taking the price up. More and more people are even buying at a higher price. Okay, that will give you more confidence that in the strength. If it is going up with less volume, it means what? बहुत कम लोग हैं जो कि ऊपर खरीदना चाहते हैं. एंड अगर वो रिवर्सल आया तो क्योंकि लोग बहुत कम है, उनकी फट लेगी एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग एंड यू विल सी अ रिवर्सल. So that's why volume becomes very important. And if there are a lot of people buying, even at higher price, and even you see a small red candle or a big red candle, suddenly that red candle will disappear because all those big large number of people, जैसे ही price नीचे they will अरे वाह अब तो नीचे मिल रहा है, so they will buy. Okay, so that's why volume is very important in making decisions. Okay. सर इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन पार्ट में भी कि जब हम सपोज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि निफ्टी इज नॉट मतलब ऊपर नहीं जा रही है, अगर सेम वे अगर हम निफ्टी में कर रहे हैं तो मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो वही बोला था ना कल, जैसे आई डोंट नो इफ यू वर यस्टरडे, ये वो सवाल है कि मुर्गे अंडे से आया कि अंडा मुर्गा से आया. ओके ओके गॉट इट. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. ओके. और एक और छोटा सा क्वेश्चन, सपोज हम किसी आईटी स्टॉक में डील कर रहे हैं, कोई स्टॉक हमने सपोज इन्फी या कुछ भी, एंड हमें इंडेक्स को कभी कभी होता है कि इंडेक्स को देख के वी कैन फाइंड आउट कि हाँ ये ट्रेंड चलेगा कि नहीं. इज इट करेक्ट? यस. सो सी लाइक आई मेंशन अभी पहले, मैंने थोड़ी देर पहले क्या मेंशन किया था कि जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग होती है, दे इन्वेस्ट इन ए सेक्टर, दे डोंट इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर स्टॉक. ओके. So say आज मैं देख रहा हूँ कि IT index is bullish. Okay. So I'll go and see TCS, Infi, HCL Tech सारे देखूंगा. ठीक है. क्योंकि index ही bullish है. It's very impossible that institutional investing is going on, and since they are investing, they will be investing equally in all the stocks. Okay. Say for example Nifty IT fund हो गया किसी म्यूचुअल फंड का. ठीक है. So they will be investing all of that. Okay. So in that case, how will I choose stock? I know कि index is bullish, so all of them are going up. So उसमें फिर we'll see where is the best opportunity. TCS में risk reward अच्छा है कि Wipro में है कि Infi में है, and जहाँ पर अच्छा risk reward मिले वहाँ पे enter कर लेंगे. ठीक है. जबकि वहीं अगर सिर्फ एक मूव कर रहा है स्टॉक, बाकी नहीं मूव कर रहे हैं, then you mean कि भाई it is only cause of one HNI or a PMS, okay, or some news in that particular stock. Okay, in that case, if you see an entry, you take it, else you leave it. You don't need to look at all the stocks in that sector. Thank you so much. आशु सर, ये आप बार बार वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा है डेटा क्या कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम को अच्छा माना जाएगा, कितना वॉल्यूम को कम माना जाएगा? नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं है. वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ज्यादा कम, ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है. सो जैसे आप स्टॉक की वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है, लुकिंग एट द स्टॉक वॉल्यूम, आप पूरे दिन देख रहे हो कि उसका वॉल्यूम से 10,000 है, एंड अचानक से 135 पे उसका वॉल्यूम हो गया 1 लाख. So it means that volume has come down. So what you see, average volume you see for past 14 period or past 50 period or 10 period. It's just, you know, it's like making a reference. Just hold on guys, someone is calling me. Just, it's important. Hello? Sure. No, I'm actually in a meeting, but do one thing, just bring it over. Okay, let's go through each of the clauses one by one. Okay. No, it's important. Come today itself. So I'll be free after 6. Bring Shilpi along. I need all those. We have 3 lawyers, right? Bring all of those. Let's go through each of the clause one by one. Okay. Great. Yeah. Thanks. Chalo guys. Hello. सर ये Hello. वॉल्यूम Sir, ज्यादा मेरा है. question है. Hello. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you.
सर जैसे कि आपने बताया कि किसी भी जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग होती है तो वो पूरे सेक्टर में होती है। तो अभी जैसे अपन पर्टिकुलर एक स्टॉक देख रहे हैं, तो जैसे अपने को ट्रेंड का पता लगाने के लिए उससे उस सेक्टर के जुड़े हुए सारे स्टॉक देखने पड़ते हैं, या फिर हम कोई और तरीके से इसे पता लगा सकते हैं कौन से सेक्टर में बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है? इंडेक्स देखो ना सेक्टर का। फार्मा अच्छा, उस देखना है, सेक्टर का फार्मा इंडेक्स देखो। निफ्टी आईटी है तो आईटी इंडेक्स देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। So how to play with the Dow theory in daily life, in daily market? That's what I explained, bro. The only two aspects that you have to pick up is indices should confirm each other, and the second part was volume should support. The rest you ignore and out theory, okay? ठीक है guys, चलो let's move on. सर एक क्वेश्चन है। Okay, go ahead. सर बहुत बार देखा है कि वॉल्यूम हाई होता है और ब्रेकआउट देता है कोई स्टॉक, तो इमीडिएटली उसके बाद फॉल आता है थोड़ा, और बहुत बार ऐसा हुआ है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसीलिए तो हमेशा मोस्टली जब भी आपका रिस्क ज्यादा हो तो यू शुड, आई ऑलवेज से ना कि वेट फॉर रिट्रेसमेंट। सी इफ रिस्क इज गुड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। लाइक मेरा रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, ठीक है। आई कैन टेक अ रिस्क ऑफ 2 lakh 3 lakh ऑन अ ट्रेड, okay? So even if I see a higher stop loss, maybe I can enter, but say your capital is less, then in that case you should not take that much risk, okay? Then you wait for a retracement. If you get a proper entry, you enter, else you leave it, okay? कल दूसरा स्टॉक देखना। सर वो एक अपना बेसिक होता है कि वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो उस पे ट्रेड लेना, तो जरूरी ये जो नहीं है यार। सी एवरीथिंग इज नॉट, नथिंग इन स्टॉक मार्केट वर्क्स 100%. द ओनली थिंग व्हिच वर्क्स 100% is which is in your hand, and that is risk management, okay? Not, no theory in stock market works 100%. If that would have been case, आज तक कोई ना कोई पढ़ के, मतलब you see who is the richest person in the world? Jeff Bezos, Elon Musk. Do you see any trader there? Any trader do you see? Warren Buffett is also an investor. We don't see a trader there. Why? Because there is no one theory which will work 100% of time. अगर ऐसा होता तो कोई तो ट्रेडर होता ना आज तक जो would have been the richest person in the world, because he can fucking double triple anytime. Okay, so it doesn't work like that. Okay, every theory, you just see the theory, learn the theory, but at the end of the day you have to manage your risk, okay? Because no theory is 100%. What theories does, it gives you a direction, a guideline to reduce your risk, to find more probable entry, to find best trade. But that best trade doesn't mean that it will work 100% of time. It might also fail, and that's why you keep a stop loss, okay? Actually, one question. When you say institutions are buying in sectors or selling in sectors, so if you see the currently, all the IT stocks like NP, TCS, these are in downtrend, but Wipro is touching its 52-week highs. So does this mean institutions are only interested in one stock and not the whole Yeah, sector? just like, Reliance was there few weeks back. See, everything doesn't work all the time. No, if say the whole sector is faltu, but there is one stock which is really good, which is cheap, why would not the institutions go and buy in that? Why would not mutual funds include, say, Nifty large cap, for example, is a fund? Okay, just for example. Okay, now a fund manager goes, okay, and he makes a large cap fund. He says, okay, from IT sector, I'll only pick Wipro because only Wipro looks good to me. So every time he is going to invest the money that is coming through him through investment from SIP and people in funding, he will go and put his money in Wipro, and only Wipro will be moving. So those are the cases when you see only one single stock moving up, and that can happen. Okay, so investing in sector is a broad picture. It individually depends on the institutions what they want to invest, correct? Exactly. People can Okay, do but invest individually, right? But overall, most of the time, institutional investing happens in sector, most of the time. Okay. Got it. But Got that never means that they cannot invest. There is no rule which bars institutions from buying a single stock. There is no such rule. सर लोग बोल रहे हैं कि स्कैल्पिंग थोड़ा इंट्रोड्यूस करे लोगों No, no, let's leave scalping here. Okay. यहाँ लोग ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, स्कैल्पिंग करना है, बताओ। Scalping is such a fast game. Let's leave scalping. Scalping, just I'll give you one idea. What is scalping? What I did on last Thursday, that is scalping.
सर नेक्स्ट पार्ट। ओके, जो 23 सेकंड का ट्रेड लिया था वो स्कैल्पिंग था। चलो गाइस, तो अभी देखो, अभी हम इलियट वेव के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, सो एक्चुअली अभी करना क्या है हमें कि इलियट वेव के बारे में बात, अभी हम सारे ये सब बात करेंगे, और ये सारी चीजें हम कहाँ बात करेंगे, हम उस पर बात करेंगे ड्राइंग कर करके। ठीक है, सो अभी इलियट वेव पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड कहाँ है। हाँ जी, guys you can see the whiteboard. Just a patch. You cannot see There's gray patches all over. Okay, you guys can see the whiteboard or not right now? No, we do see, but there's some patches on it as well. Yeah, it's clear now, sir. It's clear? Okay, it might Yes, be sir. loading then on you guys. Okay, so let's talk about Elliott waves now. What is Elliott wave theory, how it works and everything. Okay, and then we'll look at chart patterns on trading view and we'll try to identify if there is an Elliott wave or not. ठीक है, तो देखो Elliott wave क्या बोलती है। Elliott wave बोलती है कि मार्केट ना दो तरीके के वेव्स में होता है। कोई ना को फक्त खापा दे। Guys, please mute yourself. Yeah, so Elliott wave बोलती है कि मार्केट जो है ना वो दो तरीके के मूवमेंट में होता है, या तो एक ट्रेंड होता है और एक होता है ट्रेंड के अपोजिट। ओके, सो जो ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं कि ये इंपल्स वेव है या मोटिव वेव है, एंड जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है उसको बोलते हैं वो करेक्टिव वेव है। ठीक है, सो एलियट वेव बोलता है कि मार्केट मूव्स लाइक दिस। एलियट वेव बोलता है कि मार्केट मूव्स लाइक दिस, ट्रेंड। ठीक है, ये ट्रेंड है, इसको बोलते हैं इंपल्स वेव या मोटिव वेव, और उसके होता है काउंटर ट्रेंड, ट्रेंड के अपोजिट, उसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। सो दिस इज व्हाट एलियट सेज। नाउ एलियट सेड कि जो आपका मोटिव वेव होता है या जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में, वो 5 वेव पैटर्न में होता है। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप बोलता है, एलियट ने बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में मूवमेंट होता है वो 5 वेव मूवमेंट होता है, जो कि 1 2 3 4 5 वेव होता है, और जो काउंटर ट्रेंड मूवमेंट होता है या जो ट्रेंड के उल्टे डायरेक्शन में मूव होता है वो 3 वेव में होता है। वो होता है 0 A B और C। गॉट इट गाइस? ये बोला एलियट ने। फिर एलियट ने बोला क्या कि ये जो मूवमेंट, ये पैटर्न बना है, ये स्टॉक मार्केट में हर टाइम पीरियड में होता है। सो जस्ट लाइक जैसे दाऊ ने बोला ना कि एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, फिर एक आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, फिर आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, सेम चीज एलियट ने बोली। ठीक है, एलियट ने, एक मिनट, इसको कैसे वो करते हैं यार, मिटाते विटाते हैं। चलो इसी पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बोला एलियट ने कि ये जो 1 है, एलियट ने बोला कि अब इस 1 में क्या होगा ना कि ये ऐसे 5 वेव्स रहेंगी, 1 2 3 4 5। ये 1 भी 5 वेव का बना होगा, और ये 2 है करेक्टिव वेव। ठीक है, ये आपका 3 वेव का रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि ये 1 2 3 4 5, और फिर बोला कि ये आपका 1 2 3। ठीक है, सो ये क्या हो गई, आपका जो बड़ा है 0 1 2 3 4 5 मैंने बनाया था, ये आपका प्राइमरी हो गया वेव, और इसके बीच में आपकी सेकेंडरी मूवमेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये हम थोड़ा चार्ट पे देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। तो इतना आपको समझा गया क्या एलियट ने बोला? यस सर, यस ठीक है, सो अब इसको थोड़ा चार्ट पे समझेंगे, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ओके ओके, नाउ व्हाट विल डू ई। अब देखो, ये जो ट्रेंड है मार्केट में, देखो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है, राइट? क्या डिफिकल्ट होता है साइडवेज मार्केट पहचाना कि क्या मार्केट साइडवेज है, नॉन ट्रेंडिंग, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। सो एलियट ने बोला ना कि जो आपके मोटिव वेव्स हैं, अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, so वो रूल्स देख लेते हैं। ड्रॉ, एक मिनट,
ये बड़ी दिक्कत है यार, मैं इन सब चीजों में बड़ा गोल हूँ। हाँ, आ गया ना पहले। हाँ, अब इलियट ने कुछ रूल्स बताए। इलियट ने बोला कि ये जो 1 2 3 4 मूवमेंट है ना, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या हैं? उन्होंने ये बोला, ये देखो मार्क कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब इलियट ने बोला क्या कि ये इलियट वेव मोटिव वेव तभी होगा जब कोई भी करेक्टिव वेव उसके पहले के इम्पल्स वेव के रीजन में ना आए। मतलब कि अगर ये जो 4 है, ये कभी 1 के रीजन में नहीं आएगा। ओके, कहने का मतलब कि ये 1 है आपका, तो दिस करेक्शन थर्ड से जो फोर्थ आएगा, इलियट ने बोला कि ये फोर्थ कभी यहां तक तो आ सकता है लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा कभी भी। मैक्स इट कैन कम इज above this, it will never come in the region of prior impulse wave। ये प्रायर impulse wave है 1, कभी ये फोर्थ वेव जो करेक्शन है इसके रीजन में नहीं आएगा। दैट इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या बोला इलियट ने है कि जो ये थर्ड वेव होती है ना, ये थर्ड वेव होती है ये थर्ड वेव कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट। अब ठीक है, अब ये समझते हैं कैसे। कहने का मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये 1 2 3 4 5, क्या ये इलियट वेव है? No. Why? Because this Yes, fourth sir. wave has come in the region of this, The right? first wave. So that's why this is not a impulse wave. Okay, so it is not a, so you will not mark it as 1 2 3 wave. It might be a corrective wave, okay, which we'll discuss later. Second thing what he said कि third wave cannot be smallest. So मतलब अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा है 1 2 3 4, ठीक है, और 5, तो क्या ये इलियट वेव है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड वेव है इट लुक्स टू बी द स्मॉलेस्ट। ओके, दो देखो ये फोर्थ वेव इसके रीजन में नहीं आई, बट सिंस थर्ड वेव इज द स्मॉलेस्ट स्टिल नॉट एन इलियट वेव। तो इस केस में क्या हो सकता है कि ये 1 हो, ये 2 हो, और ये आपका 1 2 3 दूसरा हो। ठीक है, सो कहने का मतलब कलर चेंज करते हैं, आपको बताते हैं। हो सकता है कि ये 1 हो, 2 हो, ये 3 हो, अरे सॉरी यार, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इधर कोई 4 बने और इधर 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया, और ये पूरा आपका हो गया 0 1 2, ये पूरा आपका हो गया 3, क्योंकि हर इम्पल्स वेव क्या बोला था, 5 वेव पैटर्न होता है, राइट? अभी बताया था ना पहले, हर इम्पल्स वेव 5 वेव पैटर्न होता है, और ये 3 का पूरा, अब ये 4 यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक आ सकता है, ये इन सबके, क्योंकि ये फोर्थ वेव है। ठीक है, ये 4 पूरे बड़े का फोर्थ वेव हो गया, और ये एक फिफ्थ वेव बन सकती है। अब ये 4 जो है, हो सकता है ये 4 वापस, ये 4 कुछ ऐसा हो जाए, देख रहे हो, ये ABC बन जाए, करेक्टिव वेव है ना ये, और फिर ये यहाँ पे वापस ये 1 2 3 4 5 बन जाए। गॉट इट गाइस? समझ में आया थोड़ा बहुत? अब चार्ट देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन you all got a basic idea, right? Okay, so whenever you see something like this happening, then you understand कि okay, it might be that this might be an extended third wave, जिसमें you are getting a 1 2. But can you explain on the chart, please? Yeah, I'll explain it on chart. I'm just giving you theory as of now. Okay, so now we'll go on the chart and we'll see that. Okay, guys, let's go and see on charts. Then we'll get a better idea how to mark it. Corrective wave always comes in 3 stages. Corrective wave, yeah, Even it's if it is always in composed of 3 downtrend, waves. Even if the market is down, So that it might will be form a, in a see, 3. no. So you have to understand. Like I said, now you always have to see the context. The corrective wave of a long bull market, okay, corrective wave will always be in a 3 wave. When I'll talk about corrective wave, you will understand what I'm trying to say. Just give me a few minutes, okay? Bro, I have one question. Yes, bro, go ahead. Yeah, so as you mark red color numbers, right? So can we consider 0 to 3 as a one impulsive wave?
because it is a very small retracement, like in a downtrend, right? So guys, what you are saying, So let's discuss this first, bro. I think I am not getting your question. Let's discuss this. After that also, if you have doubt, then let me know. Okay, let me discuss this on. So guys, you tell me any stock you want me to see. Any stock, commodity, whatever you want. Tata Okay? Steel. HDFC. चलो Tata SDFC Steel. टाटा स्टील देख लेते हैं यार. चलो टाटा स्टील देख लेते हैं. ठीक है, मोर पीपल वांट टाटा स्टील. लेट्स सी टाटा स्टील. सर आई थिंक ग्रासिम में वो चार्ट पैटर्न बना हुआ है जब बोल रहे थे. हाँ जी, ग्रेसिव में मैंने बनाया था. मैं करता रहता हूँ यार रिलेट वे. आई रियली लाइक. ओके, अब देखो, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा सारा आप लोगों को ये जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था ना. अब देखो ये व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है अभी. अच्छा, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है क्या अभी? चलो ठीक है, अभी दिख रहा है गाइस. Yes. Yes. So see, this is Tata Steel weekly chart. Okay, अब देखो, very clearly I can see, like we are discussing, I can very clearly see 5-way pattern here. Can you see? I just try it. ये देखो, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और ये 5 हो गया. Guys can see this? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. We It can. satisfies all the criteria. देखो, fourth wave is not coming in this. Okay, third wave is not the smallest. Okay, अब देखो what I said कि every impulse move should be also consist of 5 waves, right? देखो इसमें है बहुत clearly. अब देखो इसके अंदर फिर 5 wave है. ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5. दिख रहा है आपको? कलर चेंज कर देता है. ठीक है, फिर देखो ये भी है, सेकंड थर्ड वेव है ना, ये थर्ड वेव में फिर 5 वेव है. 1, 2, 3, 4, 5. दिख रहा है? देखो इसमें भी 5 वेव है. 1, ये 2. यहाँ पे मैंने क्यों नहीं 2 मार्क किया, मैं समझाऊंगा बाद में. करेक्टिव वेव है क्योंकि वो 3, 4, 5. कैन यू सी दिस गाइस? Yes, sir. Seeing this. So Okay, where now, do we make the decision? so I'm telling that will come first. Let's understand the theory, then we'll understand how to apply it. Okay, so one way to apply. Now see, you are seeing Tata Steel correcting. So see, what does Elliott wave do? Elliott wave gives you an idea. Why Elliott wave I like so much? Because Elliott wave tells you very clearly कि भाई इसके बाद you are wrong. If this happen, then you are wrong. When I'll be wrong? If this fifth wave, now here say for example, when this third wave, let me just hide this one, red one. वो थोड़ा क्लियर नहीं है वो. क्लियर नहीं यार. अब मैंने आज चार्ट वो चेक किया था, कल भी ये लोग बोल रहे थे कि चार्ट ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा था सबका. तो चार्ट में तो यार जूम पे माई सेटिंग्स आर फुल एचडी. ओके, नाउ सर क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वही मैं बता रहा हूँ. तो दैट इज बेस्ड ऑन योर कनेक्शन स्पीड यार. अगर आपका कनेक्शन स्पीड स्लो है फॉन्ट भी थोड़ा ज्यादा कर दे तो दिखे. ओके, आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल जस्ट इंक्रीज इट. तो देखो अब इलियट वेव का यूज क्या हो सकता है. इलियट वेव का यूज ये हो सकता है कि जब ये आपको थर्ड वेव ये बन के ये करेक्शन हो रहा था. ओके, सो आपको पता है कि ये वन वेव बन गई, ये सेकेंड वेव है और ये थर्ड वेव है. अब ये करेक्शन हो रहा है, तो आपको पता है कि ये करेक्टिव वेव कभी इस रीजन में नहीं जा सकती, राइट? सो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल सकते हो, और जैसे ही आपको ये करेक्शन खत्म होते हुए दिखे, you can buy saying okay, my stop loss will be this because it cannot go below this, and you can take this whole fifth wave movement. Now we'll discuss how to put target also in Elliott wave. Elliott wave में मैंने बोला था ना Fibonacci will include, so we'll talk about Fibonacci later. अभी let's discuss now थोड़ा corrective wave देख लेते हैं कि corrective waves कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती हैं. फिर corrective waves एक बार देख लेंगे ऐसे ही चार्ट पे. फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे इलियट वेव का यूज करना है मार्केट में एंट्री एग्जिट लेने के. सो यू गाइस गॉट दिस मैसेज, राइट? हाउ टू सी इंपल्स वेव. इतना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Perfect.
Okay. Is the corrective move is same as the retracement? These two are same? Yes, Can we corrective move is a interchangeably use counter trend. Just understand how corrective move is as a counter trend. A correct now see, this is a fourth wave corrective move, right? But this like you said, na, this also depends on time frame. So this is the primary move, primary trending move. इसमें ये corrective move है. This can be so counter trend move can be in 3 wave. But this counter trend move, if I start going in say a 15-minute chart, okay, कहाँ गया ये? एक minute. What was the price? 700. Now let's go in 15-minute chart. Press Alt R, sir. Alt R, अच्छा ये सब मुझे पता ही नहीं, बताओ. No idea about all this. एक तो मैं लॉगरिथमिक स्केल यूज करता हूँ ना. Alt R दबाने से क्या होता है यार? नीचे उधर ऑटो करके आ Reset the जाता whole है. thing. सही भाई, ये सब चीज बताई तुमने ना. लेकिन मुझे 700 चाहिए. 700 वाला लेवल चाहिए मुझे. I want to show you something. That corrective wave, which is a 3-wave move, can also be a 5-wave move on a shorter time frame, because that we'll discuss. Okay, let's discuss that later. एक काम करते हैं, अभी छोड़ते हैं उसको. ठीक है, let's discuss now first कि पहले corrective wave कौन से हैं. Okay, then we'll discuss that. Okay, fine guys. Let me discuss first the corrective wave. फिर उसके बाद discuss करते हैं कि how to make the. Okay, now let me erase this. So guys, impulse wave of you guys understood, right? What is impulse wave? Any doubts in impulse wave? Can we see in live market like Yes, yesterday? we'll see that, bro. Obviously, we'll see that in live market. Hey, Ashutosh, quick question. Yeah. An impulse wave. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, right? So usi ke niche, even before it goes like, corrective wave jo hai 0 to 3 hai. But even before it goes to 0 to 3, can we have small corrective waves within that impulse wave? Yes, obviously the second wave is a corrective wave in an impulse wave. Acha, so that can be 0 to 3. Yeah. Okay, cool. Okay, see, Elliott waves are fractal in nature. Okay. Okay. So each wave also is subdivided into waves like that. Similar. Okay. All right. Does that Yes, mean if we Joshua. look at a shorter time frame, we will get a corrective wave in a, in a motive wave? Can you come again? Can you come? So I'm asking if there is a motive wave in a, let's say, 1 week time frame or 1 hour time frame, if we look at it at a shorter time frame, will we get a corrective wave also in that? Yeah, obviously. That's what I was saying. वही तो मैं बना के दिखाया ना, एक मोटिव वेव जैसे बनाया था ना, देखो ये इम्पल्स वेव था आपका, ठीक है, बट इस इम्पल्स वेव में ये है तो देखो ये एक करेक्टिव वेव है, राइट? Yeah. You have this corrective waves. Okay, so ये इम्पल्स वेव ये पूरा 1 है, बट इस 1 में ये देखो ऑलरेडी करेक्टिव वेव है, तो इसका नीचे करता है, ठीक है, ये देखो ये एक और करेक्टिव वेव है, यहाँ पे भी एक करेक्टिव वेव है, right? So shorter time frame we will see. So to determine I'm sorry if anybody is just go ahead. See, Elliott wave will get more clearer once we move ahead and we start seeing the charts. Okay, don't worry about one thing जो charts में क्योंकि multiple candles भी दे रहे हैं उसमें कैसे पता चलेगा कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कैसा है? That is the most important. What question you asked, Abhina? This is the only question that half of the Elliott wave guys now don't know.
So everyone can draw 1 2 3 4 5, but they don't know where to start. कहाँ से start करना है? That is the most important question. And I tell you, this was the only struggle which I also had, for which I also did the course, which I told you guys. Okay, and it's the most important question. मतलब मैंने भी इलियट वेव पूरा सीखा, बाद में मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये, मेरे को समझ ही नहीं आता तो यार वन शुरू कहाँ से करना है. So that's a good question. I'll come to that. Don't worry. Okay, we talk about it. सर Okay. बस एक चीज कि जो मेरे को अंडरस्टैंड मैंने किया है, इट इज लाइक कि हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ एक एलियट वेव निकाल लें, देन जैसे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं बड़े टाइम के बाद में असेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे करके छोटा आते हैं, है ना, थोड़ा सा उसे स्मूदन ऑफ करने के लिए. तो समथिंग लाइक दैट, मतलब मैं सही समझ रहा हूँ, इसको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. Just like we talked about trend, अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रेंड के बारे में बात किया था, राइट, जहाँ पे मैंने बोला ट्रेंड डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, राइट. सो सेम जो चीज है, फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट चार्ट में ट्रेंडिंग मूव देख रहे हो, सो वो एलियट वेव के हिसाब से 1 2 3 4 5 में होगा. ओके, बट दैट 1 2 3 4 5 से वही सेम आप चार्ट 1 आवर चार्ट में देख रहे हो, तो हो सकता है 1 आवर चार्ट में वो नॉन डायरेक्शनल साइडवेज मार्केट हो. So 1 2 3 4 5 might be a part of a corrective wave in a long term. Okay, it's very simple. See, all of these theories are same. Okay, it's just the way of looking at it. Okay, and whichever theory suits you the best, you apply it. Any question, guys? So how do we also consider wicks when we look at the top and the bottom in the waves? Top and the bottom as in? So when you say 0 1 2 3 4, right, the fourth thing wave should not be below the first, is what the first peak, right? Exactly. So the wick of the fourth wave, can it go below and no, come back? Wick will also not go. No, only in futures market sometimes it happens that the wick goes below, and that's why whenever you are using Elliott waves, it's better to watch the stock, because futures have a lot of volatility and volume. So at times wick goes below. Okay, but in stocks it will never happen. In stocks it is happening, then you understand that is not Elliott wave, an Elliott impulse wave. It might be a corrective wave, it might be say a flat formation. Okay, we'll discuss all that. So let's now discuss corrective wave, guys. Okay, because without understanding that, you all will be confused. Okay, ठीक है. So अब देखो, करेक्टिव वेव्स है ना, वो कई तरीके की हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या बोला था, जितने भी करेक्टिव वेव्स हैं वो 3 वेव पैटर्न में डिवाइडेड है. ठीक है, देयर इज ओनली 3 वेव पैटर्न इन विच अ करेक्टिव वेव कैन फॉर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप ऑफ करेक्टिव वेव्स. ओके, सो सबसे जो पहले करेक्टिव वेव आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सबसे ज्यादा दिखेगा मार्केट में, वो है जिगजैग. ओके, जिगजैग होता है A B C. ठीक है, अब इसका हर वेव होता है कि करेक्टिव वेव हमेशा 3 वेव पैटर्न होती है. सो ये 1 2 3 4 5. ठीक है, ये अब देखो, ये करेक्टिव वेव का इंपल्स वेव है, ये वाला, ये 0 था, ये A था, ये B था, ये C था, ये करेक्टिव वेव का इंपल्स वेव है. सो इसीलिए ये 5 वेव पैटर्न में है, 1 2 3 4 5. गेटिंग मी गाइस? तो आप समझ रहे हो ना. अब जैसे ये पूरा एक लॉन्गर से कोई 5th वेव रही होगी, जैसे ये 3rd वेव रही होगी, जिसका ये 4th वेव चल रहा है, और इस 4th वेव में A B C बना, लेकिन ये A का ये इंपल्स वेव है. देखो ये ट्रेंड है, अगर आप छोटे में देखोगे तो ये ट्रेंड है, राइट? गेटिंग मी? शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड है, guys, getting me or not? Yeah. Since this is the trend and this is counter trend, right? This B wave is counter trend, right? इस छोटे से ट्रेंड का ये काउंटर ट्रेंड है, राइट? सो ये सिंस ट्रेंड है, ये 5 वेव में है. सिंस ये काउंटर ट्रेंड है, ये 3 वेव में रहे. ठीक है, फिर ये ट्रेंड है, ये 5 है. तो अब देख रहे हो, ये टाइम पीरियड का यही फर्क हो जाता है. सो गेटिंग मी गाइस? अभी थोड़ा क्लियर हुआ जो डाउट्स थे? हाँ, तो मतलब बेसिकली ऐसा है कि
एक ट्रेंड में there are multiple trends which Exactly, can go because that up and depends down on time within the time frame. frame. Okay, always you have to see the time frame that you are looking at. Based on that only you can determine a trend or a non-trend. So जिस time frame में जो भी प्राइमरी ट्रेंड होगा वो 5 वेव में होगा और उसका काउंटर ट्रेंड हमेशा 3 वेव में होगा. Got it, guys? Ashutosh, one question. In motive and impulsive of any trend, the numbers is used for the impulse and the alphabet is used for correction. Is it correct? Yes, yes. ABC 3 wave pattern is corrective. 1 2 3 4 5 is motive wave or ठीक है. So this is one of the most common this is one of the most common type of corrective wave that you see in market, which is a zigzag. It is called as zigzag. ठीक है, तो zigzag बोलते हैं. ये सबसे, इसको एक बार अच्छे से और बनाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, देखो ऐसे बनाते हैं. So one question. एक मिनट 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 आया समझ में? ये जिगजैग है, ये करेक्टिव वेव है. इसमें ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया. देख रहे हो? और ये एक और थ्योरी हम बोलते हैं ना वैसा, लोअर टॉप लोअर बॉटम सी. इट इज फॉलोइंग दैट ऑल थ्योरीज आर इंटरकनेक्टेड. यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द बेसिक्स. सी, हायर टॉप हायर बॉटम अपवर्ड्स. हाँ भाई, आस्क मी व्हाट यू आर आस्किंग. सर इसके अंदर भी हम ये जो जैसे आपने इम्पल्सिव वेव के अंदर बताया था कि 0 से 1. अब इसमें भी देखो 5 वेव होगा. अगर सिर्फ अभी एक छोटा सा टाइम फ्रेम अगर हम ये देख लेंगे, ठीक है, से हम एक बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम ये देखते हैं, ठीक है, और इसको हम एनलार्ज करते हैं तो ये ऐसा दिखेगा. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. ठीक है, ये ऐसा दिखेगा. ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा ये ऐसा दिखेगा. गॉट इट गाइस? फिर ये अगर छोटा मैं अगर करूं इसको, तो ये अब कैसा दिखेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या होगा? Yes. टाइम फ्रेम पे ये डिपेंड करेगा सर. Exactly. And So you this have- time frame, is it related 1:4, like 5 minute to 15 minute to 1 hour? ऐसा कुछ relation? No, nothing like that. See, like I said ना, trend you always see based on the time frame. Trend is like that's what we discuss. सबसे पहले इसी देखो लाइन से ये सब डिस्कस करें. ट्रेंड हमेशा टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है. ट्रेंड कभी भी आप फाइलों में नहीं ऑब्जर्व करते, टाइम फ्रेम पे ही आप बोल सकते हो. आप इसीलिए मैं बोल रहा था, यू कैन नेवर से मार्केट इज अपवर्ड्स. You have to define the time in which you are saying that the market is upwards. Okay, so got this guy's idea. So this is one of the basic let's move to the corrective wave part. Okay, so this is one of the most basic corrective wave you will see in market, A B C. Okay, which is now अब ये notes बनाते रहो guys. इस पे पहला ये zigzag formation है. ठीक है, zigzag formation क्या है? ऐसे, ठीक है, और ये नोट्स बनाना है, ये सारे नोट्स बनाना है, बाद कहीं मिलता नहीं है जल्दी. और इसका वेव पैटर्न क्या होता है? 5 3 5. सो व्हेनेवर यू सी ए 5 3 5 करेक्टिव वेव, इट इज अ जिगजैग. नोट्स बनाते रहो गाइस इसका. गॉट इट गाइस? ठीक है, अब चलो फ्लैट फॉर्मेशन की बात करते हैं. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है. करेक्टिव वेव जब होती है तब भी जैसे आपने ना मेरे को एक बताया था 0 to 1 जाते हैं, 1 से जो 4 का जो पॉइंट होता है इम्पल्सिव वेव के अंदर. हाँ पहले बोले थे गाइस घर का काम अलग. अरे यार बोलिए. गाइस घर का काम म्यूट करके खुद को करो प्लीज, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं. And if I mute, then someone who is asking question, he also cannot ask. नहीं किए हैं ये ना कुछ भी. चलो यार, जिसको सवाल पूछना था वो प्लीज वो अनम्यूट करो, खुद को पूछो. सर मैं पूछ रहा था, जब हम इम्पल्सिव वेव में देखते हैं, जब हम 0 से 1 की वेव देखते हैं और वो 1 की वेव और जो 4 की वेव होती है, 4 की वेव ऊपर होनी चाहिए 1 से, करेक्ट? Yes, exactly. 4 should, any corrective wave should never cross the region of previous impulse wave. Okay, if it is a impulse wave,
whole move. Then the corrective wave inside that impulse wave will never cross the. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं भूल गया था बताना. ये बताओ, ये करेक्टिव इम्पल्स वेव है, इलियट वेव है, इम्पल्स वेव है कि नहीं? ये देखो, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5. नहीं. No, क्यों sir, सर? it's not. No, sir. Because it's Impulse wave है. देखो 4 इसके ऊपर है, 3 हाईएस्ट है, क्यों नहीं है? But 2 is below 0. Exactly. You have to start from Exactly. So this one I forgot, so just remember this. Okay, so write these down rules, very important. ठीक है? So this is why this is not impulse wave. चलो, ठीक है, ये मैं भूल गया था. रूल क्या है? रूल क्या है? 0 क्या? सुनाई नहीं दिया. Wave 2 can, if it is an impulse wave, wave 2 will never come below the beginning of the wave. So this is where it wave started, so 2 will never come below this. 2 should always be above. It can come parallel to it, but not below. No, it can never come parallel also. Okay. It will never come in the region of where it started. ठीक है? So, just one question. Guys, let's make one thing. There were 2 people who were assigned the job. Please put it on the channel. People will ask, okay? One by one. And let's move ahead. नहीं तो फिर डाउट क्लियर नहीं होंगे. आगे जाएंगे तो खुद ही आपका डाउट क्लियर होगा. ओके, सो थोड़ा वेट करो, खत्म होता है फिर डाउट्स की बात करते हैं. ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड टाइप ऑफ करेक्टिव वेव. सो नेक्स्ट जो करेक्टिव वेव फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं फ्लैट फॉर्मेशन. ओके, फ्लैट फॉर्मेशन. अब जो ये फ्लैट फॉर्मेशन होता है ये 3 तरीके का होता है. ठीक है, ये भी 3 वेव पैटर्न होता है. ऑब्वियसली करेक्टिव वेव इज हमेशा 3 वेव पैटर्न. ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में याद रख लो. अभी तक क्या याद किया? इम्पल्स वेव हमेशा 5 वेव होगा. जैसे डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में जो भी मूवमेंट होगा वो 5 वेव मूवमेंट होगा. जो काउंटर ट्रेंड मूवमेंट होगा डायरेक्शन के अपोजिट, वो हमेशा 3 वेव मूवमेंट होगा. ठीक है, ये याद रख लो. और इसमें ये पहला हमने डिस्कस किया है, जिगजैग है करेक्टिव वेव. दूसरा वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज फ्लैट फॉर्मेशन. सो दिस इज अगेन अ 3 वेव पैटर्न. नाउ दिस इज ऑफ 3 टाइप्स. ओके, एक होता है आपका रेगुलर फ्लैट. ठीक है, फिर आपका होता है एक्सपैंडेड फ्लैट. ठीक है, हेलो गाइस, यू कैन हियर मी राइट? Yes, sir. Yes, sir. और फिर होता है आपका रनिंग फ्लैट. ठीक है, सो 3 तरीके के फ्लैट फॉर्मेशन होते हैं, रेगुलर फ्लैट, एक्सपैंडेड फ्लैट और रनिंग फ्लैट. अब रेगुलर फ्लैट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले. ठीक है, सो रेगुलर फ्लैट पहले तो क्या होता है, ये 3-3-5 होता है. इस फ्लैट फॉर्मेशन हमेशा, इस फ्लैट फॉर्मेशन का हमेशा वेव स्ट्रक्चर ये होता है 3-3-5. मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा कुछ होगा 3-3-5. गॉट इट? इतना समझ में आया? उसमें where is 3, 3 and 5? Can you just point out, please? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 3 5 and whole pattern is of 3 wave. If you see, the full pattern is of 3 wave, A B C, but the pattern is consisted of 3 3 and 5. So this is what 3 3 5. Got it, guys? Yeah, clear. Okay, clear. And you guys keep making it, then you will remember it. Okay. हेलो. Yeah, रेगुलर फ्लैट. हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरे को. ये जो आपने काउंटर ट्रेड का ये 5-3-5 बताया, इसका जिगजैग फॉर्मेशन बोलते हैं ना इसको? हाँ, 5-3-5 इज जिगजैग, 3-3-5 इज फ्लैट. अब फ्लैट 3 तरीके के होते हैं, रेगुलर, एक्सपैंडेड, ठीक है, और रनिंग फ्लैट. अब रेगुलर फ्लैट क्या होता है? रेगुलर फ्लैट क्या होता है? अब देखो मैं 3-3-5 बना के दिखा रहा हूँ. रेगुलर फ्लैट में क्या होता है? रेगुलर फ्लैट में क्या होता है कि जो वेव बी होता है वो वेव ए के स्टार्ट तक जा सकता है. ठीक है, गाइस, गेटिंग नियर द स्टार्ट ऑफ वेव वे. अब जैसे ये देखो, रेगुलर फ्लैट क्या हुआ, ये 3 वेव था, अब ये ए वेव हो गया राइट, फ्लैट का. अब ये बी वेव बन रहा है. ये बी वेव कैन गो नियर द स्टार्ट. दिस इज द स्टार्ट ऑफ वेव वे. ठीक है, सो बी वेव कैन गो नियर द स्टार्ट. ओके, ये इसके ऊपर नहीं जा सकता. अगर ये रेगुलर फ्लैट फॉर्मेशन है, सो दिस विल नॉट गो अबव द टॉप ऑफ दिस. इट कैन गो मैक्स यहाँ तक. ठीक है,
और वेव सी जो है 5 वेव पैटर्न है तो स्ट्रांग है, 5 वेव पैटर्न थोड़ा स्ट्रांग पैटर्न होती है, सो दिस कैन गो बियॉन्ड वेव ए। वेव ए कहाँ था, यहाँ पे था। देखो वेव सी जो है दैट कैन कम अप टू हियर। सो रेगुलर फ्लैट क्या होता है कि वेव बी शुड टर्मिनेट नियर द स्टार्ट ऑफ वेव ए एंड वेव सी कैन गो बिलो वेव ए। ओके, गॉट इट गाइस? यस सर। ठीक है। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कहीं पढ़ोगे नहीं, ज्यादा आपको बताया नहीं जाता है। एलियट वेव थ्योरी वेरी पढ़ोगे तो उसमें कभी नहीं लिखा रहेगा इसको। टेक्निकल एनालिसिस वेव सी में हमेशा आप देखोगे ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वेव सी में आपको हमेशा मोमेंटम डाइवर्जेंस दिखेगा वेव सी, क्योंकि करेक्टिव वेव है तो मतलब इसके बाद जैसे ही करेक्शन खत्म हो फिर तो रिज्यूम करेगा ना अप ट्रेंड, राइट? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी अ डाइवर्जेंस, मोमेंटम डाइवर्जेंस ऑल्सो। आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस दिख जाएगा। तो दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। Okay, we'll cover more of these things in detail in advanced. Okay, but I'm just telling you here, so keep a note of this. Got this guys? So ये समझ में आया आपको? So ये रेगुलर फ्लैट है। ये क्या है? ये रेगुलर फ्लैट है। अब दूसरा चीज क्या होता है? एक्सपैंडेड फ्लैट। Okay, anyone any idea what is an expanded flat? चलो बताते हैं। अब एक्सपैंडेड फ्लैट में क्या होता है? एक्सपैंडेड फ्लैट में देखो पहले ये ए वेव बनी 1 2 3, राइट? अब ये वेव बी जो है इट कैन गो अबव दिस। अब ये जो है ना, ये चूतिया बनाने वाला करेक्टिव वेव, इसी में बहुत लोग फंसते हैं। अब इसमें क्या होगा, कैसे आप पहचानो? वॉल्यूम कम होना चाहिए, आप समझ जाओगे करेक्टिव फॉर्मेशन हो रही है। अंडरस्टैंडिंग गाइज? और ये भी देखो वही सेम 3 3 5 ही होगा, बट इसमें जो ये है बी का जो टॉप है वो ए के ऊपर चला जाता है, एंड सेम फिर सी जो आता है आपका ये वही सी में कोई चेंज नहीं, सी हमेशा इसके नीचे। ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फ्लैट। गॉट इट गाइस? एबीसी लिख दो प्लीज। क्या हुआ? एबीसी लिख दीजिए, पॉइंट कर दीजिए इसके। हाँ मैं लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी। अब देखो एक्सपैंडेड फ्लैट और नॉर्मल फ्लैट में अंतर क्या होता है? जब नॉर्मल फ्लैट होता है तो अब देखो, अब थोड़ा मार्केट साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, किताबों में ये सब चीजें तो मिल जाएगा, क्लास कर रहे हो तो कुछ ज्यादा सीखो जो किताबों में नहीं होता है। अब देखो बी में क्या हुआ कि ये बी जब गया तो मैक्स ए के टॉप तक गया, स्टार्ट तक गया, राइट? और ये नीचे आया, ठीक है? अब यहाँ पे सिंस इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं हुआ, राइट गाइस? कोई यहाँ पे फंसा तो है नहीं, ठीक है? सो इसमें जो ये सी वेव ए के नीचे आएगी वो ज्यादा नीचे नहीं आएगी और आपको एक मोमेंटम डाइवर्जेंस भी दिखेगा क्योंकि कोई फंसा ही नहीं है। बट इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये बी ऊपर चला गया, यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं और तब ये जब नीचे आता है ये डाउन मूव बहुत फास्ट होता है। तो इस केस में जो सी वेव होता है ना, वो ए के काफी नीचे जाती है। So that is the practical application of Elliott wave, which you will not find in books. Okay, this you will have to understand. Okay, getting my point, guys? Why this comes? अब कहीं आप पढ़ लोगे सी नीचे होता है, लेकिन क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि लोग यहाँ पे इतने ट्रैप्ड हैं कि एक्सपैंडेड फ्लैट में जब डाउनवर्ड करेक्शन लास्ट वेव आता है, so this is very fast because a lot of traps are there and this goes substantially below it. Understood, guys? सर एक क्वेश्चन है। सर ऐसा क्या हो सकता है जिसमें आपने पॉइंट ए दिखाया और पॉइंट बी जो आपने दिखाया ये एक्सपेंडेड फ्लैट में, तो क्या वहीं से इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो सकता है क्या? पॉइंट बी से इम्पल्सिव हाँ हो सकता है। अगर से मान लो ये जो करेक्शन आया, ये जो करेक्शन है ये से इसके रीजन में नहीं आया, हो सकता है ये यहाँ तक आए, यहाँ रिट्रेसमेंट, क्योंकि ब्रेकआउट था ना, यह रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये फिर ये फ्लैट फॉर्मेशन हुई ही नहीं। फिर ये क्या हुआ, ये आपका एक जिगजैग हुआ करेक्शन में और फिर नया वो सेम मोमेंटम कंटिन्यू हो गया, फिर फ्लैट बना ही नहीं। आया समझ में? या सर इसमें हम एंट्री कब लेंगे? इसमें एंट्री कब लोगे फॉर्मेशन में? जब आप देखो यहाँ पे ये देखो फेल हो गया तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ब्रेकआउट फेल हो गया, वॉल्यूम है नहीं, ब्रेकआउट फेल हो गया, आप शॉर्ट करोगे, यही तो हम लेते हैं ना। जैसे अभी फ्राइडे को लिया, थर्सडे को मैंने लिया था बैंक निफ्टी में, जब पुट ऑप्शन मैंने खरीदा था, राइट? यस यस। ओके, सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी विल लर्न, ठीक है? डोंट वरी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिबोनाची भी आएंगे इस पे, वो हम सीखेंगे। फिबोनाची आज ही सीख लेंगे, बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन विल लर्न इन एडवांस्ड, ठीक है?
तो ये समझ में आ गया गाइस? हाँ आशुतोष, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब भी हम ये ड्रॉ करते हैं तो कैंडल का हमें वीक लेना होता है या क्लोजिंग? हमेशा क्लोजिंग, नहीं विक, हमेशा उसका हाई और लो पे, ये पूरा हाई लो पे बनता है। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। सो ये हो गया आपका रनिंग एक्सपैंडेड फ्लैट। अब आता है लास्ट, आपका होता है रनिंग फ्लैट। ठीक है, रनिंग फ्लैट में क्या होता है? अगेन सेम, ये भी देखो, ये भी 335 है ना। अब रनिंग फ्लैट भी आपका 335 होगा, लेकिन अब वो देखो उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये बना आपका वेव ए, ये बना आपका वेव बी जो कि इसके ऊपर गया, इसमें भी रनिंग फ्लैट में भी इसके ऊपर जाता है। ठीक है, बट अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो वेव सी है ना, 5 वेव पैटर्न, ये एक्चुअली ए के ऊपर ही रह जाता है। अब ये देख के आपको क्या समझ में आया? पहले तो एक चलो ये रटने वाली चीज हो गई कि हाँ ये ऊपर गया था ऐसे, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चार्ट इफ सच फॉर्मेशन अकर्स? तो नीचे से मार्केट में बुलिश मूवमेंट थोड़ा स्ट्रांग होने वाला है। साइडवेज Sideways. No. What you understand, even after a lot of people getting trapped here, accumulation. Okay, even after a lot of people getting trapped here and market coming down, market actually did not go below this point, which means there's a lot of buying interest which has come up. And now if you see an up move, that up move will be very fast. Okay, so what does it mean? A running flat के बाद जो up move आता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, रनिंग फ्लैट के बाद जो अप मूव आता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि वो पहले इंडिकेट कर देता है कि भाई हम इसको गिरने ही नहीं दे रहे बुल्स इसको, इसीलिए तो ये ऊपर ही खत्म हो गया, नहीं तो नीचे तक आता, राइट? क्योंकि यहाँ तो लोग ट्रैप भी हुए थे, फिर भी ये नीचे नहीं आया। सो आफ्टर अ रनिंग फ्लैट यू सी अ वेरी फास्ट अप मूव। ओके, सो गाइस, हैव यू मेड नोट ऑफ ऑल दिस? Yes. Okay. Yes, sir. Bro, can you repeat everything like in summarized form for like a regular, expanded and सो सी, हाँ ओके ठीक है। नॉर्मल देखो, नॉर्मल में क्या होता है कि ए बी सी 335 वेव, सी वेव्स गोज बिलो है, बी टर्मिनेट्स बिलो स्टार्ट ऑफ वेव है, देन देयर यू हैव दिस एक्सपैंडेड फ्लैट। एक्सपैंडेड में क्या होता है कि ए के ऊपर चला जाता है, बी वेव्स गोज अबव स्टार्ट ऑफ ए, एंड ऑल्सो सी वेव्स कम सब्सटैंशियली डाउन बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रैप्स, दैट्स व्हाई इट कम्स सब्सटैंशियली डाउन। ओके, रनिंग फ्लैट में क्या होता है कि दो बी वेव्स गोज above start of A, but C wave doesn't even touch A, so that's why it shows a very bullish nature. In all of this, always C wave will have a momentum divergence. You will always see momentum divergence. Okay, all of this. Okay, so that is summary. भैया तीनों में डिफरेंस, जब वो मूवमेंट बी से सी हो रहा है तो तीनों में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंट्री एंड स्टॉप लॉस क्या है? ओके, सो देखो जब बी से सी हो रहा है तो आपको पता है कि ये अब ये जैसे है, सबके बाद क्या है, ये अगर ये वेव खत्म होगा उसके बाद सबके बाद क्या होगा, आपका एक अप मूव आएगा, क्योंकि ये करेक्शन था। ठीक है, तो अप मूव है सब, तो आपको बस पता है कि अप मूव आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ से वापस हायर टॉप बनना देखो, तो आप यहाँ पे अगर वापस एक ग्रीन कैंडल आता है, हियर यू बाई, यू कीप ए स्टॉप लॉस हियर। ओके, दैट्स द एंट्री। बट एनीवे, नहीं बी हमारा एंट्री है, बी सी नहीं। बी तो वो आपका वो हो गया फेल ब्रेकआउट वाला। तो जैसे ही आपका ये ब्रेकआउट का लेवल था इसके शॉर्ट किया है, बी जिन्होंने बी पे शॉर्ट किया है बी पे आप नहीं शॉर्ट कर सकते हो, बी पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता थोड़े ना है कि बी के बाद ये नीचे हो सकता था ना कि ऊपर चला जाए। हाउ विल यू शॉर्ट एट बी? यू डोंट नो, इट्स अ ब्रेकआउट, हाउ कैन यू शॉर्ट हियर? प्रैक्टिकल बातें करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ बी पे आपको, आप रियल मार्केट में विल यू शॉर्ट एट बी? यू विल ऑलवेज लुक एट बाइंग, you cannot short, you will short only once it closes again below this. सर बट उस केस में जो हमारा ए का एंट्री पॉइंट था वहां से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं क्या इसको? वहां से तो नीचे आ रहा है ना, एंड वहां पे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं इट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट, राइट? नहीं, यहाँ पे you cannot short again because since it is a ABC flat formation, you are knowing that this is the last leg. Okay, so after this you will be expecting a big up move, because again here a lot of people would be going a break ki breakdown ho gaya, they will short and they will all be trapped and you'll see a big up move. No, that's the benefit of eliott wave, guys. No, he was saying when B is going down towards C,
and it just crossed the A start level, then should it confirm that it's a downward move? Can you come again? When B is going downwards towards the C and it just crossed the start of A, yes, that's where I said confirm that it's a downward? yes. Once, because this is a breakout, the moment it crosses below this breakout level, you know now if it is closing below this, then the breakout has failed. Okay, so then this is where you can go short by keeping a stop loss above this breakout level. Okay, so you can short here and you can keep a stop loss here. Guys, this we will cover in advanced anyway. Don't worry about it. Right now, let's focus on the theory One part. question. This theory can be used in singularity, or we need other confirmations as well? No, Elliott wave you can use all alone. No need of everything, because it takes care of everything. See, it is taking care of people getting trapped. It takes care of momentum divergence. So Elliott wave is, that's why I love it. Got it. I love Elliott. The only problem with Elliott wave is now you need to work with Elliott waves for a very, देखो Elliott wave जब बन जाती है तब पता चलता है कि बन गई है, right? जब तक बना नहीं, how do you know it? Like I said ना कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता तो ये हो जाता है zigzag और ये impulsive, तो how do you know? Okay, so risk management becomes more important when you are following Elliott waves, and then you should be very clear that okay, because the Elliott wave gives you very clearly the risk management. अब जैसे 1 2 3 4 5 है तो you already know कि हाँ ये wave 2 जो है 1 के 0 के नीचे नहीं जा सकती. The moment it goes below 0, you know that you are wrong. You should exit. अब उसके बाद भी अगर आप होल्ड करके बैठे हो, then that is your fault, not the fault of Elliott wave, right? So at the point C in the leftmost chart, इसमें candles psychologically बहुत बड़ी-बड़ी दिखेंगी. Yes, obviously. Candle, yes. Yeah. So they will also act as a psychological trap. Exactly, they will, and that's why you will have to see na. And after that also, if you see again coming back and you see higher top, higher bottom, and you see already 5-way movement is complete, then in that case you can go long. Then even though the whole market will be going short, you can go long. That's what I do at times. Yes, absolutely. यहाँ पर वो bearish हरामी वाला trap भी बन रहा होगा, because one red candle, another red candle. Yeah. See, all of these things are interconnected. Okay, all of these things, everything in technical analysis, every theory is interconnected. That's why you should know all. Okay, so that you can make the most right guess where the market will go. Okay, even after that, if you go wrong, then it's fine, but you should know everything, and then you should use proper risk management. Okay, so guys, ये समझ में आया? हरामी वाला चीज समझाइए थोड़ा. नहीं वो बाद में समझते हैं यार, छोड़ो अभी. ठीक है. एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इलियट वेव जो है वो स्टॉक लेवल पे ज्यादा एक्यूरेट होता है देन कि इंडेक्स लेवल पे? No, index also follows Elliott wave. It's not like that. Stock index, everything, commodity index, everything. technical analysis में आप जो पढ़ते हो वो हर जगह applicable है equally. लेकिन जैसे कि मैं बेसिक एक बार कहीं पढ़ रहा था तो इलियट वेव के बारे में बोल रहा था कि सपोज करो एप्पल का स्टॉक है तो बिगिनिंग में सिर्फ बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो एक अप मूव आता है, फिर थोड़ा प्राइस करेक्शन हुआ, बाद में सारे इन्वेस्टर. गाइस देखो, आप लोग अब जा रहे हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे जाते हैं. प्रैक्टिकल विल कवर इन एडवांस. ठीक है, जब तक पूरी थ्योरी नहीं पता होगी, हाउ यू विल इन्वेस्ट. ओके, so let's first understand the theory and then we'll discuss, apply that theory in real market in advanced course. Okay, advanced में देखो मोस्टली मैं यही सब करने वाला हूँ. चार्ट पे ही बातें होंगी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन या इनफैक्ट मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रेजेंटेशन एडवांस का बनाया भी नहीं है, बिकॉज़ मोस्टली आई विल बी यूजिंग चार्ट्स ओनली इन एडवांस. ठीक है. तो आशुतोष स्लाइड में का दूसरा टॉपिक लीजिए सर. हेलो ये लंबा जाएगा यार, वी लेट विद तो अभी समझो स्टार्ट हुआ है, टेक्स टाइम. लंबा जाएगा, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें. हाँ गाइस बोलो. हेलो. हाँ. If you see the bank nifty chart of Friday, let's leave that. First, let's focus on theory. Let's complete it, guys, and then we'll go on the chart part. Okay? Let's not. पहले खत्म करते हैं, नहीं तो पता खत्म नहीं होगा. No, it is related to this one only. Theory only. Yes, I can see this extended flat pattern forming in the bank nifty 5-minute chart. एक मिनट guys, just believe me. Let's complete it. Once we'll complete it, most of your doubts will be solved. Else, we'll keep running front and back. Okay? वो बोला जाता है ना, ज्ञान पहले पूरा कर लेना चाहिए. One suggestion, आप theory complete करके उसके बाद उसको practical application दिखाएंगे, शायद समझ में.
एग्जैक्टली, तो वही तो प्लान है यार, पहले थ्योरी खत्म करे फिर, लेकिन थ्योरी खत्म तो करने दो। ठीक है, चलो भाई, सो ये हमारा फ्लैट फॉर्मेशन खत्म हो गया। ठीक है, और हमारा जिगजैग खत्म हो गया। अब क्या So आता है all उसके these बाद? flat corrections are part of corrective waves only, right? Second type of corrective These wave. are all corrective wave we are discussing. Okay, now let's So focus. so there could be a reverse trend after this corrective wave. That's what Yes, the objective. Okay. now let's focus on the next and the most important pattern in market, which is actually which will give you time and opportunity to trade, and which most of you are also aware about, are the triangle patterns. Okay, so next is a triangle pattern. अब triangle pattern बना के दिखाता हूँ. Okay, देखो ये बनाते हैं हम अपना बुल मार्केट पैटर्न होते हैं. ठीक है, और एक है बेयर मार्केट पैटर्न. ठीक है, सो देखो बुल मार्केट पैटर्न सबसे पहला होता है आपका असेंडिंग. ओके, असेंडिंग ट्रायंगल होता है. असेंडिंग कैसे हुआ है, ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, ये असेंडिंग हो गया. अब ये भी आपका 3-3, ये ट्रायंगल पैटर्न हमेशा ऐसा होता है, ए बी सी डी ई. ठीक है, ये 5 वेव में होता है ट्रायंगल पैटर्न. ट्रायंगल पैटर्न इज ऑलवेज इन 5 वेव्स and each wave is in 3 wave. So A 3 wave होगा, B 3 wave होगा, C 3, D 3, E 3. ओके, अब ये बनता कैसा है बुल मार्केट में, ये आपका ऐसे यहाँ से कहीं आया. ठीक है, कंसोलिडेट हो रहा है. ये बना A, फिर बना आपका B, फिर बना आपका C, फिर बना आपका D, फिर बना आपका E, और फिर यहाँ से ऊपर. ये हो गया आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बुल मार्केट में, ए बी सी डी ई. ठीक है, ये हमेशा 3-3-3-3 पैटर्न होता है. ठीक है, गॉट इट गाइस? नाउ इसमें जो ये आपका एबीसी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, चलो बाद में होता है. एनीवे, हाँ अभी थोड़ा सिंपल रखते हैं. सिमिलरली ये आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस है, तो ट्रायंगल पैटर्न क्या है, मोस्टली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है. सो देखो मार्केट में जो पैटर्न्स होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं. एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, एक रिवर्सल पैटर्न. ठीक है, सो ट्रायंगल पैटर्न इज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके, whenever you see a triangle, it means what? You see the prior trend, the triangle will always end in the direction of the prior trend. Okay, always. So यहाँ से ट्रेंड आया, अब ये देखो, ये हो सकता होगा कि ये 5 वेव कुछ मूव रहा हो, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ये ऊपर. ठीक है, सिमिलरली ये सेम चीज आपका बन सकता है बियर मार्केट में भी. ठीक है, बियर मार्केट है. ये बियर है. ठीक है, सो बेयर मार्केट में क्या होगा, प्राइस ऊपर से ऐसे आ रही होगी. ठीक है, अब ये ऐसे 1 2, देखिए असेंडिंग ट्रायंगल आपका बना. ए, ठीक है, ए बी सी डी ई, नीचे मार्क कर देता हूं मैं. ये 0, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई. सिमिलरली यहाँ पे ये ए बी सी डी और ई. I think we will need one more class here guys for intermediate, because Elliott wave will take time. It will take a lot of time to understand. ठीक है, so you guys understand? तो ये आपका ट्रायंगल पैटर्न, ये असेंडिंग ट्रायंगल है. जैसे ये असेंडिंग क्यों था कि ये नीचे से देख रहे हो, फ्लोर जो है इसका बेस, ये ऊपर जा रहा है, राइट? सो ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया. सिमिलरली आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है. डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, जो आपका टॉप है ये ऐसा कुछ होता है. ठीक है,
This can be horizontal also. Lower line can be horizontal. This would be descending. So उसमें कुछ कैसा होगा? A, B, C, D, E, breakout. Okay. Similarly इधर साइड, ठीक है, इसमें बस क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, A, B, C, D, E, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग था। फिर आपका होता है कॉन्ट्रैक्टिंग या सिमेट्रिकल। उसमें क्या होता है, ये दोनों जो होता है ना, ये ऐसे हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा है प्राइस, ठीक है। गाइस ये देख के आपको कुछ लग रहा है क्या कि आपने ये सब कहीं और देखा हुआ एलियट वेव के अलावा? वेज पैटर्न, एग्जैक्टली, ठीक है। वेज है, फ्लैग है, पेनेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है नॉर्मली यहाँ पे जो ये डिसेंडिंग होता है, एक्चुअली कुछ काफी लोग इसको बोलते हैं फ्लैग। जो ये सिमेट्रिकल होता है ये हो जाता है पेनेंट। ये जो ऊपर की साइड होता है ये हो जाता है वेज। ओके, सो यू सी ऑल सिंपल। अब बस इलियट वेव का फायदा क्या होता है कि ऐसे आपको वेज समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको अगर दिख रहा है 3 वे पैटर्न है, तो अब जैसे वेव आप देखते हो ऐसे नॉर्मली वेज, तो आपको पता नहीं होता ना कि ब्रेकआउट कब मिलेगा, राइट? आपको दिक्कत होती है, आपको पता ही नहीं होता साला ब्रेकआउट आएगा कब। सिमिलरली आप फ्लैग देखते हो तो आपको पता ही नहीं, लेकिन इलियट वेव से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप पहले मार्क करो A B C D E, जब तक E खत्म नहीं होगा तब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो जैसे ही E खत्म होगा यू नो कि हाँ अब ब्रेकआउट आ सकता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इलियट वेव। नॉर्मल जो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी है उसके हिसाब से वे वेज है, बट यू नेवर नो वेज में कब ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। अब इलियट वेव अगर आप जानते होगे तो आप उसको यहीं पे खरीद सकते हो, राइट? ये स्टॉप लॉस डाल के। आप अगर नॉर्मल क्लासिकल थ्योरी से देखोगे तो यू विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, राइट गाइस? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलियट वेव। गॉट इट? सर एक क्वेश्चन है सर, ये इलियट वेव डेली रेगुलर में ऑन अ डे टू डे बेसिस यूज होता है क्या? या यू कैन यूज इट ऑन डे टू डे बेसिस। सर ये ऊपर वाले फ्लैग में ई वेव नीचे वेज में ये जो ई वेव है वो नीचे भी तो आ सकती है सर? हाँ नीचे आ सकती है, लेकिन सी के नीचे नहीं जाएगी। ओके सर एक क्वेश्चन था, तो ये कितना % काम करेगा सर अगर सी डी Iliad के wave ऊपर always चला works here. If Iliad wave, this is the only thing which works 100% of time. Okay, but depends on your interpretation. If you are wrong in your interpretation, see what is the problem with Iliad wave? The problem with Iliad wave is you cannot interpret. I'll give you an example. Okay, I'll just give you guys an example. सर रिलायंस के चार्ट पे एक बार आप चेक करके चार्ट चेक करेंगे, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ले फिर चार्ट्स पे ही जाएंगे, तभी तो समझ। जैसे हम पहले गए थे ना इंपल्स वेव, पहले डिस्कस किया, थ्योरी किया, पहले ये पूरा थ्योरी कर ले फिर हम चार्ट पे जाएंगे। देखो कोई एक वॉलेटाइल स्टॉक का भी प्लीज किसी को बता yes दे। any stock, you guys just pick up any stock, okay? It doesn't matter stock commodity, रिलायंस okay? Sudarshan Chemical. Now let me ask you guys a question. Now guys you tell me, अब यहाँ पे will you buy or sell as per Elliott wave theory? Bye. Damn sure, sir. Depending on the trend, we will take the call. I'm not saying, see what is the problem with Elliott wave, I'll tell you. टाइम फ्रेम क्या है सर इसका? Whatever time frame, it doesn't matter. देखो ये भी हो प्रॉब्लम क्या है, सकता, ये भी हो सकता है कि ये एक किसी एक वेव का फर्स्ट लैग हो तो हो सके। exactly, see that is the problem. अब देखो all of you mostly will see this and you will get excited, करे वाह सर ने कल ही इलियट पेपर आया था, अब तो ये हो गया 5 पैटर्न 3 पैटर्न, चलो खरीद लें। बट नो, ये भी तो हो सकता है ना कि ये फ्लैट फॉर्मेशन का फर्स्ट वेव हो और ये वापस ऐसा कुछ बने और फिर ये वापस धड़ाम से नीचे आ जाए, बन सकता है, पॉसिबल? 100%. Yep, of course. Right now do you think can you buy here? Not sure. Exactly, बिकॉज ये हो सकता है कि पूरा ये जो पूरा इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। अब ये हो सकता है
कि ये जो पूरा है ये वेव ए हो गया, ये पूरा वेव ए हो गया, और हो सकता है कि ये पूरा वेव ए के बाद ये एक वापस ऐसा 3 वे पैटर्न बने और फिर ये वापस ऐसा। तो अब आप बोलोगे कि इलियट वेव गलत है, नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन गलत था, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं WXY wave, which is complex correction. So W wave was composed of a flat formation, X wave was composed of a zigzag, and Y wave was also composed again of a zigzag. Now this zigzag can also have another flat formation. Okay, so this is why this is called WXY or a complex correction. So got it, guys? So Elliott waves works 100% of time. Okay, but then the only problem with Elliott wave is you have to be very pro and you should have a lot of experience, then only you will be able to actually identify, else you will not be able to. Okay, so Elliott wave में थोड़ा खुद को टाइम देना, पहले ही स्टार्ट मत करना Elliott wave पे ट्रेडिंग। ओके, पहले आई विल से कि कुछ दिन बस जो अपनी ट्रेडिंग है Elliott wave के हिसाब से अगर आपको करना है, पहले आप आइडेंटिफाई करना, देखो आपकी जो आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स ऑन चार्ट, see how good you are, and it will take time. It took me almost 6 months to 8 months to actually be able to take decisions on Elliott waves. Okay, so it will take a bit of time. Now the only possible thing you could have done here, okay, यहाँ पे जैसे अब आया था, so Elliott wave के हिसाब से अगर आप लॉन्ग है तो बस आपको ध्यान में एक चीज रखनी है कि अगर हम यहाँ पे लॉन्ग गए, so you will keep this as a stop loss. जस्ट इन केस से ये गलत हो जाता है, देन यू नो कि अच्छा हो सकता है फिर ये जिगजैग फॉर्मेशन हो रही है तो आप गलत प्रूव हुए, आप निकल गए। तो इलियट वेव वर्क्स ऑल द टाइम, द ओनली थिंग इज यू स्टिल हैव टू मैनेज योर रिस्क। आपको अपना स्टॉप लॉस तब भी रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे ब्लाइंडली खरीद लिया करे यार कल ही सर ने पढ़ाया था अब तो ये बेंच बहुत ऊपर जाएगा, नहीं, यू पुट अ स्टॉप लॉस सो दैट इन केस कि ये गलत हुआ, सो यू विल बी आउटस्टेड, यू विल बी आउट ऑफ द ट्रेड एंड यू विल नॉट मेक मच लॉस। हो सकता है पहले ये 5 वेव या 535 बना रहा हो, पहले ये 5 खत्म करे फिर 3 वेव में ऊपर जाए, राइट गाइस? सो गॉट इट? Sir, what is the minimum time frame we should? Any time frame in tick by tick data also follows Elliott wave. Okay, thanks. सर बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? Now if you will ask me how I use Elliott waves, I tell you honestly, I use Elliott waves to do my long term investing. Like Tata Motors, on Elliott wave it gave me a buy last year around June. I bought it somewhere around 92 or something. Futures में मैंने 3-4 महीने रोल ओवर किया and I made lot of profit. 10-20 lot I rolled over based on Elliott wave just. And Ashok Leyland, that was another stock, because the whole auto index on Elliott wave theory gave me a signal कि yes I should go long. I bought Tata Motors, I bought Ashok. Why only Tata and Ashok? Because these two are the most beaten up stocks. So I like if the Elliott wave is giving me entry on index level also or also on the stock level, I totally went in. चलो जो इसको अब खरीदते हैं. 5, 6, 7 months I got the third wave and it was like awesome money. So, सर आपने जो अभी पोर्टफोलियो बनाया है उसमें एक आध है ऐसा इलियट वेव को फॉलो करता है? इलियट वेव सबको ही, सारे वेव्स फॉलो करते हैं, सारे स्टॉक हर सेकंड फॉलो करते हैं, ठीक है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है गाइस, सो ये आपका हो गया। एक और सजेशन, जैसे हम डेली ट्रेडिंग करते हैं ना, उस वक्त आप जब लेते हो कोई ट्रेड इलियट वेव पे बेसिस, सो इफ यू कैन टेल ऑन दैट at that moment. I do tell. अभी आज तक क्लास नहीं हुई थी तो I was not telling because तो आगे people start asking a lot of question and trading becomes teaching. So now class we have done, so now people will understand also. Okay, so it will be beneficial. So guys, so this is now complete. Okay. So one small question. Yeah. So how to practice this elite wave? Open charts, practice, try to mark. Okay. अलग अलग कमोडिटीज एंड ऑल, घर बैठो डेली 1-2 घंटे 3 घंटे मार्क वाक करो, देखो, ठीक है, एंड देन सी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस। हां, ये रोल ओवर क्या होता है? रोल ओवर यार होता है करंट मंथ का फ्यूचर लिक्विडेट करके नेक्स्ट मंथ का खरीदना। ओके सर, ये चार्ट तो स्टडी कर लेंगे घर पे, बट मार्केट में उसी टाइम पे यूज करने पे जैसे ये थोड़ा टाइम लगेगा यार, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। सी just understand na yaar guys, one thing, you guys have studied for like
18, 19 years of your life, then you guys are working, na? You guys all are must be working somewhere doing some profession. So after 18, 19, 20 years of working, you are doing a profession. So give that much, not that much, at least some time to markets also. Okay, it will take time, obviously. You will learn, you will apply. Okay, you will learn something more, then again you will apply, and that's how you will be good. It takes time. Okay, I'm trading for 6+ years, but it took me almost 1.5, 2 years to be actually, good at few things, and I'm still learning a lot of things. Okay, so it takes time, and give time to things. सर एक क्वेश्चन सर जो एक आपने बोला स्टार्ट तो स्टडी कर लेंगे, लेकिन वही वो इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं कैसा पता चलेगा? जैसे हम बहुत चार्ट्स देख लेंगे। चलो अभी चार्ट्स देखते हैं ना कुछ, ठीक है? सर अभी कुछ स्टार्ट चार्ट्स कहाँ देखेंगे। से? सर ओएनजीसी का देखो ना सर रिलायंस का एक बार देखो उसमें। सर उसमें एंट्री Corrective- एग्जिट और स्टॉप लॉस का भी बताना प्लीज। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सका तो प्लीज कोफोर्ट्स का if you can see, because there's lots of volatility there. So सर थ्योरी पहले anyone you tell me, I'll just pick it up. सर रिलायंस 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 इलियट वेव की थ्योरी तो पूरी करा दो पहले। इलियट वेव थ्योरी हो गई यार, थ्योरी सर खत्म। फर्स्ट वेव कहाँ से स्टार्ट होगी? बताइए ना सर 2 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? हाँ यार ले लो, मैं भी सोच रहा हूँ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक काम करते हैं 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। मेरा भी कमर दर्द होगी भैंचो बैठे बैठे। सर इसके बाद बताना पहले फर्स्ट वेव काउंट कैसे हाँ स्टार्ट? वो सब बताएंगे, वो अभी करेंगे। 4:15 हो रहा है गाइस, लेट्स मीट एट 4:20। ओके 5 मिनट का ब्रेक लो सबको, एंड लेट्स मीट एट 4:20। ओके सर 10 मिनट का ब्रेक देके एक्सरसाइज दे दो कोई। एक्सरसाइज आके करेंगे, पहले थोड़ा चार्ट्स देख ले फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:20 पे लेट्स रिकन्वीन। ओके
Hello guys. So can you guys hear me? So guys, can you hear me? Guys, are you guys back or not? Break is over. Guys, I can't hear you guys. Can you guys just say yes or no? Okay. Yes, sir. Yes, yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, yes. yes. Was waiting. Yes, sir. I thought the people are still not back. Yes, वापस म्यूट कर दो भाई, वापस कर दो। अब yes, yes. टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो दैट आगे वापस. Funny I was confusion. messaging अभी, तभी जाके मैंने देखा कि everyone is saying we can't hear you. So I was like okay, मेरी गलती है। ठीक है guys, so सर एक क्वेश्चन है। नहीं यार, अभी क्वेश्चन थोड़ा बस एक हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ करेक्टिव वेव यहाँ एंड हो चुकी है? हाँ तो वही तो आइडेंटिफाई करेंगे ना, अभी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, करेंगे अभी। ठीक है, चलो अब स्टॉक्स देखना शुरू करते हैं। सो आप लोग को अभी चार्ट वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? यप ओके, सो अब चलो मैं खुद से अपने हिसाब से चार्ट उठा लेता हूँ, नहीं तो सर बैंक निफ्टी उठा लो सर। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम नहीं होता है। ओएनजीसी का लो ना। ओके गोल्ड सर, गोल्ड या क्रूड बेस्ट है? गोल्ड में तो यार पता है परफेक्टली वर्क करता है, इसलिए गोल्ड क्रूड उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एकदम लाइक गोल्ड कमोडिटीज में तो इलियट वेव लाइक सर बट समझ आ जाएगा ना बिगिनर उसमें, डिट्टो वर्क करता है। ओएनजीसी लो समझ आ जाएगा। चलो मैं लेता हूँ सर एकदम गंदा स्टॉक लेता हूँ। चलो भारतीय एयरटेल ले लेता हूँ, भारतीय एयरटेल लूंगा मैं, कभी उस पर ट्रेड नहीं करता, ठीक है, बाहर कभी मैं भारतीय एयरटेल पे ट्रेड नहीं करता, वही लेते हैं। पावर चलो, you guys can see भारतीय एयरटेल चार्ट? यप यस बहुत गंदा चार्ट है, देख के घिन आ जाती है। देखो अब सबसे पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ ना, इलियट वेव अगर मुझे देखना होता है तो मैं हमेशा लाइन चार्ट बार चार्ट फॉलो करता हूँ, क्योंकि बार चार्ट में थोड़ा इजी होता है ये सब। अब ऐसे कैंडल स्टिक में विक विक बनती है, बार चार्ट में क्लियरली दिख जाता है लो ये है नॉट। सो आई ऑलवेज यूज बार चार्ट व्हेन आई एम यूजिंग इलियट वेव, आई प्रेफर दैट। अब देखो सर इसे जूम कर लीजिए थोड़ा चार्ट को। नहीं मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने वो जूम आउट किया। ठीक है, अब देखो गाइज, जैसे आप काफी लोग ये पूछ रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट? यस सर। बिगिनिंग कहाँ से करना है, तो बिगिनिंग कहाँ से करना होता है, जैसे कोई भी चार्ट खोलो, जो सबसे साइड में स्विंग लो या स्विंग हाई है, ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट लेफ्ट में,
वहां से आप स्टार्ट कर लो, दैट इज द वे। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी कहाँ चल रहा है, हाँ अभी अभी ये यहाँ पे है, मुझे देखना है तो मैं यहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगा। ये सबसे नियरेस्ट में स्विंग लो है, राइट? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ से देखते हैं इसमें कुछ बन रहा है इलियट वेव, क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है। And we can use any like 1 day, 5 minutes, anything, 5 right? मिनट, Okay, 3 cool. मिनट, 4 मिनट, व्हाटएवर यू कैन Depends यूज। on what we want to trade. या तो अब देखो इसमें कोशिश करते हैं वेव मार्किंग करने का। अब देखो एक और चीज है, इलियट वेव क्लियरली समझ में आ रही है तो मार्क करो, नहीं समझ में आ रही छोड़ दो, सिंपल। नो नीड टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अब जैसे भारतीय एयरटेल में देखो, अब मुझे देख के 1-2 समझ आ रहा है, 3-4 समझ में आ रहा है, 5 हो गया। अब जहां तक मुझे लग रहा है ये वेव 1 है, ये पूरा उसका अब देखो मार्क करते हैं, चलो यार बढ़िया है, ठीक है। इसकी मार्किंग अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये 5 वेव पैटर्न जो मुझे दिख रहा है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, और ये है 5th वेव, ठीक है। अब इसमें देखो करेक्टिव वेव मार्क करते हैं। इसमें देखो करेक्टिव वेव, ये देखो ये फ्लैट फॉर्मेशन है, ये है ए, देख रहे हो, ये 1-2-3 वेव में ऊपर ABC वेव है, ठीक है। सिमिलरली अब इसको और छोटा करूंगा ना, आर्ली में जाऊंगा तो इसमें देखो 5 वेव मिल जाएगा मुझे, 3-3-5, ठीक है। वो एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा आपको भी समझ में, देखो फिर यहाँ पे 1-2-3-4, ठीक है। और फिर ये एक, फिर 1-2-3, ओके। सो ये है WXY, ठीक है। ये बना 1-2-3 W, 1-2-3 W, ये बन गया Y। अब ये देखो ये W जो है पहला 1-2-3, ये फ्लैट है, इस W में ये पहले कॉम्प्लेक्स वेव करेक्शन है, ये देख रहे हो, ये पहला क्या है, ये फ्लैट फॉर्मेशन है। फिर ये एक जिगजैग है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखो इसमें दिख रहा है ये 1-2-3, आप लोगों को दिख रहा है ये, देखो ये Yes. ABC, दिस इज फ्लैट फॉर्मेशन, देख रहे हो, ऊपर गया नीचे तक आया, ठीक है। और ये पूरा 1-2-3 दिख रहा है आपको, 1, ये देखो ये 1-2-3 दिख रहा है आपको, एक बार जूम इन करना सर। से आगे जूम, देखो दिखा, ABC इधर दिखा, और ये पूरा देखो ये 5 वेव में होगा। अब इसको ये देखो, ये आपको दिखेगा 1-2-3-4-5, ये 5 वेव है, ये पूरा फ्लैट फॉर्मेशन है, 3-3-5, ठीक है। उस फ्लैट फॉर्मेशन में भी फ्लैट फॉर्मेशन है, और उस फ्लैट फॉर्मेशन में एक जिगजैग भी है, और ये पूरा इसीलिए कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गया WXY, ठीक है। अब ये मार्क क्या, अभी देखो अभी इसका हम ये भी डिसाइड करेंगे इसका ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 1-2-3-4-5, ये पूरा, इसको थोड़ा छोटा आप करें, अब देखो इसका कैसे थर्ड वेव सबसे ब्लर बड़ी हो रहा है। ब्लर तो यार अब तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन पे है, सबका ब्लर हो रहा है क्या? नहीं इट्स ओके। नहीं सिर्फ जूम इन ब्लर करना हो डिपेंड रहा है, ब्लर हो रहा है। ओके ओके भाई अब देखो कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोगों का है, वो आपके यार इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड अपना करता एयरटेल पे शिफ्ट कर लो यार। है, ठीक है। अब मेरी ओर से HD जा रहा है, अब आपका कितना पिकअप कर रहा है दैट तो यार बेस्ड ऑन योर, थर्ड वेव डार्क सबसे मोड में बड़ी नहीं कन्वर्ट कर होनी लो। चाहिए। Bro, can we use candlestick? चलो चलो Start चलो होगा। कैंडलस्टिक यूज कर लेते तो चल जाएगा। बाकी सब अगर वीडियो बंद करेंगे तो इम्प्रूव होगा। ठीक है। अब गाइस देखो ये पूरा जो मुझे अब समझ में आ रहा है, ये अब ये दिख रहा है, ये साइडवेज ही दिख रहा है, ये कोई ट्रेंड तो दिख नहीं रहा है, ये यहाँ से 5th वेव के बाद से, राइट। तो अब मुझे क्या समझ में आया कि हो सकता है कि ये पूरा वेव 1 है ऑफ लार्जर डिग्री अपवेव, जिसका ये साइडवेज मूवमेंट अभी चल रहा है, ठीक है। ये हो सकता है 1-2 और फिर एक 3-4-5 बने, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि थर्ड वेव में एंट्री लेने के लिए अब मैं इसका ट्रेडिंग में कैसे यूज करूंगा, मैं देखूंगा इसका ब्रेकआउट। जब इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो अब मुझे पता है थर्ड वेव मिनिमम सबसे छोटी तो नहीं होती है, तो ये फर्स्ट वेव अगर इतनी बड़ी है तो थर्ड वेव जब भी आएगी ये इससे तो ज्यादा ही मूवमेंट देगा। तो से अगर थर्ड वेव आती है और इसके ऊपर निकलती है, तो मैं एक बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, ये कितने पॉइंट का था फर्स्ट वेव, ये अराउंड 315 पॉइंट का था। तो आई कैन से कि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर जाएगा, से मान लो यहाँ से थर्ड वेव स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ से 315 पॉइंट मिनिमम बना लूंगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा 315 से तो ऊपर ही जाएगा। अरे आ गया, यहाँ से भी स्टार्ट होता है थर्ड वेव। मैं यहाँ से 315 पॉइंट बना लूंगा, मिनिमम उतना तो जाना ही चाहिए। एंड फिर से जब भी यहाँ ब्रेकआउट रहेगा, मैं इतने का टारगेट, से मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट डे 615 620 पे, सो आई कैन से अच्छा मुझे रिस्क रिवॉर्ड से 5 रुपए 2 रुपए का मिल गया, तो आई से 685 का टारगेट रख लूंगा, स्टॉप लॉस छोटा सा डाल दूंगा, एंड देन आई विल बी एबल टू बुक दिस मच मनी, बिकॉज मिनिमम तो इतना जाएगा ही, थर्ड वेव cannot be smallest. So that's how you use eliott wave. More on the application part we will understand in advanced course, but अभी आप ये मार्किंग करना सीख लो, तो आप समझ रहे हो ना, आप एक विजुअलाइज करना सीखो कैसे देखना है इलियट वेव को, क्या हो सकता है। अब ये पूरा जो इसका कलर अलग कर देते हैं, ये एक बड़ा अलग से वेव हो सकता है विच कैन बी ए डिफरेंट वेव। सो इसमें देख रहे हो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव के अंदर 5 वेव है, उस 5 वेव के अंदर जो करेक्टिव वेव है वो भी हमने मार्क करी है। सो दिस इज हाउ इलियट वेव वर्क्स, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा का पूरा, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ करेक्शन। सी लुक्स लाइक इट, इफ यू सी दिस इज होल, लुक्स लाइक ए करेक्शन ऑन इवन मच लार्जर टाइम फ्रेम, ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, ठीक है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखो, तो ये तो एक और करेक्टिव वे भी दिख रहा है, राइट है कि नहीं गाइस। जो हो सकता है कि अब यहाँ पे आफ्टर consolidating for this long period now Airtel might give a breakout, getting माय पॉइंट गाइस। तो हम बिगिनिंग पॉइंट कैसे मतलब बिगिनिंग हम assume करते नियरेस्ट हैं? बताया ना, मैं नियरेस्ट से शुरू करो, तुम्हें उससे ही मतलब रखना है। वैसे तो बिगिनिंग बिगिनिंग बहुत बिगिनिंग में चले जाएगा इंसान, वो नहीं करना है। हमेशा नियरेस्ट जो आपका स्विंग हाई स्विंग लो है टूल वहां होता से है आप डिसाइड करो। ओके सर, एलियट वेव के लिए कोई इंडिकेटर या टूल होता है? नहीं, इलियट वेव खुद भी इंडिकेटर है यार, कोई और क्या चाहिए तुम्हें। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक बार वापस से थोड़ा Complex correction is nothing but collection of many small corrections inside a correction. That's it. Like, is So it applied in? I'm sorry. like we said, na, कि there is a flat correction, zigzag correction. Complex correction is made of a multiple corrections. So you might find 2 or 3 flats, one flat, one zigzag, things like that in a that's it. But in real world scenario, is it applied? Like, yes, it is applied. I use it on a real world scenario. I'll give you guys a very simple example how to use Elliott wave. The best way to use is, whenever you see a sideways movement, just understand one thing कि sideways है मतलब क्या है, डायरेक्शन में नहीं है। सो ये पूरा क्या होगा, करेक्टिव वेव ही होगा, चाहे जो भी हो, फ्लैट हो, जिगजैग हो, कुछ भी हो, है तो एट द एंड ऑफ द डे करेक्टिव वेव, राइट। ओके, और जब भी आपको एक ट्रेंड दिखता है तो आप सीधे समझ जाओ कि ये पार्ट ऑफ है, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, राइट। तो बस अब आप देख लो टाइम पीरियड कौन सा यूज कर, अगर वीकली है और आपको एक बढ़िया, अब जैसे ये मिल गया मुझे वीकली में, मुझे मिल गया यहाँ पे, सो आई विल जस्ट गो लॉन्ग फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग, से फॉर एग्जांपल अभी एक काम करते हैं, रुक जाओ बाहर सर कैंडल में दिखा दीजिए ना, अगर हाँ मैं कैंडल में कैसे दिखता है। no, I was asking about like those. See, guys, for example, let me complete first, okay? Let's see, for example, अभी ये चल रहा है, ओके से अभी सिर्फ इतना बना है, ठीक है, इलियट वेव एंड ऑल, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ इतने पे मार्केट है, तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये 1 2 3 4 और ये 5 है, राइट।
सो यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग ये 5 वे मूव हो गया, अब एक करेक्शन होगा, राइट? तो आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है, आप ऐसा कुछ मार्क करोगे। देखो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप क्या सोच रहे हो कि करेक्टिव वेव है, ठीक है। अब करेक्टिव वेव है तो आप इसको कैसे मार्क करोगे? ये 3 वेव होनी चाहिए, 3 3 5। कोई भी करेक्टिव वेव मैंने ऐसा तो बताया नहीं अपार्ट फ्रॉम जिगजैग जो 5 3 5 हो, ठीक है। तो ये 3 वेव पैटर्न होना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये हुआ ए बी, एक मिनट, आप इसको ऐसा कुछ मार्क करोगे, ए बी सी मार्क करोगे, ठीक है। अब देखो तो बार रिप्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Push, you normally mention Bharti is most manipulated. That's the reason you don't like it. So even the manipulators play, they cannot escape Elliott wave. No, Elliott wave is the culmination of everyone's ideas, man. So it doesn't matter a stock is manipulated or what, will always follow Elliott wave. Okay. Now let's see here what focus. Let's see what is happening here. हाँ सुबह स्पीड बढ़ा देना ऊपर से, मैं बहुत टाइम देगा। Once this is done, can you zoom in and please mark 1 2 3 4 5 and show? Yeah, I'm just zooming in right Cool. now. The reason I ask is like why we are picking a one particular candle to mark 2 or 3 or 1. So I said, no, you just pick up the previous swing low or swing high. From there you start 1 2 3 4. Wherever you start in a chart. Right. See here, this was the previous low, swing high. So I started from here. Okay, and then 1 is the low. Yeah, 0 1 2. See, it has to be in 1 2 3 4 5 is what? Impulse, correction, impulse, correction, impulse. Right? No, see, the where you have pointed to, there's a green candle, right? But right before that, there's a red wick. So why didn't we select that one? It's not like that. You don't take it. So I just marking Ah, it. You can cool. just take it. Okay. It's fine. Yeah. Okay. 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 इसको तो और फास्ट करते हैं यार, बहुत टाइम लेगा। Now see, here it is. After this correction, we are expecting a correction, and what we'll expect 1 2 3 4 5 has happened. Now we'll be expecting ki there is one corrective wave, and again it comes down. Okay. But instead of that happening, what is we are seeing that the price action is making somewhere we are seeing that there is a very strong demand zone in this region. Okay, now price is consolidating here. We can also look at it and we can say, okay, now it might be possible. And we are seeing now a breakout also with good volume. Okay. So now we can say, okay, lag raha hai ki, and always impulse waves are fast. Okay. Corrective waves are slow and, they look bad, sideways. Impulse wave are fast. Okay. They are clear cut in one direction. So now such candles are giving me confidence now. Okay, nahi bhai, it's actually an impulse wave. It is not a corrective wave, because this was a corrective wave. Okay, so now I'll change my marking. I'll say ki nahi, this is not how the marking is. Now I'll say ki okay, I think instead of ABC, this is 1, this is 2, this is 3, this fourth ended here, and now I am expecting a fifth wave. Now if I'm expecting a fifth wave, we'll talk about Fibonacci in some time, but I'm just telling you. So what happens, the fifth wave is 161.8% of the third wave. So whenever you want to find target, Elliott waves help you with that also. You see third wave. Okay, you see
Third and fourth wave ended here. Okay, sorry. Third wave started from here, 161.8%. This will be your target. So once you saw a breakout above this level, now obviously you'll be trading in, क्या बोलते हैं, hourly swing trade and all. You will take in hourly on a daily candle, not on a weekly. This is like whole 1 week time. So you would have entered somewhere at 391 and all. You could have easily made a profit of, good profit, 435 you would have booked, okay, using Elliott wave. Because 1, 2 and see this fourth wave never came in the reason of first wave. So it follows all the guidelines. So Elliott waves, you always have to evolve. You always have to keep changing your, view based on what you are seeing in the market. But what it does, it makes you disciplined. Okay, you learn to wait. You learn to change as per market. Now see, one more very important thing we can see here. We can see that this fifth wave is also composed of 5 waves. You can see now 1, 2, this was third, fourth. Now again, you can take an entry somewhere here, because see, what is the benefit of taking entry over here? You know that this will not come below 397. Okay. And this is an impulse wave. We taught to have 5-wave pattern. Until here, you would have seen already 3 waves. So you are very sure that you will always obviously see fifth wave coming. So whenever price came here, 418, okay, even you don't even need for the candle to close. If price has come 418, 418 or point something, you know that this is my stop loss, 400 stop loss. 18 point is your stop loss. The whole length of this particular, now let's remove this one. Now I know it should go 161.8%. This is third wave. It started from here. I am expecting it to go till 596. Okay, my stop loss is only 18 rupees. So I take an entry somewhere here. Okay. Easily I could have taken entry here somewhere for target of this. Okay, let's see if it hits or not. And one more thing guys, यहाँ पे जब हमने खरीदा, अगर चलो फ्लैट फॉर्मेशन हो तो भी कि मिनिमम ये तो टारगेट आपका है ही 486 का, ठीक है, मिनिमम आपका ये तो टारगेट है ही। अगर फ्लैट फॉर्मेशन हुआ तो भी आपको ये पता है ये मिनिमम तो होगा, क्योंकि चाहे रनिंग फ्लैट हो, चाहे एक्सपैंडेड फ्लैट हो, या कोई भी फ्लैट हो, मिनिमम दिस तो इट विल रीच। एंड देखो 1 2 3 4 बना के फिफ्थ पे पहुंचा देगी ये 596 तक। So you see how Elliott waves helps you to identify trade with minimum risk reward and catch such strong moves. अभी देखो 1 2 3 4 5 वेव खत्म हो गया, तो I will exit here because see this thing has come in the reason of the previous. Let me just stop it here. Why we will exit here? वो corrective wave शुरू हो गया सर वहां पे। Yeah, क्योंकि 1 2 3 4 ये देखो 5 वेव खत्म हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई रेड आता है तो 5 का 6 7 तो है नहीं, जैसे ही 5 का 6 आए, यू डोंट इवन नीड टू वेट फॉर ऑल दिस, पहले रेड कैंडल पे यू कैन एग्जिट बिकॉज कहाँ 5 वेव्स खत्म हो गए। सो यू बुक समवेयर प्रॉफिट हियर, यू बॉट एट समवेयर वेयर 418, you booked at 557, like more than 130 points profit, more than 30% profit you made. In this case, it didn't go to 161%. So that is not given. See, that is what you can expect. Like I said, nothing is 100% in market. वो projected है figure. That is your projected figure कि हम वहां तक जा सकता है, ओके, बट उसके आसपास भी गया, वहां से निकल गया तो दूसरी चीज भी तो है ना, 5 वेव बन गए उसके पहले ही, so you exit. Why will you wait for that? है ना, but you see that it has already reached in that region. 596 we are expecting. It made a high of how much? 570. 26 point बस रह गया. Fine. There is a margin of error. Third Can we step short would it always be the base, and during the fourth step we can take the call. That is the safest. Yeah, see, that is the best wave to trade, fourth wave, because until third wave you don't know whether it will be a corrective wave or an impulse wave, right? क्योंकि corrective wave भी 3 wave pattern होती हैं. Okay, so I also personally always prefer to take trade in fourth wave once fourth wave is completed, because then it is established
this is an impulse wave. So I am 100% sure that there is a fifth wave coming. Okay. Third wave, catching third wave is the longest wave. Most of the time, third wave is the fastest wave that happens most of the time. Okay, but problem with third wave is you cannot catch it. पता ही नहीं चलता कब third wave आएगी. But fifth wave is something which you can guess because जब 1, 2, 3, 4 हो गया तो obviously you know it is no more a corrective wave. It has to be an impulse wave. Okay, so obviously there will be a fifth wave. So best is to catch impulse wave, fifth wave. See, यहाँ पे when we got to know fifth wave is completed and sixth wave started, it red candle. ABC started. Correct. Sorry, ABC started. So can we take a short trade there? No, you should not. Why? You should never trade against the trend. You should let first the. See, it might happen, bro. I'll tell you one more thing. Hold on. It might happen that this whole becomes an extended fifth wave, right? Right. When do you know it becomes a? Because see, this was 1, 2. It might happen that this is 1, 2. This whole is wave 3. Then a wave 4 comes, and then again, see, this can be like something like that also. This becomes 1, 2. This becomes 3, 4, and then it goes even higher, right? It can happen. So you realize that it is a correction. Only you can confirm it if it breaks this level, right? Now, once it breaks this level, you have to see at that time what is your risk reward. Okay. See, Elliott, when you are using, you have to look at all the possibilities. You have to keep in mind 2 or 3 possibilities that can happen. Every possibility will give you different, stop loss and target. Okay, so when you trade, you should always be able to have all those possibilities in mind. That's why I said it will take a bit of time. Okay. Sir, at the point 4, the wick has touched the point 3. His 3 is high. Then why didn't we exit that at that point? Which one? At the point 4 wave. See, this is wave. Wait. I'll mark it different within 1, 2, 3, 4. You let me know where you are saying 5. Okay. Wait. And this is now different wave. 1, 2, 3, 4, 5. I know what you are saying. That's why I colored it. Now this wave 4 has not come in reason of wave 1. Okay. So that it's a part of this particular wave, impulse wave. Okay, not part of this green one. Yeah. Got it? Yes. I know it. Happens. आशुतोष वो जो 1.6 का रेशियो है, that's between fifth and fourth. That between third wave का 1.618% होता है fifth wave. Okay. Third का? So I'll tell you. If this is third wave. Okay. Okay, then you will mark here. ये आप ऐसे मार्क कर लो. आपका जो फिफ्थ वेव है वो यहाँ तक आ सकता है. ओके, थर्ड वेव के टॉप पे. तो यहाँ से करेक्शन कोई यहाँ पे वो से कहीं पे भी जाए, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आया, so you can expect something like this. It can come some, it can go even higher. Okay, if it becomes an elongated fifth wave, it can go up to here. But this is a target which you can keep in mind, 141 से 161 के आसपास तक. और ये जो target. और ये जो 1.6 है ये आया फिबोनाची के गोल्डन रेशियो. But for me, if you'll ask me, I always keep this as target, top of wave. You know why I keep this as target? Because even if it is a flat formation, I'm very sure this is 100%. This is going to come any time, चाहे कुछ भी हो जाए. Okay. So I always keep this as target. Now, if there is a breakout, so what happens? I buy 10 lots, 5 lots I'll book here. Okay. I'll keep 5 lots. If it goes up, then I'm sure that ठीक है, fifth wave confirm हो गई. Then I'll keep this as target. Okay. If it मान लो यहाँ से नीचे आ गया, then I know कि अच्छा ठीक है, flat formation है, so I'll book my 5 lot का profit, 5 lot I'll keep holding. ठीक है. अब now that flat correction can do 2 things. Either it can be a running flat, it can stop above this, and then I get a very fast move and I make money. Or either it will come down, and if it comes down, I'll trail my stop loss here to cost. I've already booked profit in 5 lot. I'll exit. The next time when it crosses, now I know, and then I'll buy at the breakout. Okay, so that's how you have to use. So in this particular example, where we can set our stop loss?
I mean, safe target probably is 100%, and the max 160 is. So see, for example, I know now here that this is 5-wave pattern happening after 4th wave was done, right? 1, 2, 3, and this 4th wave was done. Now I know there is a 5-wave going to happen. Okay, but at this point, I did not know where will be that 5th wave. Okay, but I know one thing for sure, that it will be above this point, will anyway come, right? This point will anyway come. Okay, so here when I'll buy here, I'll put my stop loss here. This is my wave 1. So this will be my stop loss, and this will be my target. So almost 1:1.5, 1.7 ka risk reward I have. Okay, so here if I buy, I can keep this. So I'll buy, say, 2 lots. 1 lot I'll book here. Okay, so 1 lot I'll book here. See, now here it's coming down. I have bought here somewhere. Right. What I'll do, 2 lots I have bought, I've kept this as stop loss. One doubt. So you will buy when the second red candle is formed, or you will buy only after the first green candle is formed? So that depends here on risk reward. Since I now know the 3 wave is completed, 4th wave is happening. Say it comes here somewhere. So in this example, it did not come, but says it comes somewhere here. Will I wait for green candle? No. My risk reward is very low. I know that if I'm wrong, I'll be proven wrong very soon with a very small loss. Right? So I'll buy here only. Because that is the decision making you have to do. You have to think about the risk. Okay, so if price comes here, I already know that, okay, max it will go, I'll be proven wrong just whenever price touches this. So my risk is very less, while my reward is this much. So if it comes here even below a green candle forms, I can take the trade. If I'll be proven wrong, I'll exit with small loss. If I'm proven right, I'll make a huge money. Okay, so that depends on case to case basis. Now one more important thing I'd like to tell you guys. फिबोनाची पे अब बात करते हैं. सर एक बार ये वापस से ये समझाएंगे क्या? हाँ, समझाते हैं. अभी बताए. देखो, जैसे ये सर ने ये पूछा कि विल आई वेट फॉर, क्या मैं यही बाई करूंगा या मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा? ठीक है. यस यस. तो मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो प्राइस फॉर्म हो रहा है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्यों प्रेफर करूंगा बाई करना? ठीक है. अब जैसे ये तो एक और बात होगी कि मैं अभी देख रहा हूँ तो आई कैन से, बट डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि इफ आई सी दिस इज माय वन, सो आई नो दिस इज माय स्टॉप लॉस बाय एलियट वेव. ओके, so if Yes, the sir. red candle is formed somewhere here, though a green candle is not there, I know कि my stop loss is very small, say, and if it is has to follow Elliott wave, it will not fall below this, right? So if it will not fall below this, I'll buy here. Okay, if I'm proven wrong, say यहाँ से correction चालू हो गया, say कि instead of going up, I bought here, and instead of it went like this and then it came down. So I'm proven wrong. Okay, I'll book a small loss. Okay. Okay, sir. No. Got it, guys? Yes, sir. So the best thing is to do is buy on the 4th wave. Yes. Because eventually it can turn out to be the second wave also अगर चार्ट चलता रहा. हाँ, मतलब अब देखो, I have the same doubt. 4th wave के confirm होने के बाद we can check our risk reward and then take the trade, right? yes. अब now see guys, now the best part coming. Okay, Fibonacci. How is Fibonacci going to help you now all the Elliott wave? अब देखो Elliott wave में someone was also mentioning earlier, Elliott wave क्या होता है? मार्केट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. What I mean by that, जब भी आपका ये फर्स्ट वेव चालू होता है, ठीक है, whenever this first wave, 1 2 3 4 5, whenever the first wave is starting, at that time still there is a lot of bad news in market. Okay, when a lot of bad news is there, people are still not sure whether a reversal has already happened or not. So when the fall happens, people again start thinking कि हो सकता है the prior trend may continue, right? So
This was prior trend, and now you see most of the people will think ना कि ये नीचे वापस सेम ये trend चालू हो गया, right? This is what you will think mostly, ठीक है? So most of the people will think यहाँ prior trend has continued, okay? So a lot of people will start shorting here, and that's why जो second wave होता है ना, it falls much more, and second wave what it does, it retraces 61.8% of first wave. So that's where Fibonacci comes in play. Okay, उल्टा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए. So second wave most of the time will retrace close to 60. Now see, this can be here, this can be here. You know, getting my idea. So second wave is furious. It's very fast most of the time. Okay, and you'll see a lot of here. You will see a zigzag formation most of the time. Okay, you will not see a triangle pattern mostly in second wave. Okay, because triangle pattern continuation pattern होती है, वो strong market में बनती है. So second wave में mostly आपको क्या दिखेगा, zigzags दिखेंगे, ठीक है, 3-5-5-3-5 formation types, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी लोग अभी श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है. Lot of people will go short. Now what will happen? I said ना कि third wave is mostly strongest. Why? Because a lot of shorts are here. So whenever you see a breakout in third, and you see a lot of gaps in third wave, जब भी आप gaps देखो ना, gaps always form in impulse wave. Gaps तीन तरीके के होते हैं, चलो gaps पे थोड़े बाद में आएंगे, ठीक है. तो lot of gaps will also form in third wave, and third wave that's why, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों का stop loss hit होगा. This will be very fast wave, very steep wave. Okay, जैसे फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट वेव है, it might be something like this, but the third wave is something very steep, slope is very steep. Okay, and then fifth wave can be also a little sloping. Okay, and the main reason is कि lot of people believe कि still अभी ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, but उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये ऊपर गया. अब फोर्थ वेव के टाइम पे क्या बात हुई कि नाउ पीपल आर ऑलरेडी knowing कि हाँ भाई, market now has changed the direction, it is an uptrend. So most of the people will be looking to buy, not to sell, right? है ना guys, समझ रहे हो? साइकोलॉजी समझो मार्केट में. फर्स्ट वेव के टाइम पे क्या था, जब ये रिवर्सल आया, ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि वापस डाउन जाएगा, इसलिए बहुत लोग शॉर्ट करेंगे, इसलिए हमें अराउंड 61.8 का रिट्रेसमेंट लगता है. बट थर्ड वेव से जब फोर्थ वेव करेक्शन होता है, तो पीपल विल मोस्टली नो कि मार्केट नाउ इज इन अप ट्रेंड एंड नोबडी विल लाइक टू शॉर्ट. ओके, पीपल विल मोस्टली लुक टू बाई. सो फोर्थ वेव करेक्शन क्या होता है ना, बहुत लंबा होता है. ओके, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ करेक्शन. गंदा करेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, बहुत अप ऊपर नीचे, ठीक है. और इसमें क्या होता है, टाइम करेक्शन ज्यादा होता है. हियर यू हैव प्राइस करेक्शन मोर, हियर यू हैव टाइम करेक्शन मोर. ये टाइम ज्यादा लेता है बट प्राइस वैल्यू कम होता है. तो इसमें अगर आप देखोगे, फिबोनाची अगर लगाओगे, तो दिस विल नॉट करेक्ट मोर देन 38%. अब दैट में भी ऊपर नीचे, बट it mostly corrects somewhere in the region of 38.2%, and it takes a long time. and उसके बाद जब ये ब्रेकआउट मिलता है, ये आपका होता है फिफ्थ वेव, ठीक है. अब थर्ड वेव कितना ऊपर जा सकता है? थर्ड वेव आप फिबोनाची लगाओ, इट अगेन गोज समवेयर अराउंड 261.8% तक जा सकता है थर्ड वेव. इट कैन एक्चुअली, दिस कैन गो अप टिल हियर, ओके, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट, ठीक है. फिफ्थ वेव गोज 161.8% ऑफ थर्ड वेव. ये सब चीजें लिख लो. This will help you in making the decision. Okay, so what we learned here, Can you please repeat the percentages? Don't keep in mind, just keep in mind na ki third wave is fast, so it might go to 261.8 also. Not necessary it will go, okay, but it might go. And you can see a lot of individual another 5-wave patterns in the third wave pattern. Okay, big 5-wave patterns. Okay, it can be an elongated third wave. Most of the time it happens. Third wave is the fastest, and fourth wave is the longest time taking most of the time. And see, all of these things I'm saying doesn't mean that it is like always right. 90% of the time that's what happens. It might also happen कि second wave कम correct हो और fourth wave ज्यादा हो जाए, ठीक है. So you guys noted this? Can't hear you.
सर वो जो भैया वो जो थर्ड वाला मूवमेंट हुआ वो जनरली फोर्थ होगा जो 161 से 261 तक जा सकता है उस रेंज में। यस और जो फोर्थ है वो जनरली कंसोलिडेशन है क्योंकि अभी बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। हाँ एग्जैक्टली एंड आप देखो फर्स्ट वेव से सेकंड फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा लोग सोचते हैं ना कि हो सकता है अभी ये बस रिट्रेसमेंट है, सो पीपल विल शॉर्ट हियर, सो दैट्स व्हाई यू सी अ फास्ट मूवमेंट डाउन, राइट। फोर्थ वेव में क्या है कि यू ऑलरेडी नो राइट कि ये अप ट्रेंड में है, तो ज्यादा लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, सो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन। सी दिस इज व्हाट, दिस इज एक्यूमुलेशन हैपन हियर। जो ये फास्ट हुआ ना, ये जो मूवमेंट जो फास्ट मूवमेंट है, इसमें एक्यूमुलेशन हुआ, बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेटेड एंड दे स्टार्टेड एक्यूमुलेट, दैट्स व्हाई यू सी अ फास्ट अप मूव। फोर्थ वेव इज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नाउ एंड ऑफ साइकिल आ गया, अब स्टॉक के गिरने का टाइम आने वाला है, लास्ट वेव है, फिफ्थ बस बची, तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स है दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स स्लोली स्लोली एंड देन कम्स द लास्ट वेव एंड यहाँ आते आते खत्म कहानी। अब फिफ्थ वेव के बाद से जब ए वेव बनती है तो फिर यहाँ पे लोग यही सोच रहे होते हैं कि अरे अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है, इसलिए ए वेव जो होता है ना वो फिर बहुत स्लो होती है, ठीक है। बट करेक्टिव वेव में इसीलिए हमेशा जो सी वेव होती है ना सबसे फास्ट, क्योंकि सेम लॉजिक लगता है। अब जैसे बी वेव हुआ, जो सी वेव बना, अब नाउ पीपल आर श्योर हियर कि हाँ भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट, क्योंकि ये ऊपर तक नहीं जा पाया, इसने नया हाई नहीं बना पाया, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से एंड यू विल सी सी वेव कमिंग डाउन एंड दैट्स व्हाई फ्लैट फॉर्मेशन में व्हाट यू सी 3-3-5 फिफ्थ वेव, 5 वेव पैटर्न हमेशा सी वेव में मिलता है, क्यों? क्योंकि हमेशा 5 वेव पैटर्न इज द फास्टेस्ट। So सर ये you जो see how all of these things are interconnected. सर Yeah. सर जो 3 से 4 की करेक्शन थी तो वो हमने निफ्टी के अंदर जो फरवरी से लेके मिड अप्रैल या मई तक देखा है, हम क्या उसको उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो एक मिनट बताते हैं, निफ्टी खोलने दो। Can you please confirm the percentages for each wave, and that, so that we can note it down? Yeah, so see, first, second waves corrects almost close to 61.8%. Okay. Third waves goes somewhere around 161.8 to 261.8%. Okay, of first wave. Fourth wave corrects somewhere around 38%. And fifth wave goes somewhere around 161.8% of third wave. Okay. सर फिबोनाची के पॉइंट से ड्रॉ गाइस करते देखो हैं। इन सब चीजों पे ना परसेंटेज एंड ऑल से ज्यादा दिमाग लगाओ मार्केट की साइकोलॉजी पे, क्यों हो रहा है, क्यों थर्ड वेव ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, डोंट ट्राई टू मग इट अप। वो स्कूल में जो रटने वाला काम करते हो मत करो। एंड आई एम टेलिंग यू, सी मैं इवन जब आईआईटी का एग्जाम दे रहा था ना, आई एम गाइस टेलिंग यू, मुझे लिटरली फॉर्मूलेज में रटता नहीं था, मुझे याद नहीं रहता, मैं सिर्फ समझने की कोशिश करता था एंड दैट इज द रीजन मुझे आज तक चीजें याद है। तो हमेशा जब समझने की कोशिश करोगे ना इट विल बी बेटर, रटने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर वो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर थिंग्स। ओके, सो गाइस गॉट इट, समझ में आया ये पूरा? अब चलो निफ्टी कोई पूछ रहा था, देखते हैं निफ्टी। सर ये जो 2-3-4 वाला जो वेव बताया उसका बेस क्या था परसेंटेज का? 1 था या 0 था? किसका यार? 3-4 और 2 जो वेव बताए थे उसमें जो परसेंटेजेस बताया उसके लिए बेस कौन सा लेवल था? 4 क्या होगा? 4 में अगर मैं बोलो 38.2% तो कितना क्या होगा? रिट्रेसमेंट आप प्रायर मूवमेंट का ही देखते हो ना, तो थर्ड वेव का होगा 38.2, है ना। हेलो सर। या अब नाउ गाइस देखो अब निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी में भी देखो क्लियर। अब एक और चीज देखो, एक होती एक एलियट वेव में एक थ्योरी होती है, अगर सेकेंड वेव फास्ट है, सेकेंड वेव बहुत डीप है तो फोर्थ वेव शैलो होगी, सेकेंड वेव शैलो है तो फोर्थ वेव डीप होगी, ठीक है। मतलब अगर करेक्शन इन सेकेंड वेव इज लार्ज, फोर्थ वेव का करेक्शन कम होगा। फोर्थ वेव का करेक्शन अगर लार्ज है या से सेकेंड वेव का करेक्शन स्मॉल है तो फोर्थ वेव में करेक्शन ज्यादा होगा, ये हमेशा चलता है। म्यूट समथिंग। ठीक है, अब निफ्टी में तो यार देखो क्लियर कट क्या दिख रहा है, निफ्टी में तो 5 वेव पैटर्न दिख रहा है, 1 2 3 ये 4 है, फ्लैट फॉर्मेशन है, देखो ये रनिंग फ्लैट है,
देख रहे हो रनिंग फ्लैट है, इसीलिए देख रहे हो इतना फास्ट मूवमेंट अपवर्ड मिला है आपको। आया आपको समझ, देख रहे हो ये 1 2 3 ये नीचे नहीं आया, सी वेव ए वेव के नीचे तक नहीं आई, सी उसके बाद देखो कितना फास्ट मूवमेंट मिला है। और ये अब देखो फिफ्थ वेव है। अब ये फिफ्थ वेव जहां तक मुझे लग रहा है कि इट इज देयर आर मेनी, ये वन फर्स्ट वेव बना, ये उसका सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव चल रहा है, फोर्थ और 5। ओके दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये चल रहा है निफ्टी में, तो निफ्टी विल गो मच हायर। So here अभी the first 0 1 2 3 4 and 5, तो 5 वाला जहां पर आप मार्क किए, वेयर इज इट, हाँ तो वो तो एक्सटेंडेड, बट उससे पहले आप कहीं नीचे मार्क किए थे ना, द नहीं, ये फर्स्ट ड्राइंग। ऊपर होगा, ये पूरा भी खत्म नहीं हुआ था ना, इसलिए अभी फिफ्थ वेव इज मेड ऑफ अनदर 1 2 3 4 5, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, इफ आई एम प्रूविंग रॉन्ग देन आई चेंज माय व्यू। See the fourth point, fourth Which one? marking, This one or हाँ this correct, one? yeah that's This one? that, हाँ. no हाँ अभी जहां पर कर्सर, हाँ that one, yeah. So यहाँ से fifth वाला तो would be that green candle next to it, right, or the second one? मतलब नहीं, अच्छा, fifth wave, this is whole is fifth wave. I am saying that the fifth wave is not yet complete. ओके नहीं, अगर वो फिफ्थ वेव है तो थर्ड वेव लॉन्गेस्ट है, ये गलत हो जाएगा ना। नहीं, third wave need not be longest, third wave cannot be the smallest, third wave cannot be longest, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने बोला थर्ड वेव सबसे छोटी नहीं हो सकती है, थर्ड वेव मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्गेस्ट होती है, बट दैट डजंट मीन थर्ड वेव हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। Okay, got it. Okay, third wave, the rule, see, there is rule and then there is expectation. Okay, rule are there are only 3 rules. Third wave cannot be smallest, second wave cannot go below start of first wave, and none of the corrective wave can come in the region of the impulse wave. These are the only 3 rules. Rest what we are talked, they are what we have seen in past happening. Okay, people have analyzed and they have seen okay, this happened most of the time, this happened less of the time, but what happens less of the time, that also happens sometimes, right? It's not like it never happens. So fifth wave can also be the longest, it's just that the third wave cannot be the smallest. नहीं वो समझ गया मैं, आई मीन या नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी देखिए आप फोर्थ जहां पे मार्क किए, ठीक है, एंड ऑफ द रेड कैंडल, राइट, नाउ अभी फिफ्थ को इफ आई एम गेटिंग इनटू दिस ट्रेड, तो फोर्थ वाला कैंडल फॉर्म हो गया, फोर्थ वेव, एंड देन आई एम मैं परचेस कर लिया मैं अभी, व्हेन द ग्रीन कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट टू फोर्थ, जब वो एंड, हाँ करेक्ट, अभी वो जब एंड हो जाएगी तो आई विल जस्ट एग्जिट आउट ऑफ द ट्रेड, बिकॉज़ दिस इज द स्टार्ट ऑफ फिफ्थ वेव, नो व्हाई विल यू एग्जिट? 1 2 3 फ्लैट कर, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ, दिस इज अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, B went above A, C only stopped here, so this is whole 2, that's why I marked 4 here, not here, 4 ended here, not here. Okay, this fourth is a flat correction, and then we start from here fifth wave. So fifth wave started here, यहाँ से तो fifth wave start हुई है सर। 4 आप ए पे भी मार्क कर सकते थे ना? क्या चीज? 4, हाँ मैं मार्क कर सकता था, क्यों नहीं किया? You can do that, no, there is nothing like wrong here, so it's not like this is wrong. You could have just said कि नहीं सर मुझे वो नहीं मार्क करना है, मेरे लिए ये मार्किंग सही है, you could do that 1 2 3 4 and you can say कि ये 5 वेव खत्म हो गया, ठीक है, then in that case ये नहीं बनेगा। See Elliott wave, like I said ना, कि everyone has their own way to do, in that case you will say कि ये 5 वेव यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि फिर आपके हिसाब से ये बनेगा 1, गलत कहाँ गया, आपने यहाँ मार्क किया, आपने बोला ये 1 2 3 ये 4 5 खत्म, ठीक है, ये आपकी वे मार्किंग है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो सही था। मेरे हिसाब से, सर, आपके हिसाब से जस्ट फॉर एग्जांपल कल यानी निफ्टी बढ़ सकता है?
कल Just for नहीं, example. लॉन्ग टर्म में बढ़े, कल ही नहीं भाई। मेरे हिसाब से तो निफ्टी This monthly विल गो chart. टू 19-20 वीकली चार्ट लेवल। है ये। This is weekly chart. हाँ, दिस इज वीकली चार्ट बाय द वे। ठीक है, मेरे हिसाब से निफ्टी विल टच 20,000। ठीक है, बट नॉट नाउ, इट विल टेक टाइम, बट इट विल टच नेक्स्ट 5-6 months. I am not expecting Nifty to come down. Can we see it in 5 अब minutes? now Sir, see एक how सवाल था। you guys also watch all these things. ये जैसे divergence दिख रहा है तो it might show कि हाँ weekly chart पे divergence है. So if you see a fall, that might be a very large fall. Then you will see कि अगर से यहाँ पे fall होता है, then if I see that fall happening and it comes in the reason of a impulsive, then I'll say okay, my marking is wrong, I'll change my marking. Okay. तो What about the gaps? What about the Sir, what is सर, divergence? एक सवाल था यहाँ पे। जैसे आप बोल रहे ना कि फिफ्थ, आपके हिसाब से फिफ्थ वेव अभी चल रहा है और किसी ने बोला कि और हिसाब से देखेंगे फिफ्थ वेव खत्म हो चुका है। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हिसाब जो है, जो बेस्ट हिसाब है, कैसा पता करें? वो क्योंकि ऐसे हर वो किसी का ऐसे हिसाब आप तो यहाँ अलग पे ही वो होगा। करो ना। हाँ हाँ, देखो आप बस सिंपल ये कर लो, थर्ड वेव है, मैंने क्या बोला था, फिफ्थ वेव कैन बी 161.8%। ठीक है, ये बन गया 161.8%। सो ये जो मार्किंग है इज बेटर मार्किंग देन व्हाट आई ड्रू उसके पहले। ठीक है, दिस इज अ बेटर मार्किंग बिकॉज इट इज एक्चुअली फॉलोइंग ऑल दो, इवन इट इज फॉलोइंग फिबोनाची पार्ट। सर ये फिबोनाची कैसे ड्रॉप करते हैं? यार अब वो YouTube पे वीडियो देखो, बहुत सारी है, यहाँ पे जाओ, फिबोनाची हटा करो, क्लिक करो, ड्रॉ करो, इसका टॉप सेलेक्ट करो, बॉटम सेलेक्ट करो, बन जाता है। अब ये सब चीजें YouTube पे करो, इसके लिए बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं। YouTube चैनल I आधे have लोग a इसीलिए चला रहे question. हैं। या आस्क मी। So after every fifth wave in a trend, we'll see a three-wave correction. Yes. So that's like It's not a every three trend wave of correction. After fifth wave, you will see a correction. Now, okay. if So that correction after is every say in flag formation, then that will so be after, A, B, C, D, E. sorry, you continue, please. What I'm saying ki after fifth wave or any correction, see, like here, if you see here, what I see is an A, B, C, D, A, Okay. B, C, D, E, right? Yes, yes. So it's not necessary it has to be three wave. It can be Okay. a flag, and this is what is giving me confidence that Nifty will go up. Why? Because flags or triangles in Elliott wave, they are continuation pattern. They are not reversal pattern. Yes, you mentioned. Yes. Okay, so they are continuation pattern. So see, market technical analysis, and that's why I say ना, वो जो चीज है ना कि कम नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, and that is very true in terms of share market. You need to know everything. If you not know even one aspect, you might miss it, and later you might blame it कि अरे shit, ये तो मार्केट ने यहाँ पे लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया। कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता, it's just that we don't know few things. Okay, so you have to know every damn thing to make correct decision. So my wave marking earlier, which was there, that was based on the same fact because I was seeing this. So though I see that there is a divergence stuff, I would be preferring a long trade. Okay, and I am expecting this to go much higher. Okay, now obviously I'll be proved wrong. I'll be proved wrong the moment the price goes below this. If I see a close price going below this, I'll be proved wrong and I'll change, because then I'll think, okay, it might be a complex correction. Okay, where the first part is W, my, and by a triangle. Second part might be a 1, 2, 3 wave zigzag, and third part might be some other type of correction. Okay, so it might happen. सर डाइवर्जन में क्या देखा आपने? डाइवर्जन यहाँ पे है ना यार, डाइवर्जेंस है ना, देखो नया हाई बना है बट RSI is not making new high. You saw a high here, value was so you can see a divergence here, but यार डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता है मार्केट नीचे आएगा. डाइवर्जेंस इज जस्ट एन अर्ली इंडिकेटर साइन which shows कि मार्केट कैन कम डाउन, बट ये देखो डाइवर्जेंस तो यहाँ पे ही आया था. इनफैक्ट आप देखो निफ्टी में आप डाइवर्जेंस की अब चलो बात करते हैं. क्यों मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं. देखो 2017 में डाइवर्जेंस आया था, 2017 के बाद 2018 में आया था, गिरा, नया हाई बना. 20 अगस्त को फिर डाइवर्जेंस था, गिरा, नया हाई बना. फिर नया हाई 19 में बना,
क्या ये गिरा मार्केट? नो, इट डिडंट फॉल. It fell fucking in 20. A divergence which appeared in 17, that too on a weekly chart, which is a very important chart. Actually, market fell in 20. So divergence is just an indication that the trend is slowing. Okay, the trend is not more as strong as it was, but that doesn't ever mean in world that you will go and short the market. That doesn't mean that. So सर this डायवर्जन is का one मतलब thing on which I have a lot of discussion I had with Sushil Kedia. Okay, so he is one guy like वो डाइवर्जेंस देख लेते हैं तो उनका रहता है कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ. अगर अपवर्ड में डाइवर्जेंस देख ले शॉर्ट कर देते, डाउनवर्ड में देख लेते हैं तो बाई कर लेते हैं. I have had a lot of discussion and debate with him and he has never been able to convince me. ठीक है. So and I can show you, like I showed you, divergence is just an indication that the trend has deteriorated, it has slowed down, but it never means that you will go in short. You have to wait for other indicators. सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो फर्स्ट वेव के हाई का ब्रेकआउट और फोर्थ पे रिवर्सल, हम प्रैक्टिकली इन दो चीजों को देख के कर सकते हैं. फोर्थ वेव देखो बस हमेशा. फोर्थ रिवर्सल, फोर्थ वेव देखो और ट्रायंगल फॉर्मेशन. अगर इलियट वेव में पैसे कमाना है, दो चीजें देखो, फोर्थ वेव और ट्रायंगल. और अगर ट्रायंगल फोर्थ वेव में बन रही है, उससे अच्छा तो लाइफ में जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है. ठीक है, अगर फोर्थ वेव में ट्रायंगल बन रही है, यू क्लियरली नो फिफ्थ वेव आ रहा है. जैसे ही ट्रायंगल बन रही है, यू नो कंटिन्यूएशन है. फोर्थ वेव में बन रही है, यू ऑलरेडी नो फिफ्थ वेव आने वाला है. दैट इज द डायग्राम बना के दिखाइए. जैसे कि आपका ये हो गया ना, ये आपका 1 बना, 2 है, 3 है. अब ये देखो ट्रायंगल यहाँ पे अगर बनने लगी, ठीक है, तो ये बेस्ट होता है टाइम बाई करने का. ठीक है, यहाँ पे आप आराम से बाई करो. ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल का एक और फायदा क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है. ठीक है, अरे यार खत्म हो, अरे ठीक है. सो अब ट्रायंगल में सबसे फायदा क्या होता है पता है कि ट्रायंगल में अब यहाँ पे आप बाई करोगे तो आपको यहाँ तक के स्टॉप लॉस की इलियट वेव के हिसाब से रखने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस, ये अगर आपका ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है. ठीक है, ई खत्म हो गया. अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, आप अपना स्टॉप लॉस अगर सेफ ट्रेडर हो सी रख लो. ज्यादा थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ए रख लो. ए के नीचे नहीं आ सकता है कभी भी. ठीक है, ए के नीचे आता है तो समझ जाओ कि अभी करेक्शन अभी बाकी है, हो सकता है फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो. ओके, सो you don't have to wait for this particular stop loss to come. Okay, so that's the best situation one can be कि फोर्थ वेव में ट्रायंगल मिल जाए. एंड मोस्टली जब भी ट्रायंगल अकर करती है वो अकेले अकर करती है. ट्रायंगल जब भी होती है कॉम्प्लेक्स करेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता. ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल कब अकर करती है? लास्ट वीक एसबीआई में यही दिखाया था ना. अब देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है यार. What about gaps? Yeah, gaps I'll discuss. Gaps actually I was planning to discuss in advance, but I'll give you a flavor of gaps. Okay, तो gaps 3 तरीके के होते हैं मेनली. वो भी हेल्प करते हैं इलियट वेव को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि gaps कब फॉर्म होते हैं? जब when there is a lot of interest in the direction of the trend, right? अब वो 3 तरीके के gaps होते हैं. Okay, एक आपका होता है ब्रेकआउट गैप्स, ब्रेकअवे गैप्स, फिर एक होता है कंटिन्यूएशन गैप्स, और फिर लास्ट होता है आपका एग्जॉशन गैप. फर्स्ट वेव जो होती है, फर्स्ट वेव के थर्ड वेव में मोस्टली यू फाइंड ब्रेकआउट गैप्स. ओके, थर्ड वेव में यू फाइंड कंटिन्यूएशन गैप्स, एंड फिफ्थ वेव लास्ट जब खत्म होने वाला होता है देन यू फाइंड एग्जॉशन गैप्स. गैप्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे एडवांस में कि गैप्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं. अभी नहीं बात करेंगे, आज का यार क्लास वैसे भी लंबा हो गया. आई एम थिंकिंग कि अब एक काम करते गाइस, नेक्स्ट वीक सैटरडे को क्लास रखते हैं यार ऑलरेडी. सर वही सर ठीक रहेगा, क्योंकि और ज्यादा पढ़ाएगा तो फिर सर के ऊपर जाएगा. एग्जैक्टली जितना अभी तक पढ़ा है आप लोगों ने ना, एक बार उसको थोड़ा गो थ्रू करो. ठीक है, संडे को हमारा क्लास है एडवांस वाला, तो संडे को रख नहीं सकते हैं, तो सैटरडे को विल कीप अनदर क्लास फॉर इंटरमीडिएट. ठीक है, सैटरडे को इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए. रिकॉर्डिंग एनक्रिप्ट करनी है. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक. सर एक्सीलेंट सेशन, really enjoyed this session. आज तो सर will we get class? सर कोई एलियट वेव पे
रीडिंग गाइस चलो मटेरियल एक मिनट होल्ड करो। देखो रिकॉर्डिंग मिलेगी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, इट विल टेक टाइम। ओके, तुरंत नहीं दूंगा, ये नहीं कि क्लास खत्म होते ही मिल जाएगा। सर ठीक है, सैटरडे से पहले नहीं मिल सकती अगले? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो ये सब खत्म करने के बाद मेरा एक फ्रेंड है माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, उसको मैंने बोला है जब हमारे तीनों ये पूरा जून का ये बैच के सारे खत्म हो जाएंगे क्लास, आई विल गिव हिम द रिकॉर्डिंग, ही विल एनक्रिप्ट इट, ओके, he will use your one single sign on, so one person can log in on one device or two device. Well, we actually keep two device ताकि एक मोबाइल हो जाए, एक लैपटॉप हो जाए, so each person can log in on max two devices, okay, and if you log in on someone else then it will corrupt it, the file will get corrupted, so वो काम मुझे कराना है उससे, तो that will happen only after that। वो भी इतना फ्री नहीं है, दोस्त है, फ्री फंड में काम कर रहा है, so एक बार सारे हो जाएंगे तो रिकॉर्डिंग सारे मैं उसको दूंगा, then he will do and he will give it to me, then I'll forward it on to you, ठीक है, so it will take some time। सिर्फ सैटरडे को लेट रखना ना सर, थोड़ा वर्किंग वगैरह है। हाँ सैटरडे को I'll keep at 7 के बाद सर। हाँ 7 PM will इवनिंग में start। रखिए। दारू पी के नहीं आ जाना भाई लोग। थोड़ा और कवर कर दो सर आगे क्या थोड़ा सा। नहीं यार, कोई अभी रीडिंग खत्म मटेरियल करते हैं, क्योंकि पता है इलियट वेव हो कोई गया रीडिंग है, मटेरियल ठीक है। क्या रीडिंग टॉपिक मटेरियल बचे? आई डू वन थिंग, आई गिव यू गाइस वन दिस, एक पीडीएफ में शेयर करता हूँ इलियट वेब पे, एक थैंक हफ्ते यू में सो आप लोग मच। पूरा पढ़ लो, ठीक है। श्योर श्योर। क्या बचे? सर सर और अभी नेक्स्ट ये नेक्स्ट पॉइंट मार्क क्या रहने डाउन वाला है? एक्सपेंडेड फ्लैट बोल सकते हैं लास्ट ईयर में? क्या फिर से बोलिए ये टॉपिक्स क्या बचे? लास्ट ईयर में टॉपिक्स, या अभी देखो क्या क्या एक्सपेंडेड बचा फ्लैट है। में बोल सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं वो? गाइस सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर सर सेइंग। शिपयार्ड एंड लास्ट लास्ट ईयर मार्च में निफ्टी में हाँ एक्सपेंडेड फ्लैट बोल सकते हैं कौन से पैटर्न को देखेंगे? देखते हैं यार, अब वो एक काम करो ना, अब ये सब खुद एक्सरसाइज करो, अभी मैं पीडीएफ दूंगा, इतना सिखाया, अब आप एक बार खुद वेव मार्किंग एंड ऑल करके आओ। सर पीडीएफ तो अभी प्रोवाइड कर दोगे ना? हाँ पीडीएफ आई प्रोवाइड कर। आज सर How do बैच you हो गया। relate market psychology with अरे भाई लोग कल psychology? किसी की एग्जाम नहीं है। मेरा काम 25 हो गया। नॉर्मल टॉपिक्स सेशंस क्या में बचे हुए? नॉर्मल सेशंस में बीच में हिंट दे देना कि कौन सी वेव बन रही है। चलो गाइस, मैंने सबको म्यूट किया क्योंकि मुझे कुछ बोलना है, ठीक है। इलियट तक हो गया। नेक्स्ट वीक हम सारे चार्ट पैटर्न्स कवर करेंगे, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, राउंडिंग, कप हैंडल, फ्लैग, वेज, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शंस की प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑल बात करेंगे, कैसे ऑप्शन ग्रीक्स एंड ऑल यूज करते हैं, ये 2 चीजें बची है बस, दैट्स इट। फिर ये इंटरमीडिएट वाली क्लास हो जाएगी खत्म नेक्स्ट वीक, ओके। दैट विल बी ऑल। आज मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ इलियट वेब पे, पढ़ लेना आप लोग, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीक 7 PM क्लास रखेंगे, 7 to 9 रखेंगे, मैक्स 9:30 तक जा सकता है, वी ट्राई टू कवर ऑल ऑफ इट, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, ओके। हाँ अब बोलो जो बोलना है, एंड अब क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, अभी जो क्वेश्चन है अपने संभाल के रखो, पीडीएफ जो दूंगा पहले वो पढ़ना एंड उसके बाद आस्क मी, ठीक है। सर जैसे अगर मुझे इलियट वेव थोड़ा थोड़ा समझ में आया है तो मैं अगर पीडीएफ पढ़ता हूँ तो उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी सैटरडे का एग्जैक्टली मिलेगी, तो पहले आप पीडीएफ पढ़ो। भाई सही में यार चलो गाइस, आई थिंक वी आर ओके गाइस, थैंक यू देन, ओके, नो मोर फॉर टुडे। अब जाओ एंजॉय करो संडे, मेरा भी संडे अब तो खत्म ही होने वाला है, थोड़ा बहुत अब बकचोदी करते हैं, हो गया बहुत आज, ठीक है गाइस। फीडबैक पोल डाल दो सर। क्या हुआ? फीडबैक पोल, हाँ वो डालते हैं यार, सर डालते हैं। सर एक राशि पूछनी थी। चलो गाइस बाय, एंड आई होप आपको कुछ सीखा होगा आप लोगों ने आज, ओके। बाय बाय यार गाइस, take care and I hope you guys learned something today. Take care. Bye, sir. Yeah, today it was really great. Thank you. Thanks Thank you, sir. Bye man. कल ओएनजीसी शॉप जाएगा ना सर? मैंने फोन करी, मैंने 5 लॉट पड़े हैं। अब अपने हिसाब से देखो, जितने लॉट पड़े अपने हिसाब से ट्रेडिंग करो, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, ओके, थैंक यू Have a nice day. you too guys, bye bye. यार
where I like try to find out Elliott wave. So what happened, like on a monthly and weekly basis, I able to find that Wipro is forming impulsive wave, but in a like 5 minute chart frame, it is in correction wave. So it can happen, yeah. Obviously, it can happen. An impulse wave can have a lot of impulses and correct. एक impulse wave, कोई भी एक impulse wave होगा, that is also consisting of 5 wave, right? 1, 2, 3, 4, 5. So उसमें जो 2 और 4 होगा corrective wave ही तो है ना, वो तो रहेगा ही. Okay. So what happened? I'm not able to get it. That, like if you see Wipro monthly chart frame. First, So you what have to happened? decide, bro, how you want to trade. Do you want to take a swing trade? Okay, or you want to make it, if you are making an investment, you'll watch monthly chart, because then that will give you a view कि हाँ ठीक है, monthly में ये view है, and accordingly I'll go and invest for long term. Okay, if you are going to trade for intraday, then there is no point looking at monthly and weekly chart. उससे क्या फर्क पड़ता है? Then you'll have to look at the intraday. So you'll have to decide. यार देखो, कोई भी हथियार इस्तेमाल करते हो तो उसका यूज भी होता है ना. हर जगह थोड़े ना आप बम लेके पहुंच जाते, टैंक लेके थोड़े ना पहुंच जाते हो मोहल्ले की लड़ाई में, राइट? सर जैसे फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई ना, तो फिफ्थ वेव बनेगी गारंटी है क्या सर? हाँ, फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई तो फिफ्थ वेव बनेगी फॉर श्योर. बिना उसके सर वो ये ही नहीं बनी सर। रिलायंस में मैंने देखा वो फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ हो वेव ही नहीं थोड़ी सकता है, नहीं बनी हो. पूरा डाउन गया। फिर आपका मार्किंग, वेव मार्किंग गलत होगा. खोल रिलायंस में बोल रहे हो ना, चलो देख लेते हैं, हो ही नहीं सकता. रिलायंस में एक बार चेक करना सर। भाई इम्पल्स वेव हमेशा ऊपर की तरफ होता है क्या? ना ना नहीं, इम्पल्सिव डायरेक्शन और ट्रेंड में होता है. ट्रेंड ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. ट्रेंड कभी साइडवेज नहीं होता है. Ashutosh, can you also share your screen for the Reliance analysis? Yeah, I'm just sharing my screen. So अगर डाउन ट्रेंड में अगर इम्पल्स वेव बन रही है तो उसका करेक्टिव वेव वुड बी अपवर्ड्स, राइट? Exactly, yeah. Okay. Because corrective wave is always Right, counter got trend. it. Counter trend. See, एक बात I wanted to just understand. अभी impulse wave एक wave में you said there would be 5 waves. Yeah. Right. And that each of that impulse waves in that 5 waves also will have 5 waves. So And that, yeah. अच्छा, तो I mean that would be again वो वैसे अंदर होते ही रहता है, मतलब Exactly. But how far will you go? You don't need to go right. to. So you that just need... actually means that उतना टाइम अंदर होते जा रहा है वो. Exactly. Okay, cool. Because it follows on each time frame, no? हाँ. That's why. So it might go till tick by tick, maybe. Yeah. Okay. So it's basically first practice for the long term, and then once you gain some confidence, then go for intraday, I guess. Exactly. Because right now you guys don't know a lot of things, right? So when you start doing things, then only you will understand. तो कौन से टाइम फ्रेम में आपको दिखा कि गलत हो रहा है इलियट वेव? बताओ मुझे आप. Can I share my photo? I don't know. I have the photo. You just tell me ना, I will see which time frame did you. Because everyone needs to see, right? Because in Reliance, see guys, एक और चीज समझ लो, सबसे बड़ी बात, हमेशा आपको मार्केट में जब भी आप इलियट वेव यूज कर रहे हो, सबसे बेसिक चीज, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कभी इंपल्स वेव होगा ही नहीं, वो हमेशा करेक्टिव वेव होगा. अगर कभी मार्केट में आपको ऐसा 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 कुछ मूवमेंट दिख रहा है, तो वो हमेशा कोई ना कोई तरीके का करेक्टिव वेव होगा. एज सिंपल एज दैट. तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये ABC ये फ्लैट करेक्शन है या क्या है. आप बस इतना समझ जाओ कहाँ ये. अब जैसे मैं देखता हूँ तो मैं थोड़े ना बैठ के उसमें मार्क करने बैठता हूँ कि फ्लैट है और क्या है. अब जैसे रिलायंस देखो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, रिलायंस यहाँ से यहाँ है, यहाँ से ऊपर गया, तब ये पूरा क्या हो गया. अब मैं इसमें बैठ के मार्क नहीं करूंगा. फॉर मी इट इज वेरी क्लियर कि हाँ दिस इज सम काइंड ऑफ अ करेक्टिव वेव फॉर्मेशन, दैट्स इट. साइडवेज, देयर इज नो ट्रेंड ऑन अ लॉन्गर टर्म चार्ट. बट अब यही अगर मैं I'll start looking at a smaller term chart, 15 minute. Okay, so I might get a trend here somewhere. See, अब देखो ये भी clear cut है. It is sideways. There is no trend, right? It started from here, somewhere ended here. Okay, so there is no trend, so it would be a corrective wave, as clear as that. You don't have to wait and mark each and every one. Plus one more thing is there. One more thing you need to observe. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ बना, is it an impulse or not? Tell me. Yeah.
Yeah, This is coming down. Third is the shortest. No, Third sir. wave is the shorter. Yeah. It Now is the see, impulse wave, but the now start see, point is different. this can be an impulse wave. Why? Yes. Why it can be an impulse wave? Anyone has answer for that? Yes, You sir. can, you can start You can later. change From we start change to the end is start a, point. a single wave. Yeah. In different time wave, it will be different. No, it can be. See, Extension listen, of see, third wave. Depends from where you start के counting. स्टार्ट से You सेकंड can वेव के स्टार्ट से आप इलियट वेव लगा सकते हैं ना. see, this can be whole third wave, right? This Yes, whole sir. can be third wave, and then this might be one, okay, two, and this whole three, four, and then five can happen, right? आंसर इसका इनफाइनाइट आंसर ये Yes, sir. राइट. सो अब देखो यहाँ पे आप जब देखो बोलोगे अरे ये तो गलत हो गया, ये नीचे, तो देखो मार्केट में ना व्हेन यू आर ट्रेडिंग एंड जो भी आपने थेरीज पढ़ी, यू नीड टू हैव दैट विजुअलाइजेशन, वो कैपेसिटी होनी चाहिए सोचने की क्या क्या बन सकता है दिमाग में. अगर आप वो नहीं सोच पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा. रटने से अगर हो रहा होता है, किताबें तो यार सबको अवेलेबल है ना, मैं सबको पढ़ा सकता हूँ, बट ऐसा थोड़ा ना पढ़ के सारे लोग लाइक अच्छे ही हो जाएंगे. नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट इज विथ यू यार, इधर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट. ठीक है, यू शुड, इफ यू हैव द एबिलिटी टू सी, विजुअलाइज, देन या यू विल मेक मनी. इफ नॉट, देन रीडिंग विल नॉट हेल्प. सो अब यहाँ पे जब ऐसा कुछ बन रहा है तो यू शुड हैव दैट कैपेसिटी कि हाँ पॉसिबल है कि ये पूरा एक्सटेंडेड थर्ड वेव है. फिर जब यहाँ पे करेक्शन होने लगा, ओके, सो दिस करेक्शन कैनॉट कम ओवर बिलो दिस, राइट. तो ये कहीं यहाँ कहीं तक रहेगा. मोस्टली क्या है, फोर्थ वेव है तो कितना करेक्शन होना चाहिए, अराउंड 31.8% होना चाहिए. तो यहाँ कहीं तक आना चाहिए. एक और रूल बता देता हूँ, जब भी आपका थर्ड वेव एक्सटेंडेड वेव होता है, ठीक है, उसमें फोर्थ वेव जो होता है वो मैक्स यहाँ तक आ पाता है. उस वेव, ये एक्सटेंडेड वेव के फर्स्ट वेव के आसपास तक आ सकता है. ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी है, कोई रूल नहीं है. मोस्टली ये देखा गया है कि वो यहाँ तक आ पाता है, ये फर्स्ट वेव एक्सटेंशन का जो फर्स्ट वेव है वहां तक आ पाता है. अब ये सब चीजें पता है आपको थोड़ा टाइम के साथ आएगा. यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व, सी, बिकॉज ये सब चीजें ऑब्वियसली मैंने ऑब्जर्व करी है, कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, सो इलियट वेव करो, और कोई डाउट है इलियट वेव पे तो बताओ, वी सॉल्व एंड देन वी विल मूव अहेड. Hello, Ashutosh. Yeah. My question is that from where we need to start a marking for later waves. So I'll just, for example, अभी ये चार्ट मुझे इतना दिख रहा है, right? This Yeah, is correct. the swing low. So I'll start either from here. This is the swing high. Either I'll start from here. Oh, okay. Okay. So जो Either भी, I can choose. हाँ, you just open the chart and see whichever is the nearest swing low, swing high. Like अब जैसे ये इतना स्ट्रोक खुला हुआ है तो I'll start from here. Nearest swing high एक तरह से मेरे लिए है. Okay. तो अगर ये देखना था, start from here 1 2 3, और ये 4 नहीं होगा, राइट. ये 4 क्योंकि इसमें आ गया, 1 के रीजन में आ गया. आई स्टार्ट अनदर मार्किंग 1 2, बिकॉज हो जाएगा ये 1 2 हो जाएगा, फिर ये दूसरा 1 2 1 2 चलने लगेगा. 1 2, ठीक है, 2 यहाँ पे खत्म होगा, ये 1 2 यहाँ पे कहीं खत्म हुआ, ये 3 4 5 ऐसे मार्क करेंगे, और ये अलग हो Two गया. can't retrace more than 100% of one. सर एक बार मार्क करो ना सर. देखो अब इसमें जैसे मुझे मार्क करना पड़ेगा तो मैं इसको यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये 1 2 होगा तो पहले मैं अंदर के वेव्स मार्क करना शुरू करूंगा. ठीक है, तो सबसे क्लियर जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, ये Two can't और ये, retrace more than 100% of one, right? So हाँ 2 कांट. हाँ. तो देखो ये 1 2 3 4 5 हो गया. अब ये क्या दिख रहा है, ये 1 2 3 वे पैटर्न दिख रहा है, ये 1 2 3 वे पैटर्न दिख रहा है, राइट. ये आपको This दिख रहा है whole ना. can be three-way So pattern, right? here, if we want to trade, maybe we would ride at 4, I guess. No. See, this is 3 वे पैटर्न पूरा. तो ये क्या हुआ, 3 3 5, तो ये क्या बना है, रनिंग फ्लैट बना है, फ्लैट फॉर्मेशन है ये, बिकॉज फ्लैट फॉर्मेशन लास्ट वेव होती है 5 वे पैटर्न. So you need to identify things. तो सर ये करेक्टिव वेव हुई ना हाँ, पूरी. ये करेक्टिव वेव हो गई पूरी की पूरी. ठीक है, और फिर देखो और ये समझ में भी आ रहा है, साइडवेज मूवमेंट है तो मोस्टली इट विल बी करेक्टिव ओनली. या सर, या राइट. इम्पल्स वेव बहुत क्लियर कट होता है. जैसे रिलायंस का आप लोग जैसे चार्ट ही देख रहे हो, अगर देखो रिलायंस का अगर आप चार्ट देखो, लंबा चार्ट, ठीक है, तो रिलायंस में ये है पूरा इम्पल्स वेव, ये देख रहे हो, ये क्लियर कट समझ में आता है कि इम्पल्स वेव क्या है. ये पूरा इम्पल्स, ये इजीली आप 5 वे में निकाल पाओगे.
ठीक है, ये पूरा 1 2 बना, ये थर्ड, ये फोर्थ, अभी ये करेक्शन चल रहा है, फिर फिफ्थ वेव आएगा। अब अगर रिलायंस में मुझे देखना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई कैन से कि हाँ भाई रिलायंस में अब देखो ये 1 हो गया पूरा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अभी 4 चल रहा है, जहां तक चलेगा यू नेवर नो। ठीक है, और एक फिफ्थ आएगा। ठीक है, अब वो फिफ्थ के लिए तो आप आपको एक एज्यूम करना है कि कहाँ तक जा सकता है। तो ये आप थर्ड वेव है, अगर ये इसका 61% था। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट रिलायंस टू गो समवेयर टू 3000 लेवल। 61%, हाँ सही ठीक है। है, तो जब भी ये करेक्शन खत्म होगा यू कैन एक्सपेक्ट रिलायंस टू गो टू 3000। तो दैट्स द गुड थिंग। अब इट माइट हैपन कि हो सकता है यहीं से शुरू हो गया, यू नेवर नो राइट। इट मे बी वेरी मच पॉसिबल कि ये जो पूरा है, देखो ये ट्रेंड लाइन बना है आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया इसने, वीकली चार्ट पे दिया, ओके, विच शोज स्ट्रेंथ। सो वेरी मच पॉसिबल कि जो फिफ्थ वेव है वो ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो गई, जिसका ये 1 2 थर्ड वेव चल रहा है, फोर्थ आया, हो सकता है फिफ्थ अभी से हो गया, राइट, इट माइट हैपन। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। द मोमेंट दिस यहाँ से अगर ये गिरता है और अगर इसके 1 के नीचे आ जाता है, ये जो मार्किंग की है, ये 1 है हमारा, राइट, ये लेवल 1 है, ये हमारा लेवल 1 है। अब मान लो आपको लग रहा है हाँ यहाँ पे आप बाई करोगे, आप एक इसके ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख दो, यहाँ पे बाई कर लो थर्ड वेव के लिए, ओके, जस्ट इन केस यू वांट टू ट्रेड इन द थर्ड वेव, थर्ड वेव इज वेरी फास्ट। और से अगर ये गिरता है और अगर ये 1 के नीचे आ जाता है, जैसे ब्लू लाइन के नीचे, देन यू नो कि नहीं, दिस इज नॉट एन इम्पल्स वेव, ओके। सो इट माइट अगेन यू आर वेरी, देन यू नो कि हाँ ठीक है, इम्पल्स वेव नहीं है, मतलब अभी करेक्शन खत्म नहीं हुआ है, तो करेक्शन माइट कंटिन्यू। सर ऐसा हो सकता है कि यहीं से ब्रेक डाउन हो जाए? हाँ हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ से वापस गिर जाए, क्योंकि काफी लोग यहाँ ट्रैप होंगे, वेरी मच पॉसिबल कि ये गिर जाए। तो फिर अगर अगर गिर गया तो ये फिर क्या बनेगा, अगर ये गिर गया तो ये ABCD बन जाएगा, राइट, ABCD और E बन जाएगा, एंड हो सकता फिर E के बाद आएगा आपका वो फाइनल वेव, फिफ्थ वेव, फिर जो आपका फिफ्थ वेव है ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, सो यू नीड, इलियट वेव का यूज क्या होता है, इलियट वेव क्लियर कट गिव्स यू कि ये चीज होगी तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वेरी क्लियरली। ठीक है, सो उसका यूज क्या होता है कि दैट इट गिव्स यू क्लियर कट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशंस, ओके, यू नीड टू हैव ऑलवेज 2 or 3 सिचुएशंस इन माइंड। लाइक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ना कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर चीज में मैं कहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस रखूंगा, ओके। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ यू हैव टू यूज, नॉट लाइक ब्लाइंडली कि हाँ ठीक है, मान लिया कि हम फिफ्थ वेव ही है, खरीद लिया, गिरे जा रहा है, लेकिन यू आर लाइक वेरी श्योर नहीं नहीं है फिफ्थ वेव है, मैं तो छोड़ ही नहीं रहा, 3000 पे ही बेचूंगा, तो दैट इज अ रॉन्ग वे। और इधर यू गो एंड इन्वेस्ट, ओके, बाय स्टॉक ऑफ रिलायंस, नो इशू, डोंट ट्रेड, कीप इट, बिकॉज Bro, यू I नो have कि one question. yeah, Yes, so sure. So Suppose can there be a you are corrective? suppose wait you are wait Can let, a let it, no correction wait happen? wait That is wait corrective wait someone else was before a speaking, let him negative complete. Yeah bro, tell me. yeah. So like last week when we are trading, so as we see like when Reliance is going up, so Nifty is also going up, right? Like you said, this is a trap. Like maybe like Reliance is going up, but Nifty is not lifting up. So like if I am seeing fifth wave in a Reliance stock, okay, that fifth wave is forming in the Reliance wave, and now like I want to prove my theory, okay, I'm right or not, or I'm trying to like study on Nifty also. Like let's check Nifty if Nifty is also doing same thing or not. So can this be happen? Like I can No, correct. not necessary. रिलायंस में फिफ्थ वेव जरूरी तो है कि निफ्टी में भी फिफ्थ वेव हो सकता है निफ्टी में और कोई अलग फॉर्मेशन हो रहा हो, नॉट नेसेसरी। आशुतोष सर फिबोनाची लगा के मेजर कैसे वेव को लेंथ को मेजर कर सकते हैं फिबोनाची लगा के? फिबोनाची पढ़ो, फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची में कुछ भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपका टॉप और एक बॉटम 1, 100 और 0%, ठीक है, ये मेजर करता है। कौन सी वेव पे अप्लाई करेंगे हम? हर वेव पे अप्लाई होती है, हर वेव पे उसका अलग यूज होता है फिबोनाची का। अप्लाई तो हम सब पे होती है ना, लास्ट लेक्चर में बताया तो था यार। I think we are gonna cover Fibonacci today, right? No, Fibonacci we have covered here. Fibonacci very clearly I said. No, Fibonacci was what I said. The things I said, na, ki second wave. Whenever there is a second wave, most probability that it will retrace 61.8%. So, for example, this is first wave. So first wave का ये top है, तो यहाँ पे 100%,
क्वेश्चन आंसर बाद में देना सर, क्लास ठीक है, लेक्चर so स्टार्ट this कर। may retrace until here. Now in this case it didn't retrace because the move was very strong. That's fine. Okay, and that's why you saw such a big up move. But most of the time what happens whenever there is this correction after first wave, that first wave usually comes to 38.2%. Okay, so that's the use of Fibonacci to predict targets and stop losses. Anyway, chalo, let's move ahead here, guys. ठीक है. One last question, Ashutosh. Question with you, Right. Ashutosh. I was Can I, one second, guys, sorry. So, can a trend reversal happen before the Elliott wave completes? Come again. Can a trend reversal happen? For example, can Reliance go into a downtrend now, bear market now, before the Elliott completes? So that will be a different Elliott wave. Means your wave marking was wrong. That doesn't mean that Elliott wave is incomplete. That means your wave marking was wrong. Now, for example, here I said it starts reversing. That doesn't mean that the fifth wave is not complete. It just means that I marked it wrongly. Instead of it being a fifth wave, it will be ABCD. See, Elliott wave always works. It's just that you have to be able to identify. And that's why, see, you cannot identify very clearly. So you need to have all those 2, 3, 4 scenarios. ठीक है, वो सारे 2-3 क्या क्या चीजें हो सकती है सब आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, आप चार्ट पे सिर्फ एक सिनेरियो मत ड्रॉ करो. नहीं, वही सबसे बड़ी गलती करते हैं जितने भी इलियट वेव वाले लोग हैं. सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एनालिसिस कि हाँ यही होगा. नो, नॉट नेसेसरी. नहीं आशुतोष बात तो सही कहा था रामदास ना यार, ये हद तक रहा है सर. वो थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम जा रही है. Focus on हल्का कंफ्यूजन रहता है. Focus on lecture. Ashutosh, one logical Can we question go by not from the PPT? Elliott wave. So सर suppose कैन वी मूव ऑन? सर लेक्चर पे फोकस कर दो सर, क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेना सर। और सर बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। आशुतोष सर 9:30 बजे तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर ऐसे। यस सर क्वेश्चन आंसर में ही सर 8 बज गया सर। लेट्स गो बाय पीपीटी। भाई जब तक डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक के पीपीटी पे कैसे जाएंगे? ब्रो कोई मतलब नहीं आगे पढ़ के, इफ यू आर नॉट गेनिंग फास्ट नॉलेज। उनको सुट्टा मारने दो, रुक जाओ। आवाज नहीं आ रही। Can't hear you. आवाज नहीं आ रही यार। आ रही है भाई, आ रही है। नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है अभी तक। नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। टेलीग्राम पे भी मैसेज नहीं डाल पा रहे हैं। Sir, you are mute. We can't hear you. WhatsApp. Somebody call him if you have number. Somebody call him and tell. I tried calling him, but he's not picking up the phone. गाइस टेलीग्राम कॉल कर लो, टेलीग्राम कॉल। Having his phone in his hand, maybe देख रहे होगा। आज कोई वॉलंटियर नहीं है क्या?
I don't think. बनाया नहीं उसने ये बार। लास्ट टाइम अरिहंत और पिंकी था ना। सब लोग वीडियो ऑन कर पिछले बार, बट आई डोंट नो। कर दिया है। तो कॉल तो करो ना यार। तो एक बार बोल दो ना वही। सब लोग वीडियो ऑन करके आवाज नहीं आ रही है ऐसे बताते हैं, चलेगा? जो थे एक बार बोल दो। अरे यहाँ से जो बोल रहे हो वो आवाज वहां जा तो रही है, अगला कुछ कर रहा होगा यार, बैठ जाओ 2 मिनट। गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अभी आ रही है आ रही है। आ रही है सर। अभी आई सर। अरे भाई कांग्रेचुलेशन। चलो ठीक है। हाँ कितना बोल दिया सर आपने? एनीवे जब तक हमने अंताक्षरी खेल ली। बाकी अपने आप चलो चलो लेट्स म्यूट एवरीवन। इतना टाइम नहीं है, ठीक है, म्यूट करते हैं। ओके सो देखो लास्ट टाइम ये सब हो गया था, अब हमें हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल ये सब डिस्कस करना। अब ये देखो ये ऑलमोस्ट सबको आइडिया तो है ही कि क्या होता है ये। ओके थोड़ा डिटेल में आज देख लेते हैं कि क्यों ये सब पैटर्न्स काम करते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। ओके तो चलो लेट्स मूव ऑन चार्ट ओनली, और लेट्स यूज व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, सीधे क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। Okay, hold on guys. So guys, you guys can see my whiteboard. Yes. Yes sir. Good. yes. तो देखो हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऐसा कुछ दिखता है, राइट? नहीं, we are just able to see whiteboard, but we cannot see if you're drawing anything. At least I'm not able to. Guys, you can see what I'm drawing? No sir. We can't see. No, sir. We are only seeing white. Not visible. Yeah. Yes. Zoom has some other issues only then. Anyway. There is some latency. Okay, might be. So see this. Hey Sridhar, can you please log off your camera because I think that will be the problem. Can you please log off your camera because the नहीं रहने दो ना भाई, देख के कुछ No, don't log off your camera, please. Yeah, don't log off your camera. It doesn't have to do with this camera, man. No. I'm telling about Sridhar, not Ashutosh. Oh, okay. Maybe the best option is to mute. Guys, just please put yourself on mute here. I don't like putting people on mute because it doesn't become interactive. So unmute yourself only when you have to ask question. बाकी time please mute रखो, okay? ठीक है। So देखो head and shoulder pattern ये होती है, right? हाँ खराब हो जाता है मेरे। Okay, अब इसमें क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड एज हेड और ये आपके हो गए शोल्डर, और बोला जाता है लॉजिक क्या होता है, सिंपल सबको पता है कि इफ दिस ब्रेक्स ओके देन यू सेल एंड यू एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन। क्या होता है टारगेट इस केस में, जितना ये लेंथ होता है, ठीक है, सेम लेंथ आप नीचे भी रख लेते हो। ओके अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, because I always see people saying head and shoulder बन रहा है intraday में and all, so that is not true. See, you always see head and shoulder pattern only on weekly or a monthly chart, max daily chart, not more than that. Okay, not I don't mean कि head and shoulder short term में या intraday में form नहीं होता, I don't mean that. I just mean that कि the probability of a head and shoulder pattern giving you good result is better only on a monthly, weekly or at max daily chart, not more than that. ओके नाउ इसमें कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी हेड एंड शोल्डर आप पैटर्न देख रहे हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ इट लुक्स। ओके इट्स नॉट ओनली दैट कि ये ऐसा दिख रहा है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। यू ऑलवेज ऑल्सो हैव टू सी अबाउट द वॉल्यूम। द वॉल्यूम आप देखोगे अगर जैसे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपका वॉल्यूम बहुत हाई होगा, ठीक है, देयर वुड बी वेरी हाई वॉल्यूम, ठीक है। बट ये जो रीजन है आपका ये जो आपका रीजन बन रहा है, जो हेड का बनने का पहला रीजन, यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम डिक्रीजिंग एंड दिस वॉल्यूम कीप ऑन डिक्रीजिंग इन दिस होल हेड रीजन। ओके दिस होल हेड रीजन द वॉल्यूम विल कीप डिक्रीजिंग एंड अगेन द वॉल्यूम यू सी राइजिंग इन दिस रीजन। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन जहाँ पे हो रहा है वहां पे अगेन यू स्टार्ट सीइंग अ राइज इन वॉल्यूम। ओनली इफ वॉल्यूम इज ऑल्सो वर्किंग इन दिस फैशन then only your head and shoulder pattern will be successful, else not. Now why is that? अब इसके पीछे साइकोलॉजी समझो।
यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता, गाइस कौन है यार, म्यूट करो पहले खुद को। हाँ, अब देखो इसके पीछे साइकोलॉजी समझते हैं। व्हाई आई एम सेइंग वॉल्यूम इज मोर इंपॉर्टेंट। सी व्हाट हैपेंस व्हेन हियर मार्केट इज गोइंग अप, देयर इज अ हाई वॉल्यूम, okay, a lot of people are interested in buying, okay, seeing this new high coming place or market going higher from this usually is the support level जब भी ऐसा होता है, or a resistance level. So you see a high volume, okay, then you see a decline because obviously because of this counter trend move, okay. Now you see a decline over somewhere over here, the volume starts reducing, again you see a rise, but with now in this rise you do not see volume coming. What does that mean? That this rise is not because of bigger players. Here the volume is declining while the price is rising, which shows that the rise in price, जब भी price में rise हो volume कम हो रहा हो, it just indicates one thing, that the strength of the trend is decreasing and bigger players are using this rise to exit their position, and that's why you see a decline in volume. You will not see a rise in volume, okay. And after that, since once this has become, the volume goes very low, you will see all the again the decline coming in, and now in this decline the volume starts rising, which shows what, that bigger players now are selling. That's why on a falling price, okay, if on a falling price volume is rising, it means lot of people are selling. It means shorts are coming now in place. And here when there is finally a breakdown, the volume is so high because people are convinced that there is a breakdown that is going to happen, and that's why you see this big down move happening. So head and shoulder pattern या कोई भी पैटर्न, जो भी हम अभी आगे भी पैटर्न्स चेक करेंगे, इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन हाउ इट लुक्स। सिर्फ कैंडल स्टिक आपको ऐसा दिख गया इसका मतलब ये नहीं कि ये है ऐसा, ये ब्रेक हो गया तो नहीं हेड एंड शोल्डर होगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। यू ऑलवेज हैव टू लुक दिस पैटर्न फॉर्मिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट. You will have to see how other things are playing and then only it will be successful. अगर से यहाँ पे वॉल्यूम, जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है वॉल्यूम ही नहीं है, so in that case this head and shoulder will not give you this result and आपको ऐसा you will not get this target, ये वाला आपका टारगेट नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम है, because then that will be just a false breakout, okay, false breakdown, and फिर वो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, okay. So whenever you see any pattern forming, you have to be very clear about it, not just by looking at it कि वो कैसा दिख रहा है मार्केट में, but you also have to understand its volume, RSI. You also have to understand what is the psychology behind that, okay. Only then you can make a decision whether it is a real head and shoulder or not. Got it, guys? Any question on this? Anyone, any question? Yeah, I have one question. Just two questions. वॉल्यूम को हम किसके रिस्पेक्ट में ये देखेंगे कि बड़ा है, ज्यादा है या कम है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हम उसे मूविंग एवरेज, एक वॉल्यूम की सेटिंग के अंदर एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज होता है, क्या हम उसको रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे कि उससे ज्यादा है तो वो वॉल्यूम ज्यादा है और उससे कम है तो वॉल्यूम कम है? You can use that or you just use common sense यार. Okay. Nothing more you have to use. The many trading is mostly common sense. Okay, 100% it is common sense. If you have common sense, you will be good. Okay. Sir, in Nothing. current, I'll just give you an example. Ambala, the perfect example of head and shoulder. Just wait a minute, guys. आप ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है, तो ये क्या, like, do you need to draw a moving average? Very clear, na? How there is a huge volume. Still whiteboard there. Just a minute. Very good with teams. Ashutosh, one more thing. You said about where this is applicable. This is only weekly chart that would be perfectly visible. Mostly it is good. Head and shoulder is good, and for weekly, monthly, or at most daily. Don't try to use it on a intraday or a hourly chart. It doesn't give such good results. Okay. Any conditions like shoulder should be at the same height? No, nothing like that. It should just look like that. You guys can see my chart. Yeah. See, you just should look something like that. Okay.
It's nothing like, see, if even if it is forming here, okay, it's over that, but doesn't matter. Because why it doesn't matter? Because this head and shoulder pattern can have this, may form on this trend line, na? Right? So it doesn't have to come below, be at the same level. It's fine. Okay, what is important? You have to see the volume. Volume should be high in this region. Okay, it should start decreasing somewhere in the half of this, and then it should start increasing somewhere in the fall of this, and then here it should be maximum. The moment you see a breakdown, here it should be significantly higher. That means it's a clear cut head and shoulder. And how you see volume is higher? You see here very clear, like this chart. Do you need to draw a moving average? No, it's very simple, obvious. How volume is high? The same Right? thing happened in Ambala. Yeah, Was it? Ambala यार, I'll have to check ना, अभी याद नहीं है इतना. एक बार कर लिया ट्रेड फिर भूल गए. ऐसे आगे उसके बाद याद रखने की क्या जरूरत है? Hey, what could be the psychological reason for the right shoulder increasing? अरे I mean, right shoulder. why why it did not fall right after the head? If okay, I don't know if I understood it correctly, but see what happens. Now see here, people are buying. Sir, और कोई example है क्या? Okay, it came down a bit. It went up. Volume was low. Then it started falling somewhere here. And most of the time you will see head and shoulder forming like this. You will not find it like books में जैसे होता है ना, horizontal line पे नहीं, हमेशा mostly trend line पे ही होगा. Then again it goes up. Again now here people will be thinking, ठीक है, कि ये एक trend line पे है, right? ये देख रहे हो, ये एक trend line पे बन रहा है, right? So here at this trend line, lot of people will be thinking of buying again, thinking कि हाँ ठीक है, new high. Okay, but ये देख रहे हो, higher high, higher low pattern बन रहा है. So many people will be thinking again it will make a new high. But what happens? It goes only until here with very reduced volume, and then it comes down with high volume. Okay, so what happens? Lot of people, this is head and shoulder. Lot of people who bought here at this trend line, okay, they are stuck. They thought that market will go up. Okay, many of people would have also bought here before the breakdown just should have happened. They would have bought here thinking, okay, it will reverse because this trend line has worked from 1, 2, 3. So they would be thinking, yeah, it will reverse it from here. So they will also buy and they will put a stop loss somewhere here. Okay, this will be their stop loss. जो भी यहाँ पे trend line पे खरीदेगा, they will put their stop loss somewhere here. So the moment market will go down, all these people who bought here and all those who people bought here, all of their volumes will come for selling, and that will give a high volume and then it will come down. So that's the psychology which works behind this particular pattern, nothing else. And that's why this pattern is one of the very important patterns, because see, all the patterns which will trap people now, they will be the best pattern to trade on. Unless there are traps, you cannot make good money. You cannot see a fast movement unless there are traps in market. Okay. Will the inverse be valid? Yeah, same. Ultimate में भी same चीज होती है. What will be the stop loss while taking the trade over here? If you take a trade over here on the break of this, you'll keep this as a stop loss. Because if it goes above, say for example, from here, if you short and it goes over, then what happens? It makes a higher top here again, right? So it might happen again. It may again from here, instead of going down, it start making, higher top, higher bottom formation. Okay. It might happen that it might start making higher top, higher bottom formation. So if you short here, you'll keep this just above this, your stop loss. Okay. Now, one more thing is important, guys. You have, like I always say now, patterns are important only in the context of the market. Okay. When will people get trapped here? Why will people think that the market is going to go up here at this point? Only if there is a prior uptrend, right? So head and shoulder, okay, has to form in a prior uptrend. अगर ये prior uptrend चल रहा है, ठीक है, and then you see formation of head and shoulder, then only the chances of success of it is most. Because यहाँ पे for all of this volume game to happen, first of all, here people should be bullish. Then only they will be buying over here. And only if there is a significant uptrend would happen. That's why bigger players will look to exit. Okay, अगर कोई uptrend पहले रहा ही नहीं होगा, just start of the uptrend होगा, why will bigger players look to exit here? They will not. They will look to exit here, and the volume will drop only when there is a very big prior uptrend.
Okay, so most of the time a head and shoulder only if it forms in the last of an uptrend, then only it's a good it will give you a good movement on the downside, and then only is the probability of success is more. ठीक है, तो अगर पहले अपट्रेंड नहीं है और स्टार्ट ऑफ, जैसे अब देखो रिलायंस है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब ये देख रहे हो ये साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, राइट। अब अगर रिलायंस में कल को ये देखो ये यहाँ से ऊपर जाता है और ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसा बनता है और ऐसे यहाँ पे गिरता है, तो वो हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई अपट्रेंड नहीं है, तो अभी भी साइडवेज में है, राइट। ये तो कब से साइडवेज में चल रहा है, ओके, ये तो कब से साइडवेज में चल रहा है। उस केस में अगर ये यहाँ पे ऐसे ब्रेक भी करता है, तो इट विल इंस्टेड ऑफ बीइंग ए रियल ब्रेकडाउन, इट विल बी अ फॉल्स वन। मोस्टली इट विल बी ए रियल ओनली अगर प्रायर एक बहुत अच्छा अपट्रेंड रहा हो, ठीक है। Anyway, guys, so ये हो गया आपका head and shoulder. Ashutosh bro, I have one question. So like if head and shoulder is forming in a opposite direction, like it is in a upward direction, right? Inverse head and shoulder. Yeah. तो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए वो। देखो एक चीज समझो, पहले दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पैटर्न इन द मार्केट। अ कंटिन्यूएशन पैटर्न इज a pattern which indicates continuation. तो कभी भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो पैटर्न के एंड में आपको जो पहले ट्रेंड था वही मिलेगा। एक जो हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ा था वो क्या होता है, ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके एक तरह से कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं उनकी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ट्रायंगल मोस्टली यू विल सी द ट्रेंड रिज्यूमिंग इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग पेनेंट्स सिमिलर टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जब भी आपका फ्लैग पैटर्न बनता है, ठीक है, उसके बाद भी आपको डायरेक्शन मिलता है, तो ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। फिर दूसरे तरह के पैटर्न क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, जो कि बनने के बाद जो पहले ट्रेंड था उसके उल्टे डायरेक्शन में मार्केट चले, वो क्या होते हैं आपके, जैसे डबल टॉप, ठीक है, फिर आपका ये हेड एंड शोल्डर, ये भी आपका रिवर्सल पैटर्न है। तो ये सब रिवर्सल पैटर्न्स हैं, ओके। तो रिवर्सल तो तभी बोलोगे ना जब पहले आपको पता हो ट्रेंड तो क्या हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हर चीज में देखो, सारे पैटर्न्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये पैटर्न है, नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गलत है। कभी कभी आप मार्केट में बोलते हैं यार ये तो हेड एंड शोल्डर बोलता है ना, ऐसे कि नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि जस्ट ऐसे बन गया इसका मतलब थोड़ी ना है कि जस्ट बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक दिस इट डजंट मीन दैट इज द हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर हैज टू फॉर्म आल्सो एट द एंड ऑफ ए अप ट्रेंड, ओके। पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो समझ में आता है अच्छा हाँ नाउ द चांसेस आर कि अप ट्रेंड खत्म हो गया, एंड देन यू लुक फॉर रिवर्सल। बट इफ देयर इज नो अप ट्रेंड, से इफ द मार्केट इज लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड उसके बाद मैं ऐसे देखता हूँ ऐसा, तो इज इट एन हेड एंड शोल्डर? नो, बिकॉज वो तो पहले भी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट चेंज इज इट? नाउ पीपल कैन कम एंड से करे ये तो हेड एंड शोल्डर, बट नो, इट इज नॉट हेड एंड शोल्डर, सॉरी, इट्स नॉट डबल टॉप। Okay, people can say this is a double top, but no, this is not a double top. Understood, guys? Sir, context is location where. What happened? Location, sir, context. I cannot hear you, bro, properly. So the context. Please आगे continue कीजिए। ठीक है, so anyway, let's move So ahead. he is asking about the context. What is context do you mean? So it is not the location, it is the situation. Context मतलब कि मार्केट की देखो मार्केट में चल क्या रहा है। सिर्फ ऐसा पैटर्न बन गया तो आप, हाँ गाइस यार देखो मैं थोड़ा इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड। तो अगर हिंदी में कुछ समझना है, जो नहीं समझ में आया प्लीज पूछो, मैंने इसीलिए सबको अनम्यूट भी कर रखा है, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया जो इंग्लिश में बोला वो पूछो, ठीक है, नॉट एन इशू। मैं ये बोलना चाहता था कि सिर्फ आप डबल टॉप ऐसा देख के आप नहीं बोल सकते हो कि ये डबल टॉप है। ये डबल टॉप होने के लिए जरूरी है कि उसके पहले एक अप ट्रेंड में मार्केट हो, वो हो गया कंटेक्स्ट आपका मार्केट का। अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है तो फिर वो डबल टॉप नहीं हुआ। सिमिलरली हेड एंड शोल्डर बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में हो, क्योंकि हेड एंड शोल्डर मोस्टली अप ट्रेंडिंग मार्केट का लास्ट स्टेज होता है, ओके। ये लास्ट स्टेज होता है मोस्टली अप ट्रेंड मार्केट का, हेड एंड शोल्डर। तो सिर्फ अगर आप ऐसा मूवमेंट देख रहे हो, ऐसा फॉर्मेशन, तो आप नहीं बोलोगे ये हेड एंड शोल्डर है। ये हेड एंड शोल्डर तभी होगा
रियल जब इसके पहले एक अप ट्रेंड भी है। अगर अप ट्रेंड नहीं है तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, ठीक है। वो हो गया आपका कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट। सर इसमें RSI का भी कोई रोल रहता है डाइवर्जेंस का या कुछ इन किसी भी पैटर्न यस यस यस, यू विल ऑलवेज सी डाइवर्जेंस हियर। सो ये जो टॉप आपका बनता है यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर में, मोस्टली यू विल सी डाइवर्जेंस हियर, एंड मेन रीजन यही होता है। देखो डाइवर्जेंस कब आता है? डाइवर्जेंस कब आता है? जब मोमेंटम कम हो जाता है। सर एक डाउट है सर, ये RSI डाइवर्जेंस आपने समझाया नहीं था, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। ओके यार, RSI डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वही बताओ। भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर राइट शोल्डर में अगर वॉल्यूम नहीं है तब तो एक बहुत अच्छा बाइंग चांस नहीं बन रहा, क्योंकि ट्रेंड वहां से फिर से कंटिन्यू। नहीं बाइंग चांस नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि पैटर्न आपका देख के लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर है। देखो मार्केट में देखो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वहां से फिर से बाउंस क्यों नहीं करेगा? हाँ बट लेकिन यहाँ पे ये भी तो देख रहे हो ना, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम भी तो बनना शुरू हो रहा है। हो सकता है ना कि ये वापस, ये यहाँ से हो सकता है ना कि ये वापस फिर इतना ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए, राइट। तो ये पूरा हो सकता है ना कि ये 1 हो, ये पूरा करेक्शन 2 हो, फिर ये ऐसा कुछ बने। करेक्शन कैन बी लाइक दिस। I'll do one thing, hold on, I'll just show you. See, तुम ये बोल रहे हो कि ये हेड बना, ये ऐसा बना, अब बोलो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि यहाँ बाइंग कर लें। बट ऐसा तो हो सकता है ना ये इसके ऊपर ना जाए, यहीं रह जाए, फिर नीचे आए, ठीक है। ये भी तो एक करेक्शन है, ये भी तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। दिस कैन हैपन, पॉसिबल है, बट यहाँ मैं क्यों ये सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप्स बहुत छोटे होने वाले हैं, क्योंकि जो राइट शोल्डर बनेगा that is the thing. You always have to look at the risk reward. If you are okay, if you see that the stop loss is small, then yeah, you can take that, but then you have to be very clear. The moment the stop loss goes away, you have to exit. Problem क्या होती है कि people means the thing what I'm trying to convey here is probability is not more of your success, because still the trade is not confirmed on the upward direction if you just take a trade here. But yeah, since your risk is less, you can go ahead and take the trade. सर RSI डाइवर्जेंस बताने वाले थे आप? यार बताते हैं यार, 1 मिनट रुक जाओ। RSI डाइवर्जेंस पे 2 मिनट में बात करेंगे। फिर डबल टॉप डबल बॉटम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। डबल टॉप डबल बॉटम सिंपल सा, मार्केट का भी अप ट्रेंड में है, ये एक टॉप बना, फिर मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, लेकिन इस बार ऊपर नहीं जा पाया पिछले हाई के, ठीक है, नीचे आ गया। अब ये भी पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द सेम रीजन कि व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड एवरीवन इज बुलिश, सो व्हेन इट केम डाउन हियर, okay, and started going up, a lot of people will go long here thinking ये ऊपर जाएगा। और अब आप बताओ, अगर आप भी यहाँ पे खरीदोगे तो आपका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस हाई होगा, राइट। सो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़ा होगा, राइट। जिन्होंने भी यहाँ पे खरीदा अप ट्रेंड सोच के, उनका सबका सेल ऑर्डर यहाँ पे होगा। प्लस यहाँ पे अब जैसे ही मार्केट हाई पे पहुंचा, बहुत सारे शॉर्टर्स भी होंगे, ओके, जो कि कोशिश करेंगे यहाँ पे सेल करने का, राइट। लॉट ऑफ शॉर्टर्स विल आल्सो बी देयर, सोच के कि हाँ यहाँ पे सेल करते छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर रख लेंगे, दे विल आल्सो बी देयर, ठीक है। सो अनलेस देयर आर इंस्टीट्यूशनल बायर्स देयर, अगर बड़े बायर्स नहीं है वो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना बहुत सारे सेल ऑर्डर हैं, शॉर्टर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा उनका सेल ऑर्डर है, सबका, बहुत लोगों का सेल ऑर्डर है। सो उतना बड़ा वॉल्यूम एब्जॉर्ब करने की ताकत तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर्स में है। So unless and until institutional buyers come in, this will not go up, right? So that, और institutional buyers कब यहाँ पे आएंगे? वो तभी आएंगे ना when they still believe कि हाँ अभी वैल्यू है स्टॉक में। अगर institutional buyers को लगेगा कि अगर स्टॉक में वैल्यू है तो they will come and buy and volume increase and you see a breakout from here, right, with big volume, and then you should buy. But if institutional buyers don't come here, then it clearly means ना कि they don't see a value here. They think हाँ ठीक है, हो गया, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं, इससे ज्यादा अगर खरीदेंगे तो वो महंगा हो गया उनके लिए। सो ये सेलर्स यहाँ पे, नए शॉर्टर्स यहाँ पे, सो देन लॉट ऑफ शॉर्टिंग विल हैपन एंड इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन एंड द वॉल्यूम विल कीप इंक्रीजिंग एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस लेवल, दिस पीपल जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था उनकी पूरी फट लेगी एंड दे विल आल्सो एग्जिट एंड देन यू विल सी बिगेस्ट वॉल्यूम ऑन दिस लेवल एंड यू विल सी अ बिग डाउन मूव कमिंग। सो ये होती है साइकोलॉजी बिहाइंड डबल टॉप एंड डबल बॉटम्स, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम की, ठीक है। सो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट था, ये सब होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि पहले एक अप ट्रेंड हो, क्योंकि ये भी रिवर्सल पैटर्न है। ये भी तभी बनता है जब एक ट्रेंड हो, ट्रेंड के लास्ट में ये बनता है। अगर ट्रेंड नहीं है तो फिर ऐसे फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं। यही मैं बता रहा था
कि अगर आपका मूवमेंट साइडवेज है, अगर आपका मूवमेंट ऐसा कुछ है साइडवेज है, उसमें आपको ऐसा कुछ डबल टॉप दिखता है तो वो डबल टॉप नहीं है, वो चुतियापा है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। इट डजंट मीन एनीथिंग फॉर डबल सर ये टॉप जो डबल आपने बॉटम। हाँ हाँ, डबल टॉप बॉटम और हेड एंड शोल्डर बताए हैं, तो ये ज्यादा रिलायबल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, क्योंकि नहीं है आपने सर, बताया ट्रेडिंग के लिए इम्प्लीमेंट यूज होता होता है है। डेली, मंथली और वीकली चार्ट पर। नो नो, यूज इट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके ओके, सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोले यार। वॉल्यूम बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है, कैसे पता चलता है वॉल्यूम देख के? यार अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम ज्यादा है मतलब बाइंग हुई है। प्राइस, मतलब ये देखो, लास्ट 4 कैंडल के नीचे जो कैंडल है वो हाँ रेड हाँ, है, उसके 2 कैंडल के पीछे एक ग्रीन कैंडल है, यार लेकिन ऐसे नहीं देखना होता है एक एक कैंडल। जैसे रिलायंस में तुम एक एक ये थोड़े ना कैंडल पे देखो बाइंग सेलिंग, अगर ये ग्रीन है तो इस रेड कैंडल भी में या फिर बाइंग हुई है, ये अगर रेड है तो इस कैंडल में सेलिंग हुई है। ओवरऑल यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है तभी तो प्राइस देखो रेड क्यों है। ये वॉल्यूम का खुद थोड़े ना बाइंग सेलिंग से मतलब होता है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है। अगर ये प्राइस नीचे है तो मतलब वो रेड कैंडल सेलिंग हुई है ज्यादा, ठीक है, तभी तो प्राइस नीचे है ना। अगर बाइंग ज्यादा हुई होती तो ये रेड कैंडल ही नहीं बनती, नहीं, राइट। उसका नेक्स्ट कैंडल मैं बोल रहा हूँ, तो उसका नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल, कैंडल, हाँ तो नेक्स्ट हाँ कैंडल में वो ग्रीन वाला है। कैंडल। सर हाँ एक बात और पूछनी है सर, अगर हमने बाय करा है तो कोई ना कोई होगा जिसने सेल करा है, हाँ, तो सर ये रेड कैंडल और ये ग्रीन, मतलब जो नीचे वॉल्यूम आता है, अगर ये रेड वॉल्यूम है जैसे, मतलब यहाँ सेलर्स हाँ भी है, लेकिन यहाँ बाय भी तो करा होगा उतने ही बंदों ने, हाँ तो सर ये रेड मतलब रेड किस तरीके से बनी है वॉल्यूम सोचो वाला? मार्केट जब नीचे गिरने लगता है तो तुम क्या करते हो, हटती है ना, सेल। हाँ किसी भी प्राइस पे सेल करते हो, हाँ राइट। हाँ। सो हु इज पावरफुल देयर, सेलर्स, बिकॉज तुमने बाई किया हुआ है, ठीक है, हम्म। तुम बायर थे, तुमने बाई किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट गिरने लगा तुम्हारी फटी, तो देन यू आर एबल, यू आर लाइक कि किसी जो प्राइस मिल रहा है उस पे आई एम गोइंग टू सेल। तो नाउ ट्रांजैक्शन हैपनिंग वन ओनली, तुमने एक बाई किया था एक ही सेल किया, ठीक है, बट वो सेलिंग तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ी, एक लोअर प्राइस पे करनी पड़ी, राइट। कैंडल तो ऐसे बनता है ना यार, ओपन अगर अगर क्लोज तुम्हारा ओपन से नीचे है तो रेड होगा, तो इसलिए रेड कैंडल बिल्कुल बना। ठीक है ठीक है सर। This double Anyway, top, double bottom, shall yeah, we see on a higher time frame only, or can it also be checked at the lower time frame, like less than a daily? no, this also you should see mostly on a daily. See, one more very important rule, and this is my observation. It's not a rule which you'll usually find. Okay, but I have also read somewhere and then I looked at it. These tops, if they are separated by 3 weeks to 4 weeks, okay, then the chances of success becomes very high. So ये tops के बीच का जो टाइम होना चाहिए ना, अगर ये टाइम, दिस टाइम, ये टाइम अगर 3 to 4 weeks का है ये टॉप से इस टॉप में आने में, then the chances of success of this particular pattern is very high. If the difference in time is less, okay, 1 day, 2 day, 3 day, then it is not that great. Okay, then it's you cannot say it's a double top and you cannot expect it to go down. And also very clearly reason क्या है कि you would have often seen ना कि आज एक हाई बना अगले दिन वो हाई ब्रेक हो गया ऊपर चला गया, very possible, right, because the market is in trend. बट अगर ये 3-4 वीक होता है तो क्या होता है, अगर मार्केट हाई आया नीचे आया उसको 1 महीना लग गया वापस उस लेवल में आया, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ होता तो अगले दिन ही आ जाता ना। दैट्स द लॉजिक, दैट्स व्हाई दैट इफ द टाइमिंग इज मोर बिटवीन द टॉप्स, then the chances of success of double top double bottom या triple top triple bottom is high. बट अगर वो अगले दिन हो जाता है जस्ट नेक्स्ट मोमेंट 1 घंटे में, and then that's why ऐसे कि इंट्राडे एंड ऑल में यू डोंट सी डबल टॉप डबल बॉटम्स, ठीक है, बिकॉज इंट्राडे में अगर मार्केट 5 मिनट चार्ट में देख रहा हो अभी यहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद नीचे आया और 10-15 मिनट बाद फिर वापस यहाँ पहुंच, हाउ कैन यू से इट्स डबल बॉटम डबल टॉप, क्योंकि स्ट्रेंथ है तभी तो मार्केट वापस यहाँ तक चला गया, राइट। सो you cannot say then it is a double top. So the chances of success of this pattern is better if it takes long time for next time it to for the stock to reach this high, okay, because So, then you bro, can say कि people are not that convinced, buyers में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्राइस को तुरंत लेके आ पाए ऊपर, they took a lot of time, okay.
सर आपने जो रिलायंस का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है, सो आई गेस उसके अंदर अगर यहीं से रिवर्सल कर देता है, नीचे आ जाता है, सो फर्स्ट एंड सेकंड हाई जो है उसमें कंसिडरेबल टाइम लगा है, हाँ, इसको so this डबल might be a टॉप मान double सकते top हैं। here, you can say here, but अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, इसके प्रायर कोई अप ट्रेंड नहीं है, ये वैसे भी साइडवेज था। तो यहाँ पे अगर डबल, अब जैसे नॉर्मली जब डबल टॉप होता है, ओके, सो यू एक्सपेक्ट कि जब ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हो, ठीक है, दो जगह इसमें ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, लेते हो आप तो ये टारगेट रखते हो, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो प्रीवियस जो ये रीजन होता है यहाँ का आपका टारगेट होता है। अब इस केस में देखो मेरे लिए ये डबल टॉप से ज्यादा क्या होगा, फॉर मी इफ आई लुक एट इट, सिंस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रायर अप ट्रेंड, यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं है ना, ये ऐसे नहीं आया है, ये तो पहले गिरा था इसके बाद ऐसे आया, तो फॉर मी ये चीज मिसिंग है। तो आई विल जस्ट लुक एट इट एज कंसोलिडेशन। अगर यहाँ से रिलायंस गिरता है तो मेरे लिए सिंपल, बिकॉज इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट, फॉर मी टारगेट विल बी दिस, आई विल कीप दिस एज टारगेट, आई विल नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन फ्रॉम हियर। फॉर मी एक यहाँ पे आया था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, वापस ऊपर आया, फिर गिरेगा तो यहीं आएगा, तो मेरे लिए ये टारगेट। हाँ, अब अगर ये ब्रेक हो जाता है वॉल्यूम के साथ, देन या व्हाई नॉट, देन आई लुक एट टारगेट ऑफ 1577। सर मींस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम टारगेट डिसाइड करते हैं ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आप पैटर्न डिसाइड करते हो, अगर ट्रेंड मिसिंग है तो पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। सो हियर आई विल नॉट से दैट दिस इज अ डबल टॉप। ओके, दो यहाँ पे देखो सेपरेशन इज आल्सो गुड। ये एक वीक, अगर ये वीकली चार्ट है, अच्छा खासा 10-12 मतलब वीक का डिफरेंस है, so it's a good difference in time also, but prior आप trend is वेट करोगे क्या कि ये नीचे आने का, या तुरंत यहाँ यहीं से शॉर्ट करोगे? Did you wait or I mean, how did you take it? I'll wait. So if I have to short it, I'll never short it on a bullish candle. For me to be able to short, I know that this is a resistance, okay, but market is also showing me signals that it is very bullish in nature, so why will I go against the trend? I'll wait. सर ये तो सप्लाई जोन है बराबर, सप्लाई जोन हाँ, सप्लाई जोन है, बट सप्लाई जोन ब्रेक भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सप्लाई जोन मतलब वैसी हो गई कि कभी ब्रेक नहीं होता है, राइट? सप्लाई जोन कैन ब्रेक, ओके, सो दैट इज द मिस्टेक पीपल डू, दे प्रीएम्प्ट द मार्केट। पहले ही मत सोचो मार्केट क्या कर रहा है, जो मार्केट कर ले उसके हिसाब से एक्ट करना है। वी डोंट मेक द मार्केट, वी हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, फाइन, सो आई नो कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट क्या रिवर्स हुआ है? नहीं, तो मैं थोड़े ना यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे जब रेड कैंडल की क्लोजिंग, हाँ, अगर रेड कैंडल बनती है तब शॉर्ट करूंगा, ओके, अगर रेड कैंडल बनती देन आई एम श्योर कि हाँ यहाँ पे वापस सप्लाई जोन ने अपना काम किया, पीपल हैव शॉर्टेड, एंड देन आई विल शॉर्ट, एंड देन आई विल कीप द स्टॉप लॉस जस्ट अबव दैट, ओके। तो सर रेड कैंडल बन के क्लोज होगा तो उसके बाद हम पता चलेगा ये नीचे जाएगा, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। ब्रो कैन वी सी दिस पैटर्न? सर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार, सबसे इजी काम होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है, इसमें क्या नाम ही साइडवेज, देखो साइड ही में तो दिख रहा है, कहाँ नहीं सर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड भी फिर डिफरेंट रह सकता है। हाँ, तो किसी भी कौन से टाइम फ्रेम में तुम्हें देखना है, 15 मिनट चार्ट में देखो, बताओ ये इसमें कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज है, क्लियर कट दिख रहा है ना, यहाँ से देखो साइडवेज ही तो है ना, कहाँ ट्रेंड है कोई? साइडवेज मार्केट, जूम आउट करके देख सकते हैं, इजी, इट्स वेरी इजी यार, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज द इजीएस्ट। इंट्राडे में फिर कौन सा टाइम फ्रेम बेटर रहेगा हमेशा चेक करना। 5 मिनट, आई फील लाइक 5 मिनट इज द बेस्ट। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन नाउ, ठीक है? यस सर, ये आपके चार्ट पे ऐसी लाइन कैसे आती है रेड एंड ग्रीन? वो सीपीआर है यार, उसके लिए YouTube पे जाओ, वो कोर्स का टॉपिक एडवांस में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट वॉल्यूम। सर रेंज बाउंड जो होती है, वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट, और क्या? I've seen sometimes चार्ट के राइट साइड पे you have that horizontal yellow and that is the volume profile. Volume, okay. Don't use. सर ने एक वीडियो बनाया, उसमें सारी चीजें हैं, और वो बहुत, वो देख लो जाके। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, चलो, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, अब राउंडिंग बॉटम। सर रेंज बाउंड के बारे में पूछना था कुछ। रेंज बाउंड मतलब देख, रेंज में जिसका ऊपर तुम्हें दिख रहा है, सर देखो पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं श्रवण, ओके? एक क्वेश्चन इसी का रिलेटेड, डबल बॉटम डबल टॉप जब फॉर्म हो रहा है
वहां पे एबीसी पैटर्न भी तो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म होने वाला है, जहाँ पे सी नीचे देखो ब्रेक ये कर रहा है। अलग अलग थेरीज हैं, काम सबका एक है। इधर आप इलियट वेव यूज करो, इधर आप ये सब यूज करो, ठीक है, कोई एक यूज करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता सब होना चाहिए अब किस समय कौन सा यूज करना है, दैट यू हैव टू चूज बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन। ओके सर, ओके। ओके, समटाइम्स अब जैसे इलियट वेव हो गई, इलियट वेव में इट माइट हैपन दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई फोर्थ वेव कब खत्म हुई, बट आपको क्लियर कट हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो यूज हेड एंड शोल्डर पैटर्न टू टेक द ट्रेड। ठीक है, तो गाइस अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं होता है। ये पैटर्न तो पता है, लिटरली मेरा मन भी नहीं था पढ़ाने का, बट फिर आई वाला चलो ठीक है। राउंडिंग बॉटम क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अब ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है, ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पहले एक ट्रेंड है, उसके बाद आपको नीचे धीरे धीरे आता रहा प्राइस ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। यू विल आल्सो सी एट वन टाइम यू विल सी सम स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, फिर मार्केट ऊपर आएगा, देन वॉल्यूम विल स्टार्ट राइजिंग एंड एट दिस लेवल, ठीक है, यहाँ पे you will see a high volume and you will see a breakout. Okay, so again यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है फॉर राउंडिंग बॉटम होने के लिए कि ये वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए, ये रीजन में वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इस रीजन में नहीं डिक्रीज होना चाहिए, इस रीजन में डिक्रीज होने लगा तो फिर प्रॉब्लम है। अगर इस रीजन में वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा मतलब अप ट्रेंड खत्म होने वाली है, तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज इस रीजन में होना चाहिए। जैसे हेड एंड शोल्डर में क्या था, यहीं पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता था वॉल्यूम, राइट, यहीं पे। बट राउंडिंग बॉटम में क्या है कि कंटिन्यूएशन है, रिवर्सल नहीं है। तो कंटिन्यूएशन है तो मतलब यू विल सी वॉल्यूम ऑन ऑलवेज राइज। तो यहाँ प्राइस राइज हो रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन जब फॉल होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कम होने लगा। और अगेन जैसे ही प्राइस राइज होने लगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड यू सी ए हाई वॉल्यूम इन दिस रीजन। ओके, एंड देन यू कैन से कि हाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म्ड एंड देन यू विल बाय हियर। ओके, सो दिस इज सिंपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और कुछ नहीं। So And in this pattern, does it hit the resistance in a gap of like 2-3 weeks, similar to what we saw earlier? yeah, so again see, more the consolidation the better. Okay, more the consolidation means what, more and more weak hands are out, and after weaker hands are out and you see a movement with volume, it means institutional buying is happening. Okay, because institutions have already sold what they had to sell, and all the chutiyas of the market are out. So now when you see the increase in volume, it's mainly institutional interest coming back, and that's why you see a rise in volume at the breakout. Hey, Narayana. Narayana. So again, Yeah, next clear. time when you see this pattern in market, लोगों को सुनने की आदत नहीं है, कितना ही बता लो, fucking no common sense. Yeah, so देखो again when you see this pattern, you will not trade just because आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है. You also have to look at the volume. Okay, अगर आपका वॉल्यूम फेवर में नहीं है, then you will not, अगर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर से ये नीचे आ रहा है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, then you will not take it as a राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन. In that case it might be something else. Similarly ये ब्रेकआउट अगर यहाँ पे होता है, वॉल्यूम हाई नहीं है, then again it is not a rounding bottom. You will not take the trade. Okay, then it might be कि फेक ब्रेकआउट हो, ट्रैप हो, और वहां से मार्केट वापस नीचे आ जाए. ओके, सो व्हेनेवर यू सी these patterns, the problem आज तक जो भी मैंने हमेशा देखा है लोगों का, the only issue that people have, they look patterns visually कि हाँ देखने में कैसा दिख रहा है, देखने में ऐसा दिख रहा है, अरे हेड एंड शोल्डर हो गया, अरे देखने में ऐसा दिख रहा है तो राउंडिंग बॉटम. नहीं, पैटर्न के पीछे का लॉजिक समझो, क्यों यू वो पैटर्न यूज होता है, क्यों यू पैटर्न काम करता है. वो काम तब करता है जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. जब तक ये सब कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हैं, उस पैटर्न का कोई मतलब नहीं है. ओके, जब भी आप एल्गोरिथम बनाते हो, आप सिर्फ ये नहीं बनाते हो एल्गोरिथम में, आप थोड़े ना ये लिखते हो कि हाँ ऐसा कुछ दिखना चाहिए, कर्वेचर होगा, ये रेडियस होगा, ऐसा दिखना चाहिए तो आप एल्गो ट्रेड. नो, इन एल्गो व्हाट यू पुट कि वॉल्यूम शुड बी कमिंग डाउन, दिस वॉल्यूम शुड बी हाई. इफ यू सी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस दिख रही है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम कम है, और उसके बाद अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, वेरी पॉसिबल कि ये ऊपर आएगा और उसके बाद वापस नीचे आएगा, क्योंकि देयर इज नो स्ट्रेंथ लेफ्ट. पीपल आर एग्जिटिंग एट दिस पॉइंट, एंड इन दैट केस अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि बाइंग.
नाउ पीपल जो कि सिर्फ पैटर्न देख के सोचते हैं, वो सोचेंगे हाँ ठीक है भाई ब्रेकआउट आएगा, वो खरीदेंगे, बट दे विल बी ट्रैप्ड। ब्रेकआउट होगा ही नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे जब गिर रहा था तो हाई था, यहाँ पे जब वॉल्यूम जब प्राइस बढ़ रहा था तो RSI डाइवर्जेंस थी। दैट इज एन इंडिकेशन दैट पीपल आर लीविंग द स्टॉक, दे आर सेलिंग इट। ओके, सो you always have to look at these formation in the context of the market। सिर्फ शक्ल देख के कैसा दिख रहा है ना, उस पे नहीं, ठीक है। डोंट जस्ट द बुक बाय इट्स कवर। बोला जाता है ना कि किताब सिर्फ उसके कवर देख के मत डिसाइड करो कैसी होगी, पढ़ के देखो, इसमें पढ़ के देखो अंदर फॉर्मेशन में चल क्या रहा है। सिर्फ दिख कैसा रहा है उसके बेसिस पे मत डिसाइड करो कि ये क्या है। ओके, सो यू दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। गॉट इट गाइस? सर एक क्वेश्चन था। सर अभी जो अपन रिलायंस का देख रहे थे वहां पे अपन वी कैन सी अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मिंग। सो एम आई रॉन्ग और लाइक करेक्ट? सो आप एक बार चार्ट देख सकते हो। कौन से टाइम फ्रेम पे? वीकली पे? हाँ सर वीकली में। नहीं है, राउंडिंग बॉटम नहीं है। देखो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है ना तो आपको बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स मिलते हैं। कहाँ सर स्पिनिंग चार्ट टॉप? नहीं दिख रहा आपका। एक मिनट, दिख रहा है अभी? नो सर। हाँ यस यस यस। सी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जब होता है तो ऐसा कुछ होता है ना, आपका ये बना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद जो आपका होगा ये ऐसा कुछ बनेगा। कहाँ से ड्राइंग होती है? कर्व। देखो राउंडिंग बॉटम में आपको कर्व बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा। कर्व कब बनेगा? जब यहाँ पे खूब सारे स्पिनिंग टॉप्स होंगे, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है और ये ऐसा कुछ हो रहा है, वी शेप हो रहा है, तो फिर वो राउंडिंग बॉटम नहीं हो। राउंडिंग बॉटम के लिए यू शेप होना चाहिए, वी शेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी शेप होना चाहिए। वी शेप क्यों होना चाहिए? अब उसका भी रीजन है क्यों वी शेप नहीं होना चाहिए, यू शेप होना चाहिए। क्योंकि अगर वी शेप है मतलब जल्दी जल्दी प्राइस गिरा फिर जल्दी उठ गया, ठीक है। तो मोस्टली क्या होगा, जल्दी प्राइस कब गिरेगा? जब वॉल्यूम मोस्टली ज्यादा रहती है तभी प्राइस इतनी फास्ट मूवमेंट होता है। यहाँ पे क्या है, राउंडिंग बॉटम का पूरा लॉजिक क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, व्हाट दे डिड, प्राइस को ऊपर लेके गए, देन दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे मोस्टली एग्जिट मार रहे हैं जैसे ही प्राइस धीरे 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 गिर रहा है, उनकी गांठ फट रही है। बड़े प्लेयर धीरे 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 कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम कम है, क्योंकि धीरे धीरे सारा काम एकदम स्लोली हो रहा है, ठीक है। और जब सारा जितना मार्केट में था अवेलेबल स्टॉक जब बड़े प्लेयर्स को मिल गया, नाउ दे स्टार्टेड बाइंग, ठीक है। That's why you see this type of U kind of shape, not V kind of shape. And that's why you see volume decreasing because distribution accumulation is going on. And then you will see a rise in volume here, right side में, यहाँ पे volume increase होगा and massive rise you will see here. इस point पे you will see maximum rise and then you will see price going up, ठीक है। So that's the psychology behind this formation. Okay, understand that psychology and then trade. If you don't see it happening, formation is don't going trade. on. What in happened? In ITC share, this pattern is going on. यार ITC देख लेते हैं। सर आइडिया कौन में बन रहा से है मतलब, अब देखो यहाँ पे देखो, ये इसको आप एक तरह से राउंडिंग बॉटम बोल सकते हो, ये बन रहा है राउंडिंग बॉटम। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसके पहले क्या ट्रेंड है? नहीं है, देख रहे हो, ये साइडवेज है। सो इसलिए इस राउंडिंग बॉटम का कोई सेंस नहीं हुआ, देख रहे हो, इसलिए इसने काम नहीं किया और नीचे आ गया इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। Okay, fine. तो ऑलवेज लुक एट पैटर्न। देखो प्रॉब्लम ये होती है, लोग पता है पैटर्न बोलता है, अरे यार पैटर्न फेल हो गया। क्यों फेल होता है? क्योंकि वो पैटर्न समझते ही नहीं है। पैटर्न समझो, ठीक है। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझो, क्यों ये पैटर्न्स काम करती है वो समझो, ठीक है। उसमें वॉल्यूम का क्या गेम है, RSI का पहले साइकोलॉजी समझो कि कौन बेंच खरीद रहा है उसे, हु इज बाइंग, हु इज सेलिंग। अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड इट्स ओन, इट यूजलेस। सिर्फ देख के यू नेवर मेक अ डिसीजन कि दिस इज डबल टॉप बॉटम, ठीक Sir, है। how can we understand who is buying and who is selling? by
by seeing the price action यार ना, if the price is falling down, simple rule है कि अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, ओके, प्राइस गिर रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, मींस लेस एंड लेस पीपल आर सेलिंग ना, तभी तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, अगर कम से कम लोग सेल कर रहे हैं तभी तो गिरते हुए प्राइस के साथ वॉल्यूम कम हो रहा है. सो इट मींस व्हाट, पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन सेलिंग, मतलब बाइंग विल कम. ओके, सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, राइट, सो प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कम लोग इंटरेस्टेड है उसको ऊपर वॉल्यूम खरीदने में और ऊपर के प्राइस में, मतलब कि रिवर्सल आएगा. ठीक है ना. वॉल्यूम ज्यादा कब होता है, जब देयर आर बड़े प्लेयर आर देयर, वॉल्यूम ज्यादा तभी होगा जब बड़े प्लेयर आर देयर. वॉल्यूम कब कम होगा, जब पीपल लाइक मी एंड यू आर ट्रेडिंग. Okay, so when there is an absence of volume, it's us. When there is high volume, then it's bigger players. When it's absence of volume, it doesn't mean that bigger players are not there. It means bigger players जो हैं chunks में नहीं खरीद रहे हैं, वो थोड़ा 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 खरीद रहे हैं. ठीक है, वो प्राइस को होने दे रहे हैं जो हो रहा है उसके साथ. Ashutosh, just a request. So can you please go ahead with our presentation, please? Yes, yes. So this is clear, guys, right? सर ये पैटर्न में हमारी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे रहेगा प्लीज? एंट्री आपका सिर्फ ब्रेकआउट पे होगा. ठीक है, जब आपका ब्रेकआउट ऊपर हुआ था प्रीवियस हाई से ऊपर एंड वहां पे वॉल्यूम हाई है, देन यू विल बाय एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू विल कीप स्टॉप लॉस वेयर लो ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल. ठीक है, और नियर बाय एनी डिमांड और सप्लाई देयर. ओके, दैट विल डिमांड सप्लाई विल डिस्कस हियर इन एडवांस. ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई. ओके, अभी देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरा. ओके, चलो गाइस. ओके, सो ये हो गया आपका राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल. देख लेते हैं कप एंड हैंडल, फ्लैग एंड पेनेंट और वेजेस. ठीक है, चलो. ओके, नाउ लेट्स गो टू कप एंड हैंडल. सर कप एंड हैंडल आप आईटीसी पे एक बार चेक कर सकते हो बन रहा है क्या? अभी देखो काम करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद चेकिंग में कि थोड़ा टाइम कम है ना यार, क्योंकि अभी वो भी कवर करना है. आज की क्लास के बाद इंटरमीडिएट की एक और क्लास नहीं होगी, जो है आज खत्म करना है. सो अब सर देखो आरएसआई डाइवर्जन बाकी है. हाँ यार, रुक जाओ. आरएसआई डाइवर्जेंस ऑल विल कवर देयर ना इन एडवांस, इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, अब देखो कप एंड हैंडल अगेन क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब कि जो पहले ट्रेंड था सेम कंटिन्यू होना चाहिए फॉर्मेशन के बाद. अब होता क्या सेम, इसका ये वाला पार्ट एग्जैक्टली राउंडिंग बॉटम वाला डिजाइन होता है पूरा. बस एक डिफरेंस क्या होता है कप एंड हैंडल में, कप एंड हैंडल में जो ये अब राउंडिंग बॉटम होती है तो क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको बहुत ज्यादा दिखता है. ओके, एंड यू सी ए ब्रेकआउट हियर. कप एंड हैंडल में क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा कोई खास नहीं होती. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी अगेन इट रिट्रेसिंग अ बिट, और आपको एक तरह से फ्लैग फॉर्मेशन बनता दिखता है. ठीक है, और ये फ्लैग फॉर्मेशन जो बनता है इसमें भी वॉल्यूम नहीं होती. अब देखो क्या होता है, अगर रिवर्सल होता है यहाँ से डायरेक्ट, अगर से फॉल होना होता तो यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई होती. बट होता क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पे भी कम होती है, तो दो यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है, वॉल्यूम कम है, और इस फ्लैग फॉर्मेशन का प्रायर ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है. और इसके बाद यहां से अब ये जो बनता है, ये यहाँ पे आपको एक बढ़िया वॉल्यूम दिखती है एंड देन यू सी अ ब्रेकआउट. सो दिस लुक्स लाइक अ कप, दिस इज द हैंडल ऑफ द कप, इसलिए इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं. सो कप एंड हैंडल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ राउंडिंग बॉटम प्लस फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न. राउंडिंग बॉटम, फ्लैग, पेनेंट, बस डिफरेंस क्या है कि वॉल्यूम इज लो इन दिस रीजन. ओके, एंड इन दिस रीजन वॉल्यूम गेट्स हायर इन दिस रीजन. सेकेंड टाइम मतलब ये क्या होता है, इसमें सेकेंड टाइम में ब्रेकआउट होता है, एंड दिस गिव्स यू मच हायर मूव देन कप एंड हैंडल. क्यों, उसका रीजन क्या होता है, सॉरी, राउंडिंग बॉटम से ज्यादा फास्ट मूव कप एंड हैंडल मिलता है. उसका रीजन क्या होता है, राउंडिंग बॉटम में क्या हुआ था, राउंडिंग बॉटम में यहाँ पे आया, यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, ऊपर चला गया, जो भी कलेक्शन हुई थी यहाँ पे कुछ लोग आए थे, इनका खरीदा गया तो ऊपर गया था. कप एंड हैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पे आया, रिवर्स किया, तो यहाँ पे काफी लोग फिर शॉर्ट गए होंगे, तो वो सारे ट्रैप हो गए, और उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो ये सारे जो शॉर्ट हुए थे, ट्रैप हुए लोग थे, वो एग्जिट करना शुरू करते, बाई करते हैं, तो वॉल्यूम और बढ़ जाता है. इसलिए कप एंड हैंडल में यू सी मच फास्टर मूवमेंट देन इन राउंडिंग बॉटम. ओके, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस इन कप एंड हैंडल एंड राउंडिंग बॉटम. वॉल्यूम देखते हैं हम, तो वो चार्ट में कैंडल के फॉर्म में देखते हैं, रेड या ग्रीन बड़ा है या छोटा, या फिर डिजिट्स में देखते हैं अपने जो हमने वॉल्यूम ये दिखा देता हूँ यार, मैं आपको वॉल्यूम चार्ट में दिखा देता हूँ ना. ये चार्ट दिख रही है आपको? यस, राइट जी. अब किसी भी, अब ये डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम. चार्ट नहीं दिख रहा है, 5 मिनट फॉर इंट्राडे.
थोड़ा इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, आपको वॉल्यूम दिख जाए। ये वॉल्यूम है आपका, देखो ये आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम थाउजेंड्स में होता है। ये ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा अच्छी क्लियरली आपको जीरोधा में दिख जाएगा। जीरोधा में क्लियर कट लिख के आता है हाउ मेनी शेयर्स वर ट्रेडेड हियर। ओके, दिस इज हाई वॉल्यूम, दिस इज वेयर यू सी वॉल्यूम। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये इतनी बड़ी कैंडल है बट वॉल्यूम इज वेरी लो, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये देखो इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी आपका ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से एक्चुअली ऊपर गया। क्यों? क्योंकि दो यहाँ पे प्राइस इतना नीचे गया बट वॉल्यूम कम था, ठीक है। मतलब कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे सेल करने में, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला जब ये देखो ब्रेकडाउन देखो आप, अब देखो यहाँ पे आपको जब ब्रेकडाउन मिल रहा है तो देख रहे हो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस होल फॉल हैज कंटिन्यूड एंड ये यहाँ तक आया है। सो वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वॉल्यूम देख के आपको समझ में आता है एक्चुअली कि बड़े लोग इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो यू ऑलवेज बी ऑन दैट डायरेक्शन जिस साइड में बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। थैंक यू ब्रो। हमारा जो इन्फोसिस का ट्रेड फेल हुआ था थर्सडे को, तभी भी तो वॉल्यूम था लाइक वी लाइक ट्रेड इन्फोसिस राइट थर्सडे, बट आफ्टर See, सम so टाइम इट इज फेल। all of these things that you guys are reading now, everything doesn't work 100% of the time. Okay, with this is what happens most of the time. Okay, but it's not like it is 100%. This is how the picture will play because we tend to miss something or the other. Okay, now when we saw that Infosys trade, we were looking in 5-minute chart. हो सकता है 5 मिनट में वॉल्यूम था बट टोटली पॉसिबल ना दैट 5 मिनट का वॉल्यूम जो है वो आर्ली एंड वीकली में उसका कोई सेंस ना हो, बहुत कम हो उसके हिसाब से। ये देखो यही वाला पार्ट था ना हमारा जिसमें हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, राइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, ठीक है, वेरी हाई, फाइन। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि वी आर लुकिंग एट 5-मिनट चार्ट हियर। ओके, नाउ इन 5-मिनट चार्ट में हम देख रहे हैं तो दिस वॉल्यूम मेक सेंस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बट अब इसी को अब मैं अगर देखो आर्ली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो दिस वॉल्यूम इज नथिंग। यू सी दिस इज द वॉल्यूम आर्ली चार्ट में, इज जस्ट एन एवरेज वॉल्यूम फॉर इन्फोसिस एक तरह से। देयर इज नो हाई वॉल्यूम इन्फोसिस में, राइट। सो that is the reason. It's not that we took a wrong trade or the theory was not followed. It's just that the our perspective was very short term, okay, and it did not work out because in long term chart Infosys still had a very average volume. It's not that Infosys में बहुत कोई बड़ा वॉल्यूम यहाँ था एंड देखो यहाँ पे सेलिंग हुई है तो ये मूव कंटिन्यू हुआ है, राइट। ओके सर एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम का जो कलर्स है ग्रीन एंड रेड, इसका कुछ मतलब है क्या? ग्रीन मतलब बाइंग हुई है, तभी प्राइस हमेशा देखो वहां पे कैंडल ग्रीन होगा। इस वाले पे देखो ग्रीन वाले पे ग्रीन कैंडल है, रेड ओके, वाले पे ग्रीन रेड मतलब बाइंग एंड रेड इज सेलिंग। Yeah. Red means more people have sold, not more people have sold. Actually, the number is always equal. Red means sellers were more dominant, and green means buyers were more dominant. Okay. Ashutosh, Sir, there is divergence here. one. Yeah, Ashutosh, there is one use in the current chart. There is one red candle for volume on the selling, right? So after that, immediately there is I can see price is moving up. So what This could one be you the, were saying? no, the big red one candle. This one? No, the volume candle. This one? Yeah, yes. So there is a lot of selling happened over there. Then again, price went up. So what could be the reason behind that? This It is the now next moved day. down. See, this happened next day. Okay, this was happened on 3 बजे हुआ था 27 मई को. This happened next day. So next day what happened? Market opened gap up, did not sustain, went down. And see, if you would have looked at volume yesterday, you know कि market sold off from this level 14-15, this info, and the volume was very high. Means a lot of people would have sold here 14-15. Next day when market opened at 14-14, you should have gone short. And see, the price never reached that level. You would have made good money. Okay, understood. Sir, divergence volumes and or divergence होता क्या है actually? Sorry. Divergence here we will discuss in when in advanced course when we build our trading system, क्या trading system होना चाहिए, how to trade, enter trade, what are the things to look before we enter trade, then we'll look at the divergence. Okay. Okay. Here we are just discussing about theory part so that we understand everything. Theory complete नेक्स्ट चलते सर, नेक्स्ट चलिए अब आगे
Guys, let's continue with the class. ठीक है क्वेश्चन आंसर बहुत हो गया सर। अरे यार वही है बात, ये नहीं क्वेश्चन आंसर भी ना करो तो फिर लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो फायदा क्या है कोर्स करने का। ये तो ऐसे भी मैं भेज सकता हूँ स्लाइड, क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए। अब ठीक है Yes, you're right. ठीक है एनीवे I never like people teachers in school who did not allow me ask questions. I never liked them. I don't want to be them. Anyway, let's move ahead. ठीक है now cup and handle हो गया, flag and pennant. Guys, do I need to discuss flag and pennant and wedges? Everyone knows, very simple. And नहीं if you guys are okay, I can just skip this one. नहीं थोड़ा सा चलो I just just for the sake, yeah, I'll just give you an overview. हल्के में बता दो आशुतोष, थोड़ा सा बता दो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरी ठीक है। तरफ तो कुछ और देखो होगी। कप एंड फ्लैग एंड पेनेंट बता देते हैं। फ्लैग एंड पेनेंट सिंपल अब ट्रेंडिंग मार्केट है, उसमें कंसोलिडेशन होता है, फ्लैग फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्लैग फॉर्म मतलब ये होता है कि ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती हैं, जो कैंडल्स बनती है, अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो मोस्टली ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब भी आपका ट्रायंगल के बीच में आपका ये कंसोलिडेशन हो रहा हो ट्रेंड के बाद, तो वो पेनेंट बोलते हैं, क्योंकि फ्लैग जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, सिमिलरली अगर कंसोलिडेशन आपका एक पैरेलल कन्वर्जिंग लाइंस में हो रहा है लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो वो वेज हो जाता है। सिंपल, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेज एंड पेनेंट। बोथ आर कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, बस दोनों में क्या होता है कि पेनेंट या फ्लैग फॉर्मेशन में आपका वो जो लाइंस होती हैं वो ऐसे मिलके ट्रायंगल बना लेती हैं, और जो आपका वेज होता है उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट वो पैरेलल चलती है, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, थोड़ा कन्वर्जिंग होती है बट मिलती नहीं हो लाइंस, लाइक वो बहुत दूर तक ऐसे चली जाएं। तो और दूसरी वॉल्यूम वाली पार्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि अप ट्रेंड है, तो अगर अप ट्रेंड है और तो ये जो आपका पेनेंट बन रहा होगा उसमें वॉल्यूम कम होता है, तो पेनेंट हमेशा वेज में और सॉरी वॉल्यूम हमेशा वेज में और ये फ्लैग में, दोनों में कम रहेंगी। ठीक है, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आपको ब्रेकआउट दिखेगा। तो जब ये यहाँ पे अगर ये पेनेंट बन रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे कैंडल्स बन रही हैं, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे कम होता रहेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, सिमिलरली वेज में भी सेम केस है, वॉल्यूम कम होगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा कब, ब्रेकआउट के टाइम पे बस बढ़ेगा। ओके, एंड देन यू विल सी अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, दैट्स इट। ओके, सर पेरेंट को असेंडिंग ट्रायंगल भी तो बोल सकते हैं ना, जो आपने बताया है। नहीं, असेंडिंग ट्रायंगल तब बोलोगे ना, असेंडिंग मतलब क्या होता है, बेस ऐसे अगर ऐसा कुछ हुआ तो असेंडिंग ट्रायंगल होगा, डिसेंडिंग में ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ, नॉट नेसेसरी असेंडिंग ट्रायंगल हो, इट कैन बी असेंडिंग डिसेंडिंग एनीथिंग। ओके, इलियट वेव्स को इससे मत मिलो। ठीक है, वो अलग, उनके दोनों एक ही चीज है, बस दोनों के समझने का तरीका अलग है एक ही चीज। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये अपना हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है सर एक क्वेश्चन था, ये फ्लैग और पेरेंट के बाद एक्चुअली अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, एंट्री कहाँ पे लेंगे? कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, तो अगर अप ट्रेंड में बना है तो अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस ट्रेंड होगा। अगर प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड बनेगा, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड बनेगा। मतलब कहने का, चलो ये भी बता ही देते नहीं इसमें एंट्री कहाँ लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? सर ये फ्लैग पैटर्न में ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट में आता है कोई, मतलब ये बहुत बार होता है कि रिट्रेसमेंट करके आता है ऐसा। हाँ, एक मिनट देखो, जब भी आपका ये अप ट्रेंड अगर है तो यहाँ पे आपका फ्लैग पैटर्न ऐसे कुछ बनेगा, तो आप इसमें एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। एंट्री हमेशा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो लोगे। ठीक है, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा यहाँ पे, ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं तो हो सकता है वापस से नीचे आके फिर अभी थोड़ी देर और फ्लैग चलता ही रहे। ठीक है, सो वॉल्यूम शुड बी हाई फॉर यू टू टेक एन एंट्री। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, वॉल्यूम हाई है, देन यू टेक द एंट्री। अब ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, लाइक ये डाउन ट्रेंड है और ऐसा कुछ बन रहा है तो ये फ्लैग पैटर्न डाउन ट्रेंड का हो गया, राइट। और फिर जब ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है देन टेक शॉर्ट अगियर। ठीक है, सो दैट्स फ्लैग, एंड सिमिलरली वेज में सेम चीज। ओके, चलो सर कौन लेट्स से मूव ऑन। चार्ट में हाँ, देखते हैं ऐसे? सर ये और ये टाइम कब भी पीरियड है, कैसे सिलेक्ट करेंगे हर इसका? टाइम फ्रेम पे चलता है। ठीक है, दिस यू कैन यूज ऑन, दिस वेरी सिंपल, इट्स जैसे कंसोलिडेशन ऑफ एन अप ट्रेंड, सो नथिंग मोर ऑन दैट।
ओके तो इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ ट्रेंड्स है जो हमेशा कंटिन्यूएशन ट्रेंड्स ही होते हैं और कुछ कुछ ट्रेंड्स है जो हमेशा रिवर्सल ट्रेंड्स ही होते हैं, सही? एग्जैक्टली। ओके, ये आपने जो दिखाया है चार्ट के ऊपर, उसमें से आप बताओगे एक एक करके कौन सा है, ये कंटिन्यूएशन वाले ही होंगे और ये रिवर्सल वाले ही होंगे हमेशा करके? ये एडवांस में देखेंगे ना? नहीं 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 नहीं, एडवांस में क्यों देखेंगे भाई, एक ये घंटे से बता मैं दिए, इतना चिल्ला रहा हूँ, आप ये बताओ बता कौन सा दिया क्या आपने। होता है। अगर मेरे एक घंटे चिल्लाने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आया कि इसमें से कौन सा कंटिन्यूएशन है कौन सा रिवर्सल है, तो फिर तो वेस्ट हो गया एक घंटा पूरा। सर आप सारा बताओ। आगे देखेंगे सोच के यहीं रुक जाएंगे आप। नहीं अब नहीं, नाउ ही हैज नहीं तो आस्क्ड मी फिर टॉपिक कवर कैसे क्वेश्चन। होगा भाई? ऑप्शन भी पढ़ने हैं अभी अपने को, बहुत सारे टॉपिक है। फिर सब आप हो एक जाएगा भाई, पर ये क्लियर होने के बाद ही होगा ना हाँ ये क्लियर करते भाई हैं, और इसलिए पहले मुझे आप लोग बताओ कि कौन कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कौन से रिवर्सल सर पैटर्न। आपने जितने भी पढ़ाए अभी हेड तक एंड डबल शोल्डर टॉप और डबल एंड टॉप हेड एंड जो है वो शोल्डर हेड रिवर्सल है। रिवर्सल है, बाकी एक नहीं, साथ हेड वन एंड वन। शोल्डर एंड डबल टॉप रिवर्सल है। या बाकी आपके ट्रायंगल फ्लैग और राउंडेड बॉटम ये सब कंटिन्यूएशन है। ग्रेट, गॉट इट, बस हो गया। ठीक है, ये मुझे थोड़े ना अभी अब फिर से अगर मुझे बताना पड़े तो फिर पढ़ा क्या आपने एक घंटे, राइट। ठीक है, तो देखो अभी ये जो हमने जितना पढ़ा उसके ये 3 कंक्लूजन्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, दिख रहा है आपको स्लाइड? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, 3 क्या कंक्लूजन है इन सब में, एक ही चीज, 3 कंक्लूजन सबसे निकल के आती है। हाई वॉल्यूम इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड अगर है, दैट शोज स्ट्रेंथ एंड इट मींस द ट्रेंड विल कंटिन्यू। अगर लो वॉल्यूम है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड तो इट सिग्नल्स रिवर्सल, जैसे कि आपका डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, उसमें हमेशा डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, जबकि जितने भी आपके कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है उसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल, ये एक कंक्लूजन। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, तो उससे आप डिमांड और सप्लाई जोन्स बना सकते हो, और वहीं पे मोस्टली आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेंगे, और दिस थिंग विल लुक इन मोर डिटेल इन एडवांस। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन्स एंड ऑल। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी थ्योरीज है उसमें आपको थ्योरी में क्लियर कट आपको समझ में आ रहा था कि कहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ पे टारगेट रखना है। सो ये जितने भी पैटर्न्स होते हैं इनहेरेंटली दे टेल यू कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पैटर्न सही से आइडेंटिफाई किया है देन यू कैन वेरी क्लियरली मार्क योर स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट्स। लाइक जितने भी कंटिन्यूएशन पैटर्न थे, ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस हमेशा क्या होगा, जब भी जो ब्रेकआउट मिलता है जिस लेवल से, उसके उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जितने भी आपके रिवर्सल पैटर्न्स थे उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो जहां जिस पोजीशन से उसने रिवर्सल दिया उस कैंडल का टॉप अप का रिवर्स स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। सो ये सारे पैटर्न इनहेरेंटली आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता देते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दैट इज द समरी ऑफ ऑल दिस। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शंस पे Sir, आते we हैं। can we get a example of last statement? Like head and shoulder, the height of the head is your target when it breaks down. That is a target for you, right? Did you get it? If you want me to Sir, elaborate, I ये can elaborate. राउंडिंग बॉटम में थोड़ा सा टारगेट एक बार एक्सप्लेन कर सकते राउंडिंग बॉटम एंड ऑल में ना आप सिर्फ वो रिस्क रिवॉर्ड है, तो जब भी आप कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हो ना, ठीक है, so in that case target you keep according to your risk, because most of the continuation pattern में you buy when at the breakout, right? जितने भी continuation pattern mostly you buy at the breakout. So if the breakout candle, if you stop loss you see, and if you see that the risk is around say 2 rupees, you keep a target of 4 to 6 rupees. 1:2, 1:3 kind of risk reward you should keep. Okay, minimum. So that's how you do the target. So stop loss the formation is giving you, and target you keep according to your risk reward. Got it, guys? Yep. Yes, sir. चलो अब ऑप्शन पे आते हैं यार। ऑप्शन की अब प्राइसिंग देखते हो, ठीक है। ऑप्शन का जो भी आप प्राइस देखते हो ना, दैट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 थिंग्स। वन इज द टाइम वैल्यू, ठीक है, दूसरा उसका क्या होता है स्ट्राइक प्राइस के बेस पे होता है, और तीसरा होती है वोलेटिलिटी। ठीक है, अब तीनों का अलग अलग इम्पैक्ट होता है ऑप्शन पे। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आप देखते हो से 200 रुपए का है,
उसमें जो 200 रुपया है वो ऐसे बना है कि 100 रुपया आपका टाइम वैल्यू का है कि 30 दिन बचे हैं, तो वो प्रीमियम टाइम की वजह से है। तो टाइम कम होगा तो वो 100 रुपया धीरे धीरे कम होता रहेगा। बाकी 100 रुपये में क्या होगा, 50 रुपया आपका इस बेसिस पे होगा कि उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है। अगर वो से क्लोजर टू द इन द मनी, अच्छा अभी तो इन द मनी एट द मनी समझा चुका हूँ। तो अगर वो एट द मनी ऑप्शन है, ठीक है, तो वो 50 रुपये होगा। अगर वो आउट ऑफ मनी होगा तो 100 रुपये में उसकी वैल्यू 60 रुपये होगी। ठीक है, उसके बाद होती है वोलाटिलिटी। बचा हुआ जो भी वैल्यू होता है दैट इज कॉज ऑफ द वोलाटिलिटी। ज्यादा वोलाटिलिटी होगा तो उसकी उसका भी एक वैल्यू होगा उस प्राइस में। अब उसको लिख के थोड़ा समझाते हैं। एनी आइडिया गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और आई विल एनीवे एलैबोरेट इट अ बिट। एलैबोरेट कर दो प्लीज सर इन द वैल्यू और आउट दूसरा याद आओ सर समझा कॉल नहीं। ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस की प्राइस डिफरेंस वही समझना है। एक मिनट देखो, Also, if you can please just throw some light on call option के लिए in the money would be something which is within strike, right? And Yeah. put option के लिए So see, let's go ahead. Okay, first let me go ahead and I'll explain. Okay. So see, कोई स्टॉक है 100 रुपीज पे, ठीक है, ये एसपी लिख देते हैं स्टॉक प्राइस। ओके, 100 रुपीज पे। तो अगर हमने 90 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, देखो कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन में अगर हमने 90 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया तो वो इन द मनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 100 पे है और ये 90 उसके अंदर है, राइट। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन आई इन द मनी। अगर हम 100 लेंगे, 100 की जगह इसको 99 कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और 110 लेंगे तो ऑटो मनी कौन नहीं जानता है। ये अगर हम इसको 99 कर देते हैं, अब अगर 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस अगर हमने सेलेक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा। और अगर हमने 110 किया तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट गाइस, इतना समझा? I mean, अगर ATM if it's 99 also it will be at the money, right? Yeah, it is 99 or it is 95. ठीक है, this will be ATM, this will be your ITM, this is OTM. ठीक है सर एक डाउट शुरू से था, जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होती है एक बार कंप्लीट कर लेते हैं सर, फिर डाउट पे आते हैं ना। अभी पहले कंप्लीट कहाँ हुआ, हो सकता है आपका डाउट सॉल्व हो जाए। पे होगी या स्पॉट पे होगी? नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका डाउट सॉल्व हो जाए ना, फिर उसके बाद वापस आते हैं। उसके बाद भी अगर डाउट रह गया तो फिर आप बताना, ठीक है? तो फिर डबल टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो देखो ये ITM ATM OTM होगा। अब डीप OTM एक चीज होती है। डीप OTM क्या हुआ, जैसे 140 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, बहुत दूर है तो उसको बोल देंगे डीप OTM। ठीक है, ये डीप OTM हो गया। ठीक है, डीप ITM क्या हो गया कि 99 पे चल रहा है, 90 ITM उसे 80 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, डीप ITM हो जाएगा। 80 60 40 ये सब आपका डीप ITM हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो प्राइसिंग की बात करते हैं। अब से जैसे ये 90 रुपये है, से एट द मनी की हम बात कर रहे हैं, 100 रुपीज है, तो ये 100 रुपीज में से मान लो 30 डेज टू एक्सपायरी बची हुई है, से 30 डेज एक्सपायरी की है। ओके, सो ये ATM कैसे 100 रुपये फॉर्म हुआ होगा, ये 100 रुपये ऐसे फॉर्म होगा, 30 दिन बचा हुआ है तो इसमें 50 रुपीज इसकी जो वैल्यू है दैट इज कॉज ऑफ टाइम कि 30 डेज है, क्योंकि 30 डेज बचे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा वैल्यू। प्लस आपका क्या होगा कि स्ट्राइक प्राइस, ये जस्ट स्ट्राइक प्राइस 99 पे चल रहा है, 100 पे जस्ट एट द मनी है, तो से 30 रुपीज इसका, ये सब एग्जाम्पल के लिए भी बता रहा हूँ। 30 रुपीज इसका क्या होगा, कॉज ऑफ स्ट्राइक प्राइस होगा। प्लस 20 रुपीज क्या होगा इसका, वोलाटिलिटी की वजह से होगा, IV। अगर वोलाटिलिटी ज्यादा होगी तो ये वैल्यू ज्यादा। अब क्या होता है, अब देखो कैसे ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। से अब एक्सपायरी को सिर्फ 10 दिन बच गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 30 डेज अब 10 दिन बचा है, तो ये 50 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, ये से और बाकी सारी चीजें मान लो सेम है, अभी सारी चीजें सेम है। ओके, अभी भी स्टॉक 99 पे से, वोलाटिलिटी भी अभी सेम है, तो अब स्टॉक की प्राइस कितनी हो गई, 20, सॉरी इस ऑप्शन की प्राइस 20 + 30 + 20 हो गई, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम थी ना। ठीक है, यही हम बोलते हैं प्रीमियम ईटिंग।
और थीटा डिके। टाइम कम हो रहा है, टाइम की वजह से जो वैल्यू कम हो रही है वो हो गया आपका थीटा डिके। तो अगर हमने ऑप्शन राइटर ने सेल किया होता ऑप्शन, तो उसको 30 रुपीज का फायदा मिलता, राइट। ये 100 की जगह ये क्या हो गया, 20 30 20 70 हो गया, राइट। तो अगर स्टॉक वहीं पे रह गया, वोलेटिलिटी भी वहीं पे रह गई, क्या चेंज हुआ, सिर्फ टाइम कम हुआ। तो ये हमने 30 रुपये जो हमने बनाया, 100 से इसकी वैल्यू 30 हो गई, ये सिर्फ लॉस ऑफ टाइम वैल्यू की वजह से हुआ। अब दूसरा चीज क्या हो सकता है कि दो ये सब कुछ कम हुआ, लेकिन हो सकता है अब स्टॉक की प्राइस, ठीक है, से जब 10 दिन बचा है, इंस्टेड ऑफ 99 स्टॉक की प्राइस अब हो गया है 110, राइट। स्टॉक की प्राइस अब 110 हो गया। तो ये हो गया, तो अगर 110 हो गया तो और 10 दिन बचे हैं तो 20 हो गया हमारा ये स्टॉक की प्राइस एट द मनी की वजह से। पहले 30 रुपए था, अब स्टॉक कितना बढ़ गया, यहाँ से 11 रुपए बढ़ गया, नहीं 21 रुपए बढ़ गया। तो ये 30 की जगह हो गया 51 फॉर एग्जाम्पल। और ये सब आपको अभी फील दिलाने के लिए कर रहे हैं, ये वैल्यूज ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं होती हैं, ठीक है। दिस इज 11 जस्ट रुपए फॉर, हुआ ना? हाँ तो ये 21 हुआ ना, हाँ 11 हुआ मान लो, ठीक है कुछ भी मान लो, मतलब से 51 हो गया, ठीक है। और प्लस आपका मान लो आई वी स्टिल सेम है, ठीक है। सो आपका टोटल प्राइस कितना हुआ, 40 और 51 91, राइट। सो स्टिल आपका 9 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस आपको देख रहे हो कैसे अलग अलग चीजें इंपैक्ट करती हैं प्राइस को। ऑप्शन की क्या क्या, ऑप्शन का प्राइस किस किस चीजों पर डिपेंड होता है, स्टॉक प्राइस पे, ठीक है, उसकी दूरी स्ट्राइक प्राइस की कितनी स्टॉक प्राइस से उस पे, प्लस आपका टाइम कितना बचा। दूसरा चीज है आईवी, आईवी की वजह से क्या होता है, वोलाटिलिटी ज्यादा हो गया। से फॉर एग्जांपल वोलाटिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है गाइस, एनी आइडिया, वोलाटिलिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है। फास्ट अप मूव एंड सडन मूवमेंट, विक्स बढ़ना। नहीं विक्स तो बढ़ना है, उसका मतलब क्या हुआ, लाइक फीलिंग वाली बात करो, क्या मतलब वोलाटिलिटी का। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन बाय सेल बहुत ज्यादा आ रहा है। quick fluctuations in price. मार्केट में डर कर रहा देखो है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बाइंग और सेलिंग हो रही है। हाँ बस मार्केट बस में बस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हाँ मार्केट में जगह से रिट्रैक हो रहा है हाँ देखो वोलेटिलिटी बढ़ गए हैं दबा के। वोलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर से वॉलेटिलिटी कम है, तो वॉलेटिलिटी कम होने का मतलब क्या हुआ कि से अगर स्टॉक 90 रुपए पे है और वॉलेटिलिटी कम, तो आप बोलोगे कि हाँ मैक्स 95 तक जाएगा, ठीक है, या 85 तक आएगा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो फिर क्या हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं भाई स्टॉक 90 से 120 भी जा सकता है और 60 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आईवी की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन, आप कॉल ऑप्शन बढ़ जाएगा। अगर 20 रुपए ऊपर से ऊपर चला गया तो आपकी आईवी ज्यादा है, मतलब कि आप एक्सपेक्ट भी तो ज्यादा कर, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है ना कि आपके डायरेक्शन में मूवमेंट हो, 50% चांस है आपके डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो वोलाटिलिटी जब ज्यादा होती है तो ये कंपोनेंट बढ़ जाता है। तो से ये 40 हो गया क्योंकि आईवी बढ़ी हुई है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 40 20 60 50 111, ठीक है। तो आपको एक्चुअली 11 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से ऑप्शंस की प्राइस इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। एंड अभी आगे और भी हम ग्रीक्स की बात करेंगे, बट ये आपको एक बेसिक आइडिया लग गया ना। अब ये जो ग्रीक्स की हम बात करेंगे वो ग्रीक्स एक्चुअली डिफाइन करते हैं ये सब मूवमेंट की, किसमें कितना होना चाहिए, क्या 10 रुपए। अब जैसे यहाँ पे तो हमने ऐसे 10 रुपए 11 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया ना कि क्या क्या चीजें, कैसे वोलेटिलिटी ज्यादा है तो क्यों ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गया ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आपका प्राइस भी आ जाए क्योंकि ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाती है। तो गेटिंग दिस आइडिया गाइस। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, अगर जैसे अभी सर विक्स करंट में चल रहा है 13 to 14 रुपीज, तो इस समय तो वोलेटिलिटी, इसकी जो वोलेटिलिटी प्राइस होगी वो तो बहुत लो होगी और इसकी मूवमेंट बहुत लो होगी, ऑप्शन की मूवमेंट। क्योंकि कभी कभी हम लोग ऑप्शन खरीदते हैं उसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो, नहीं 2-3 आप रुपए में गलत समझ रहे हो एक चीज, सुनो। विक्स अलग चीज होती है, विक्स एक तरह से एवरेज हो जाता है। हर स्टॉक की अलग वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। हर स्टॉक, निफ्टी जितना मूव करता है जुबिलेंट फूड उतना ही मूव नहीं करता है, राइट। हर स्टॉक की अलग आईवी होती है, तो हर ऑप्शन की भी अलग आईवी होती है। ओके, दैट इज विक्स का एक पार्ट होता है, उसका कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी वेरी टफ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे डेरिवेटिव समझाना पड़, डेरिवेटिव मतलब कैलकुलस वाला, एफएक्स डीएक्स वाला,
तो वो तो अब नहीं कर रहे हैं। तो हर स्टॉक की अलग आईवी होती है। यहाँ पे जब मैं विक्स वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आईवी की बात कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक वोलेटिलिटी। उस पर्टिकुलर स्टॉक की, उस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन की वोलेटिलिटी की बात हो रही है। डजंट मैटर विक्स क्या है, विक्स कुछ भी हो सकता है, बट विक्स की कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला था जिसमें विक्स उसका एक पार्ट होता है। फायदा है बस विक्स देखने का ये होता है कि विक्स अगर कम होता है तो सबकी आईवी कम हो जाती है थोड़ी। ओके, सो अगर से विक्स 13 है फॉर एग्जांपल, आप जब पूछ ही रहे हो तो बता रहा हूँ, और से बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन है जिसका आईवी 40 है, तो विक्स 26 हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो सकता है कि 60 हो जाए। ओके, बट जरूरी नहीं है कि ये अगर विक्स 13 है तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन की भी वैल्यू 13 हो। इसकी वैल्यू 40, 45, 50 वो डिपेंड करता है, वो और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसकी बेसिस पे आता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आइडिया बस ये लगता है कि हाँ विक्स अगर बढ़ गया तो फायदा क्या है विक्स बढ़ने का, मुझे समझ में आया कि हाँ इसका भी आईवी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आईवी बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा तो बेटर है उस समय शॉर्ट करो सब आउट ऑफ मनी ऑप्शन, क्योंकि सबके बढ़ेंगे ना। ठीक है सर ये विक्स क्या होता है? इन भाई अब वो गूगल करो। अब ये सर तो ये मतलब पता कैसे चलेगा कि किसी स्टॉक की आईवी कैसे, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, मतलब क्या वो करोगे जान के, मतलब क्या क्या करना है उसको जान के। अब आप खुद सोचो, मार्केट में अगर आप बैठ के पेन पेपर लेके कैलकुलेट करने लगे तो उतने टाइम में तो मूवमेंट खत्म हो जाता है। आर यू गोइंग टू डू दैट? नो, इफ यू आर सर नॉट आपने गोइंग टू डू अपने दैट, नो पॉइंट नोइंग दैट। सर आपने अपने लाइव सेशन में एक बार ये बताया था, जब जब कैंडल की हाई विक्स बनती हैं। वो विक्स नहीं यार, वो विक होता है, विक, विक्स नहीं हाँ सर, बोलते हैं उसको, वो विक होता है। तो सर मैं उसी विक की बात कर रहा हूँ। तो आपने बोला था उसका प्रीमियम ज्यादा होता है उस टाइम। नहीं यार, गलत समझे नहीं हो, नहीं दो तीन चीजें मिला रहे हो तुम। I think you can write here. You can write विक्स, VI. दिस इज इंडिया विक्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। वोलाटिलिटी का इंडेक्स है, वोलाटिलिटी इंडेक्स, जैसे निफ्टी इंडेक्स है ना, वैसे वोलाटिलिटी इंडेक्स। जो तुम बोले हो उसे बोलते हैं विक, WICK। ठीक है, वो होता है कैंडल है, कैंडल के ऊपर ऐसा बना हुआ, ये जो बना होता है इसको बोलते हैं विक। ठीक है, अब अगर ये विक बड़ी है और प्राइस नीचे आया तो आप ये बोल सकते हो ना कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, राइट। तो मतलब ये वोलाटिलिटी ज्यादा है एक तरह से देखने का, तो वो अलग अलग तरीका है समझने का। नॉट दैट दिस एंड दिस आर नॉट सेम, अलग अलग चीजें भाई वो। ठीक है ऑप्शन चेन सर, ऑप्शन चेन कैन यू? ऑप्शन चेन विल डिस्कस इन एडवांस यार। ठीक है, सर एक क्वेश्चन तो है, क्विकली डिस्कस करेंगे, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन है सर, आपने ऑनलाइन सेशन में ट्रेड लिया था और उसके बारे में बोला था कि भगवान भी आ गया तो भी वो trade- I have lost you here. Can you please say again? ब्रो मेरा एक क्वेश्चन है। Imran, wait a minute. Imran, you were saying something. You are on mute. I think there was some disturbance, Adi. Not Imran, Shahrukh. Yeah, Shahrukh Imran was his name. सर आपने एक ऑनलाइन में ट्रेड लिया था, वो भगवान भी आ गया तो वो ट्रेड, मतलब आप प्रीमियम ईटिंग की बात कर रहे थे, उसके बारे में समझाएंगे? तो वो वही बता रहा था ना कि अब जैसे टाइम I was trying to eat. Now premium is made of so many things. Like I said ना, प्रीमियम कैसे बनता है, टाइम से बनता है। ठीक है, समझाने की ब्रो मेरा एक देखो, क्वेश्चन है। एक मिनट वेट में, देखो प्रीमियम ईटिंग मतलब क्या हुआ, प्रीमियम कुछ भी, अब जैसे कोई ऑप्शन 100 रुपए का है, प्रीमियम ईटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर ये गिर गया, इसका प्रीमियम है ना 100 रुपए, अगर ये गिर के 70 रुपए आ गया तो मैंने 30 रुपए प्रीमियम ईटिंग करी। अब ये जो 30 रुपए मैंने कमाए, ये कई रीजन से हो सकते हैं, या मैं इस रीजन से भी हो सकता है कि अगर से मार्केट गिर गया, नीचे आ गया, ठीक है, सो जो स्ट्राइक प्राइस था, वो जो एटीएम ऑप्शन था मेरा आउट ऑफ मनी बन गया, इसलिए 30 रुपए आए। या हो सकता है कि गिरा तो नहीं, बट इसने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया और काफी टाइम तक ये 100 रुपए पे ही रह गया, तो फिर टाइम की वजह से ये 30 रुपए आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा रीजन क्या होता है, वोलेटिलिटी गिर गई मार्केट में, विक्स गिर गया आपका, ठीक है, बहुत सारी गुड न्यूज है, नो वन इज फकिंग अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्रीमियम कैन फॉल। अब प्रीमियम मीटिंग इज 30 रुपए की रही, लेकिन ये 30 रुपए तीनों की वजह से हो सकते हैं कंबाइंड, या एक की वजह से हो सकता है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे मार्केट से फॉर एग्जांपल साइडवेज चल रहा है, तो उस केस में मैं प्रीमियम मीटिंग टाइम के बेसिस पे करना चाहूंगा, राइट।
तो अगर टाइम के बेसिस पे करना चाहूंगा मार्केट साइडवेज, तो आई विल ट्राई टू सेल व्हाट, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे पता है ट्रेंड डाउनवर्ड है और उस समय मुझे प्रीमियम मीटिंग करनी है, जो भी रीजन हो उस समय एक्चुअली तो मुझे खरीदना चाहिए, बट तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेंड मुझे लग रहा है नीचे जाना, ब्रेक डाउन मिला, तो मैं उस समय क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन एट द मनी खरीदूं, क्योंकि वो उस समय मुझे ज्यादा फायदा कब होगा, जब एट द मनी कॉल ऑप्शन में शॉर्ट करूंगा, प्रीमियम मेरा ईट होगा। किस वजह से? क्योंकि एट द मनी ना हो, जैसे ही नीचे गिरे आउट ऑफ मनी हो जाएगा, तो उस समय स्ट्राइक प्राइस वाली की वजह से ये प्रीमियम मीटिंग करूंगा। सो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से आप ट्रेड लेते हो। प्रीमियम मीटिंग जस्ट हुआ कि जब यू आर मेकिंग प्रॉफिट कॉज द प्रीमियम वैल्यू फॉल्स, दैट्स इट। नाउ दैट फॉल कैन बी कॉज ऑफ टाइम, कॉज ऑफ सडन डायरेक्शनल मूवमेंट, जो भी हो सकता है। आप किस में क्या करना है वो डिपेंड करता है। तो सब एक ही दिन में वो प्रीमियम मतलब टाइम का प्रीमियम मीटिंग हो सकता है, मतलब इतने हाँ हो एक सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह गया तो होगा ही ऑब्वियसली। टाइम तो हमेशा कम हो रहा है ना, टाइम तो इकलौती चीज है जो तुम्हें पता है कम ही हो रही है। हाँ अब अगर सर। टाइम कम हो रहा है, ठीक है, और मार्केट भी साइडवेज रह गया, तो दो चीजें तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, मार्केट का प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस से उसकी मूवमेंट, और विक्स से कांस्टेंट रह गया, तो टाइम की वजह से आप पैसे कमाओगे, क्योंकि टाइम तो कम हो ही रहा है, राइट। आपने बहुत बार मैंने लाइव में देखे हैं कि आप हेज करते हैं, एक आउट ऑफ मनी मतलब एक आप शॉर्ट करते हैं, एक एक को आप वो बाई आगे करते हैं। पढ़ेंगे ब्रो, अभी अभी उस पे जाएंगे हम, ठीक है। वही मतलब आप कैसे कॉन्फिडेंटली एक नेकेड ऑप्शन कैसे ले सकते हैं वो। जब आपको ट्रेंड का कॉन्फिडेंस हो, इफ यू सी ए गुड ट्रेंड and you are very confident of the trend, then yeah, then in that case you can buy naked option. But I see why I try to tell people to avoid buying naked option, because buying option is something which you can do only to a certain limit. जब तक आप गरीब हो तब भी तक आप ऑप्शन बाइंग करते हो, जब आपके पास पैसा आ जाता है आप बाइंग नहीं करते हो। ठीक है। कोई 10 लाख जाके ऑप्शन नहीं खरीद सकता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। नो वन विल डू दैट, दे विल ऑलवेज शॉर्ट इट। सो आई ट्राई टू टीच यू गाइस टू डू समथिंग जो आप जिंदगी भर करो, नॉट कि 2-3 दिन के लिए। Okay, so I prefer always shorting Bro, मेरा rather bro, buying. in terms of IV, so it is Hmm. only affect when it is a like expiry, right? If it is a monthly expiry or the weekly expiry. As I No, raised no. in IV is what? IV is volatility. Okay. एक तरह से वोलेटिलिटी कब मार्केट में ज्यादा है, बहुत सारे इवेंट में रिजल्ट आने वाला है, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज जब भी मार्केट में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन कब रहता है, इलेक्शन रिजल्ट्स, बजट, स्टॉक का रिजल्ट, ठीक है, आरबीआई की मीटिंग, सो एनी काइंड ऑफ बिग इवेंट, तो वहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। okay, एज सिंपल एज दैट। so when I read Zerodha Varsity, so they are mentioned like IV cannot be negative. Okay, so Yeah. like they written there like we consider IV on the day of expiry only, because then we decide like whatever the stock is trading as a strike price, it is in the money or out of the money or at the money. So how these things work? Like how IV affect like on a daily basis, or it is going to affect the price on a like expiry day only, because we No, it calculate that. affects on a daily basis, bro. IV keeps changing. To make the calculation easy, you go and read it again. What does calculate to calculate the IV? Okay, you look at the point कि हाँ expiry पे this is the thing. So जैसे मैंने बताया ना, ये दो चीजें constant कर दो, तो तीसरे का impact देखो, ठीक है, कितना हो रहा है। दो चीजें सेम है, अगर तीसरे सिर्फ IV चेंज हो रही है तो कितना चेंज हो रहा है, then you will be able to know कि हाँ कितना चेंज आईवी की वजह से आ रहा है। So that's what they were telling there, वो वार्सी टीम जो आपने पढ़ा है, but it keeps changing on a daily basis. सर ये जो वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं ऑन रियल टाइम बेसिस, जैसे स्ट्राइक प्राइस में है, इंस्टेंटली कैन वी डिफरेंशिएट इमीडिएटली इंस्टेंटली जब स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं कि टाइम वैल्यू तो पता है, उसका स्टॉक प्राइस भी पता है, बट वोलेटिलिटी अप है कि डाउन है, कैन वी ब्रेक डाउन इन दैट वे, इज इट पॉसिबल? Volatility is not up or down, you just go and see the VIX index. Okay, see, volatility is just feeling, yaar. Try to feel it. Okay, whenever you are confused, okay, जैसे आरबीआई मीटिंग आ रही होती है, you don't know ना कि आरबीआई क्या बोलने वाली है, right? बट वो Getting the इवेंट्स point? नॉट हैपन डेली, नो, सो अभी हाँ, so वोलेटिलिटी daily doesn't change that much. Daily the fluctuation is less. Like if you see, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, hold on, give me a moment, I'll just show you something.
आपको मेरा चार्ट दिख रहा है? यस सर। ओके, देखते हैं इंडिया विक्स का इसमें चार्ट है कि नहीं। हाँ, है ना। अब देखो, अगर मैं इंडिया विक्स का चार्ट देखो डेली का, देखो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। हर दिन चेंज होती है, क्योंकि हर दिन वोलेटिलिटी हमेशा ही चेंज होती है, ऐसा नहीं कि एक दिन चेंज हो गई। तो बस आप इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हो। अब जैसे आप डेली देख रहे हो वोलेटिलिटी गिर रहा है, राइट, you can see clearly volatility is coming down. It means what? People are not getting afraid. That's why you are seeing new highs in the market. अगर लोग डरे हुए रहते, विक्स इज फियर इंडेक्स, एक तरह से लोग डरे हुए रहते तो मार्केट ऊपर नहीं जाता, क्योंकि लोग ऊपर खरीदते नहीं, विक्स नीचे जा रहा है। सो विक्स को देख के वॉलेटिलिटी का समझ में आ सकता है थोड़ा। हाँ, यू कैन टेक एन आइडिया कि व्हाट वोलेटिलिटी इज डूइंग। अब फॉर एनी एग्जांपल, यू नो, आप एक काम करना, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आप जाना एक काम करना, you guys go home, open this VIX chart, okay, open an hourly chart and go and see जिस दिन आरबीआई मीटिंग हुई थी, ठीक है, या जिस दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डे था, आप उस दिन जाके देखना विक्स आपका, यू विल सी विक्स में चेंजेस। विक्स आप देखोगे उस दिन बढ़ी हुई होगी, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है, एक एक आदमी आप सारे लोग करना, ठीक है, यू सी दैट। सर एक डाउट था, आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेल कर दे किसी भी स्टॉक का, तो देर आर चांसेस कि उसका प्रीमियम डिके होगा और हम सारा वो खा सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते सर? मतलब इसमें अगर ऐसा करेंगे तो पैसे तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, तो वही तो किया जाता है करना ही वही होता है, ठीक है। एडवांस में जब मैं आप लोग को हेजिंग सिखाऊंगा, मैं आपको 2 से 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगा व्हिच यू गाइस माइक म्यूट कर लो यार प्लीज। Advance में I'll teach you guys 2-3 strategies which you can use every month, okay, and the accuracy of those strategies 90-95%. The only thing is the moment you make loss, that 5% of the time, उस 5% टाइम बस आपको रिस्क मैनेज करना होगा कि you do not lose a lot। बस प्रॉब्लम क्या है ना, स्टॉक्स ऑप्शंस में आउट ऑफ मनी ऑप्शन जो आपका है, ठीक है, ये से स्ट्राइक प्राइस है लोअर, ये अपर, ये लोअर आपका से यहाँ पे आपका स्टॉक है। अगर आपने इसको सेल किया, जब तक आप यहाँ कहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट इसके ऊपर जाते हो ना, ये प्राइस बहुत बढ़ जाता है। एंड अगर आप होल्ड किए रहे, मोस्टली लोगों का लॉस क्या होता है, जो नए नए ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो होल्ड करते रहते हैं, ऊपर जाता रहता है, और जितना वो बनाते नहीं उतना वो एक ही ट्रेड में लॉस कर देते हैं। तो ऑप्शन ट्रेड, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, राइट। So you have to just control the risk in this selling of options. Baki, it's a very good technique to make money. But yeah, you'll need a lot of money to do that. Okay, option selling में you need 4-5 lakhs. मेरे को कंफ्यूजन है, जैसे सपोज निफ्टी चल रहा है 15,775, तो इसका एट द मनी कॉल क्या होगा? 15,800। सर स्पॉट पे डिपेंड करता है या फ्यूचर पे? हम 15,700 क्यों नहीं ले सकते? वो पुट के लिए होगा, एट द मनी। कॉल के लिए 15,800। कॉल ऊपर वाला साइड होता है ना, कॉल ऊपर वाला होता है। हाँ, कॉल के लिए ऑब्वियसली यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब कॉल ऑप्शन 15,800 का आपका एट द मनी होगा, पुट ऑप्शन देखोगे तो 15,700 का एट द मनी होगा, राइट। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक quick question I have, like this at the money, in the money, and you know, out the money, that's understandable, but at the money, is this very subjective या कुछ एक, you know, there is some benchmark के, you know, this अगर spot price के इतना ऊपर नहीं, at the money is the first strike price after the stock price, that is at the money, that's the rule. Okay. After that, it's everything is out of money. Okay, now out of money can be deep out of money or near out of money, but that's the rule. Anything even 1 point above spot price can be at the money. Exactly. Okay, cool. Okay guys, so ये हो गया आपका ऑप्शन का प्राइसिंग का। अब देखो ऑप्शन की ग्रीक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखो अब ये जो हमने चीजें, गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, अब देखो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। अब ये जो हमने बात किया था ना कि स्टॉक इतना बढ़ेगा तो ऑप्शन की प्रीमियम में कितना चेंज होगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन दीज 4 थिंग्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा समझ लो स्पीड है, ठीक है। वो 0 से 1 के बीच में होता है, स्पीड की तरह है।
ठीक है, जैसे कि कार है ना, कार का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, वो एक तरह से डेल्टा होता है। गामा क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर से स्टॉक 50 से 100 रुपये मूव होता है, ठीक है, 50 से 100 रुपये स्टॉक चला गया, 50 पॉइंट का मूव दिया स्टॉक ने, ठीक है, तो डेल्टा की वजह से अगर आपका एक वैल्यू प्रीमियम में बढ़ जाएगा, कुछ भी, डेल्टा हमेशा 0 से 1 होता है। से फॉर एग्जांपल इन द मनी ऑप्शन का ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है डेल्टा। से 1 हो आपका डेल्टा है, तो अगर स्टॉक 50 पॉइंट मूव किया तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। बट गामा समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सी डेल्टा क्या होता है कि एक तरह से स्पीड होता है कि जैसे कि आपका स्टॉक है, ठीक है, अगर आपका स्टॉक एक्स मूव करता है, अगर स्टॉक आपका 10 रुपये मूव करता है, तो ऑप्शन की वैल्यू कितना बढ़ना चाहिए? सिर्फ स्टॉक के मूवमेंट की वजह से, कितने टाइम में हुआ इससे मतलब नहीं। अगर आपका स्टॉक मैं बोलता हूँ कि निफ्टी आज 100 रुपये बढ़ती है ऊपर, तो कितना मूवमेंट होना चाहिए ऑप्शन में? ठीक है, वो डेल्टा से डिफाइन होता है। ठीक है, अब अगर आपका इन द मनी ऑप्शन है, ठीक है, तो अगर निफ्टी देखो लिखा है ना यहाँ पे, अगर स्पॉट मूव करता है 100 पॉइंट, तो नॉर्मली, और ये रूल एक तरह से याद कर लो, लिख लो आप लोग, अगर स्पॉट मूव करता है 100 पॉइंट, तो इन द मनी ऑप्शन आपका 60 से 80 पॉइंट मूव करता है मोस्टली, डेल्टा की वजह से। ठीक है, 60 से 80 पॉइंट मूव करता है क्योंकि डेल्टा उसका 0.6 to 0.8 होता है। ठीक है, एट द मनी ऑप्शन मोस्टली 20 से 60 रुपए मूव करता है क्योंकि उसका डेल्टा 0.2 to 0.6 के बीच में होता है, और आउट ऑफ मनी 0 से 20 रुपए से बढ़ेगा, दैट इज क्योंकि उसका डेल्टा 0 से 0.2 तक होता है। कहने का मतलब, अगर आपका निफ्टी के से वैल्यू, अगर कोई स्टॉक है जिसका वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपीज है, ठीक है, एंड से वो 200 हो गया, तो उसका अगर 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन था, वो भी 200 हो जाएगा करीब, 160 से वो 180 के पास पहुंच जाएगा। जो उसका 110 का कॉल ऑप्शन था, एट द मनी था, राइट, उसमें 20 से 60 रुपए की मूवमेंट आएगी, तो वो क्या होगा कि अगर वो 100 रुपए का था तो 120 से 160 होगा बस। ठीक है, और जो आउट ऑफ मनी था वो सिर्फ 0 से 20 से, मान लो 200 पे जब स्टॉक था, 200 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है, तो अगर स्टॉक 100 रुपये बढ़ा तो उसका जो इफेक्ट आएगा, वो जो आपका 200 रुपये था, 100 रुपये था, वो उसका 10 से 20 रुपए का सिर्फ फर्क आएगा। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेल्टा ऑन स्टॉक। कुछ समझ में आएगा? इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, कॉम्प्लिकेटेड है सर। आशुतोष सर एक बार रिपीट करेंगे तो भी हो जाए। अच्छा रुक जाओ, इसको लिख के समझ में आया, समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन है आपसे। नहीं आप बट एक बार रुक जाओ, जानने पहले में क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। नहीं सर, एकदम सिंपल से, आपको इतना समझाने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? बिकॉज पीपल इन द चैट दे आर लाइक के ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, यूट्यूब से सीख लो। तो हमने नहीं, फिर आपसे भी सीखने समझा के लिए देते हैं। क्लास ली है, ये बेमतलब बकवास कर रहे हैं यहाँ। नहीं यार, कोई इशू नहीं है, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं, जो पूछना है पूछो, ठीक है, सबको, सबने पैसे दिए ना, तो सबको सीखना है, राइट? किसी को आता है दैट्स फाइन, ओके, इफ यू नो सो मच दैट्स टोटली ओके, बट यू गाइस कैन आस्क एनीथिंग, ओके? वो हर क्लास में लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं भी कुछ नहीं आता, काफी लोग तभी यहाँ पे हो, राइट? सो लेट पीपल लर्न एवरीथिंग सेफ। तो चलो देखो, ऑप्शन देखते हैं, 100 रुपए का कोई ऑप्शन है, ठीक है, सर 100 परसेंटेज के रुपये। वजह से डिपेंड हाँ प्राइस बताता जो हूँ, होगा अब सुनो, समझ बस में ध्यान से सुनो। 100 रुपए का कोई स्टॉक है, ठीक है, उसका इन द मनी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90 रुपीज का हो जाएगा। 90 रुपीज का जो उसका स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी हो जाएगा, राइट? 110 रुपए का आपका हो जाएगा क्या? आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ठीक है, और आपका 160 रुपए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ मनी, राइट? अब से ये 90 रुपए का जो ऑप्शन है, इसकी वैल्यू इस समय पे 20 रुपए है, ठीक है, इसकी वैल्यू इस समय पे से मान लो 10 रुपए है, और इसकी वैल्यू मान लो 2 रुपए है, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो 100 रुपए का स्टॉक था, ये 100 से चला गया 110 पे, कितना मूव हुआ? ये 10 रुपए, राइट? तो डेल्टा इन द मनी ऑप्शन का कितना होता है? 60 to 80%, ठीक है, तो 10 रुपए का अगर मूवमेंट हुआ, मूवमेंट कितना हुआ? 10 रुपए का, तो इन द मनी ऑप्शन 90 रुपए वाले स्ट्राइक प्राइस में 60 to 80% का मूवमेंट आना चाहिए। तो से 80% है मतलब 8 रुपए, तो ये हो जाएगा 20 + 8, ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये, इसमें कितना मूवमेंट आता है, करीब आपका होता है 20 से 60%। 60%। मान लो 60% भी आया तो 6 रुपए, तो ये बढ़ गया 6 रुपए से। इसमें कितना आता है 0 से 20%, मतलब 2 प्लस 2, मान लो 20% आया था। तो अब नई वैल्यू क्या हो गया 110 पे, 110 पे इन द मनी ऑप्शन हो गया 28 रुपए, 16 रुपए, 4 रुपए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने ये कुछ भी नहीं कंसिडर किया कि ये मूवमेंट हुआ कितने टाइम में, राइट। हमने बस बोला 10 रुपए के चेंज की वजह से कितना आया चेंज, ठीक है। ये 10 रुपए का चेंज 1 घंटे में आया, आधे घंटे में, इससे हमने नहीं सोचा, राइट। सिर्फ हमने ये देखा कि ये 10 रुपए का मूवमेंट आया, उसकी वजह से कितना चेंज आया। अब देखो वीगा क्या लास्ट होता है, वाले को 2.4 कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि वो डबल हो रहा है। क्या हुआ 2.4 कर दो लास्ट वाला, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, डबल हो जा रहा है। उससे क्या हुआ यार, डबल हो जाने दो। बस मूवमेंट भी तो 100 रुपए का चीज 10% बढ़ गई भाई, 10% बढ़ने में तो डबल हो ही जाना चाहिए। यानी एग्जाम्पल की तरह लो यार, इस पे इतना फोकस मत करो। अब देखो ये आपका हमारा ये जो इम्पैक्ट है इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा की वजह से आपका ये चेंजेस आए, राइट। अब ये जो 10 रुपए का चेंज था, अगर मान लो 2 मिनट के अंदर आ गया, ठीक है, और अगर यही चीज 1 दिन के अंदर आया तो वो डिफरेंस हो गया ना, उसको बोलते हैं वीगा, ठीक है। अगर ये चेंज जल्दी आया, मान लो 2 मिनट के अंदर आ गया, तो ये वीगा की वजह से भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो उसे अगर 2 मिनट के अंदर आया तो 10 रुपए का चेंज आ रहा है सब में, ठीक है। तो अगर ये 2 मिनट के अंदर चेंज आता है तो ये ऑप्शन की प्राइस क्या हो जाती है 38, राइट। ये 26 और ये हो जाता है आपका 14 क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर आ गया, राइट। तो 2 मिनट के अंदर आ गया तो अब क्या हो सकता है ना कि आउट ऑफ मनी इन द मनी बन जाए थोड़ी देर में, भाई 2 मिनट में 10 रुपए बढ़ गया, राइट। तो इसीलिए यू सी दिस फास्ट मूव। तो वीगा क्या होता है, एक्सेलरेशन, कार की स्पीड, नहीं कार कितनी स्पीड उसकी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, वो हो गया आपका वीगा, ठीक है। सेम अगर मान लो ये 10 रुपए का चेंज पूरे दिन में आता, तो इंस्टेड ऑफ ये 10 क्या होता, ये होता कि 1 ही रुपए बस आता, राइट। तो फिर वीगा की वैल्यू से 1 होती, तो फिर उस केस में आपका ऑप्शन क्या होता है 29, 17 और 5, राइट। सो थिंक ऑफ वीगा एज व्हाट, एक्सेलरेशन। समझ गया गाइस, डेल्टा और वीगा समझ गया आपको, यस क्लियर, यस सर। आशुतोष एक क्वेश्चन ये है कि मैंने नहीं चेक किया बट किसी ने मुझे बोला था कि सुपर इन द मनी ऑप्शन से मतलब सुपर इन द मनी क्या होता है यार भैया अब वेगा और गामा में भाई डीप इतना नहीं है तो सर, सुपर वेगा और गामा हेलो आप इंटरचेंज कर दिए शायद। हाँ शायद, तो गामा एक्सेलरेशन होता है, सर ने वीगा बोल दिया। मैंने एकदम सही बोला है भाई। अच्छा ये गलत हो गया, हाँ ये वीगा इधर गामा इधर होगा, अच्छा ठीक है। ये वीगा होता है, ये जो मैं अभी बता रहा था एक्सेलरेशन, ये गलत मार्क हो गया है, ठीक है। नहीं भैया ये चार्ट सही है, चार्ट सही है। वी वॉलेटिलिटी वी वेगा। यार अब तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अरे स्पीड ऑफ डेल्टा इज गामा। हाँ भैया चार्ट सही है। नहीं, white board पे which he showed, it was Vega is acceleration. He Just gave hold the on. example of car, na? हाँ, acceleration is what I was talking about. But here it shows gamma, not vega. एक मिनट, मैं बोल सही रहा था, बोल सही रहे थे, उसको शाबाश, गामा हाँ, नहीं बोलना चाहिए था, उसको वीगा बोलना बोल चाहिए सही था। टाइम के हिसाब से जा रहा था। Acceleration is gamma। उनसे चार्ट बनाने में थोड़ी गलती हो गई, ठीक है ना भाई, चलते रहते। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को समझ में आया ना? हाँ आ गया। अच्छा तो एक क्वेश्चन है कि ये डीप इन द मनी ऑप्शन हो सर नहीं समझा। इसको नहीं समझा? मुझे नहीं समझा सर, वो कंफ्यूजन नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ? वीगा गामा में कंफ्यूजन गामा था जो मैं बताया था, वो गामा था, वीगा नहीं था। वो गामा था, वो गलती से मुंह से वीगा अगर निकल गया पता नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग सुना तब मुझे समझ में आया मैंने सही बोला या गलत बोला, बट एक्सेलरेशन इज गामा। Okay, so this chart is right? हाँ, chart is right. Okay, Chart is right. Chart is right, na? Okay, thank you sir. And I am assuming I would have said gamma only, but in case if I said vega, that is not vega, that is gamma. Okay. But anyway, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है? स्पीड होता है कितना मूवमेंट हुआ। गामा क्या होता है? वो मूवमेंट कितनी स्पीड से हुआ,
ठीक है, ये दोनों चीज हमेशा पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑप्शन बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो ऑप्शन कम होता है। गामा भी ऐसे ही, स्पीड अगर फास्ट है तो ऑप्शन की प्राइस ज्यादा तेज बढ़ेगी, गामा अगर स्लो है तो स्पीड ऑप्शन की प्राइस स्लोली बढ़ेगी। बट हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इन दोनों का, राइट, दोनों ऐड करते हैं। अब आते हैं थीटा पे। थीटा क्या करता है, वो टाइम वैल्यू जो मैं आपको समझाया था। अब जैसे अगर टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्टॉक के ऊपर जाने की, राइट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी नीचे आने की भी ज्यादा है, तो कॉल पुट दोनों की ज्यादा होगी। कोई स्टॉक आज 100 रुपए है, एक्सपायरी में 30 दिन है, तो भाई 100 से 120 जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, 100 से 80 जाने की भी प्रोबेबिलिटी, के दोनों के लिए 30 दिन का समय है, राइट। सो दोनों में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी और इसलिए ऑप्शन का प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन थीटा क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता जाता है, राइट, टाइम डिक्रीज हो रहा है। ओके, जैसे अब एक दिन पहले भी अगर स्टॉक 100 पे है तो एक दिन में 20% मूव तो यार डिफिकल्ट है। ओके, सो थीटा वैल्यू बहुत कम होगी तो ऑप्शन की प्राइस कम हो जाएगी। ओके, सो थीटा को ऐसे समझो, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू वो ऑप्शन इज थीटा। ओके, जितना टाइम ज्यादा रहेगा ऑप्शन की प्राइस ज्यादा होगी, जितना टाइम कम रहेगा उतना ऑप्शन की प्राइस कम रहेगी। रीजन, टाइम ज्यादा रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उस इवेंट के होने का, 100 से 120 होने का। अगर टाइम ज्यादा है तो चांस ज्यादा है, अगर एक ही घंटे का टाइम है तो चांस कम है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो गॉट इट गाइस, थीटा क्या होता है? और जो आप इसमें बोलते हो कि फ्राइडे को प्रीमियम नहीं, ऑप्शंस नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि प्रीमियम हाई होता है, वो इसी की वजह से होता है क्योंकि एक्सपायरी में काफ़ी दिन होते हैं तो थीटा एग्जैक्टली, ज़्यादा। बहुत ज्यादा दिन होता है तो प्रीमियम हाई होता है, क्योंकि थीटा वैल्यू मतलब डीके होता ही नहीं है। सबको पता है कि यार अभी 5 दिन 6 दिन है, ठीक है। और मेनली क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ जो फ्राइडे का दिन होता है उस दिन तो नए पोजीशंस बनते हैं ना, तो आपको पता नहीं ना कि बड़े इन्वेस्टर किस साइड में पोजीशनिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग। ओके, आपके पास डेटा ही नहीं है कुछ, वो तो एंड ऑफ द डे पे आपको डेटा आएगा। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड बाइंग ऑप्शंस ऑन फ्राइडे। प्लस क्या होता है, फ्राइडे को आप खरीदते हो, सैटरडे संडे तो ऐसी चुतिया पे में निकल जाता है, आप ट्रेड भी नहीं करते हो, बट टाइम तो कम हो ही गया ना, 2 दिन कम हो गया, राइट। सो यस सर। थीटा की वजह से वैसे ही प्रीमियम कम हो जाएगा। अब 2 दिन बाद फ्राइडे को अगर आपने कुछ खरीदा तो मंडे को मार्क से फॉर एग्जांपल एट द मनी आपने ऑप्शन खरीदा, से 100 रुपए का स्टॉक है, आपने आपने 110 का ऑप्शन या इन द मनी खरीद लिया, 100 रुपए का वाला ही खरीद लिया, ठीक है, कॉल ऑप्शन। अब मंडे को अगर वो 100 रुपए खुलेगा, लेकिन 2 दिन तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं, तो उसका प्राइस वैसे ही गिर जाएगा, भले वो सेम प्राइस पे खुले, क्योंकि टाइम कम हो गया, राइट। सो इसीलिए ऐसे कि फ्राइडेज यू अवॉइड बाइंग ऑप्शंस एंड कीपिंग इट फॉर मंडे, कभी मत करो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि अब जैसे बीजेपी का इलेक्शन लड़ गई, मंडे को रिजल्ट, संडे को रिजल्ट आ रहा है, यू आर वेरी श्योर कि अब बीजेपी जीत रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बिकॉज देन यू नो कि जब मार्केट ओपन होगा तो बहुत ऊपर होगा, तो देन डजंट मेक एनी डिफरेंस 2 दिन का जो टाइम लॉस हुआ, बट नॉर्मली यू शुड नॉट बाय, सर ठीक इसमें है। जैसे अगर सेल कर कोई सकते हैं क्या स्टॉक, फिर? सर कोई स्टॉक फ्राइडे को बेरिश सेल्फ है भी अगर, चल सकते हैं। सर वन बाय आशुतोष वन। सर, आशुतोष सर, सर का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें डेल्टा, गामा और वेगा न्यूट्रल हो और थीटा का वैल्यू हमेशा खाते रहेंगे हाँ, तो प्रीमियम वही तो मीटिंग। ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है ना, दैट विल, अभी मैं इसके आगे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में बताऊंगा, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में हम एडवांस में करेंगे, बट बताऊंगा मैं स्ट्रेटेजी सारी कौन सी किस सिचुएशन में यूज होता है, वो दैट इज नेक्स्ट। ओके, सर फ्राइडे Ashutosh, को so what he said just now about delta, gamma and vega being stable, तो थीटा के ऊपर प्ले किया जा सकता है, राइट, एज एन या ऑप्शन बिकॉज सेलर। थीटा इज डिक्रीजिंग, सो यू कैन प्ले विथ डेल्टा गामा कि हाँ इतना मूवमेंट हो इतना ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेलिंग इज व्हाट, it's just simply that no, you know that theta is decreasing, but you expect that delta will not be that much. Okay, delta will not be that much that your out of money becomes in the money. Okay, so you are expecting to cash in that whole premium just because of time decay. Simple, right? Thanks. Sir, calculation of hedge is depend on theta, theta, gamma, and vega. That depends, but like I'm saying, no, you don't need to calculate with paper and pen. You just need to have a, that वो फीलिंग होनी चाहिए यार कि क्या हो सकता है, ठीक है। वो क्योंकि मार्केट में तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि तुम बैठ के कैलकुलेट करोगे, ये सब चीजें कौन करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। ओनली कंप्यूटर्स डू दैट। ट्रेड ही निकल जाएगा सर। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू गेट द फील। डेल्टा क्या है, मूवमेंट है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 15,800 पे चल रही है, मैंने जाकर 16,600 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, ठीक है। वाई? बिकॉज कैन डू आई रियली एक्सपेक्ट कि निफ्टी 5 दिन में 800 पॉइंट ऊपर जाएगी? नहीं। अब उसके लिए मैं बैठ के कैलकुलेट थोड़े ना करूंगा
कि ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ. No, you don't need to do that. नहीं नहीं सर, जैसे आप हेज करते हो ना सर, तो आपको मैं देखता हूँ लाइव मार्केट में आप खुद से कैलकुलेट करते हो, और वहां पे बोलते बोलते चूंकि आपको प्रैक्टिस हो नहीं, मैं चुकी है. कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस अपनी देखता हूँ. अच्छा ये इतना हो सकता है तो ये इतना हो सकता है. आइडिया, जैसे अब ये देखो 60 to 80 है, कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि 61 ही होना चाहिए. अब ये 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, राइट, 70 हो सकता है. तो एक आइडिया लगाना है, एग्जैक्ट नहीं लगाने की जरूरत है. ओके, फिर वीगा क्या हो? theta affects. Sorry, yeah, you continue. Ask. no, go ahead. So I was about to ask if theta affects all three types of options in the same way as gamma, or it varies like delta. So theta is just decreasing. Okay, theta is time value. Time value keeps on decreasing. There is nothing else. It just keeps on. There is a certain premium which is put on your option, which is cause of time, and with decrease in time value, that keeps decreasing. As in, so in say beginning, if an option is priced at 100 rupees, okay, 30 days are left, so theta will be cause of 60 rupees. Okay, now as time keeps on decreasing, that 60 will keep on decreasing from 60 to 20 to 30 to 10 to 0. Okay, by the end of the expiry. The percentage that it affects, does it affect in the money, out of the money, and at the money Yeah, at the it same affects rate, all or of, yes. Theta is same. आशुतोष सर, ये जो आपने ऑप्शन ग्रीक्स कॉल के बारे में बताया, एक बार पुट के बारे में बता दीजिए. सेम यार, पुट में जैसे मान लो 10 रुपए डिक्रीज हुआ, ठीक है, 100 से मान लो 90 हो गया, ठीक है, तो आपका जो इन द मनी 90 रुपीज का पुट ऑप्शन होगा, राइट. सॉरी, आशुतोष सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. पुट में इन द मनी ओटीएम और आईटीएम कैसे होगा? ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे? पुट में क्या 100 रुपए का है, ये कॉल ऑप्शन के लिए था, राइट. ये समझ में आया ना. पुट ऑप्शन में क्या होगा, इन द मनी आपका 110 हो जाएगा, एट द मनी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, और आउट ऑफ मनी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है. फिर अगर ये 100 से ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 10 रुपए इधर गिरा, ठीक है. सो ये 110 वाला क्या है, ये 8 रुपए बढ़ गया, ठीक है. 60 to 80, 8 रुपए ऐड किया था ना, ठीक है. तो मान लो ये 20 रुपए था, ये 8 रुपए था, ये 10 रुपए था, सेम एग्जांपल, ठीक है. और ये कितना था, 2 रुपए था, ये बताया था ना, 20 10 2 रुपए का था ये ऑप्शन. तो ये 20 रुपए अब हो गया 28, ये 10 रुपए हो गया, ये 10 रुपए जो था ये आपका 6 रुपए बढ़ गया, 16 हो गया, और ये 2 रुपए आपका 2 रुपए बढ़ गया, 4 हो गया. समझ में आया? सेम है. Bro, I have one question. So, like theta value cannot be negative, right? If it is related to time, so when the time is like expiry is coming, like on the Thursday, so it cannot go in negative, right? So maximum loss we can get from theta is like till 0, right? Yeah, theta can go to 0. Okay. Yeah. एक क्वेश्चन है, सपोज अभी अपना 15,600 का एक स्ट्राइक प्राइस है, so is there a way we can calculate what is the theta, gamma and you don't need to calculate that here, you just go on certain software, sensible पे आपको पता चल जाएगा what is theta, what is gamma. Let me just check, मेरा open है तो मैं दिखाई देता हूँ. Option chain, just hold on. हाँ सर, वो अब स्टॉक्स पे भी दिखाता है, ग्रीक्स करके एक कॉलम है उसमें. स्टॉक्स पे भी दिखाता है, तो यू कैन सी दैट. बट करना क्या है उसका जान के, मतलब डजंट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ. ओके सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. एक मिनट, मैं अभी देख रहा हूँ. मेरे को खुद मैंने आज तक यूज नहीं किया ना, क्योंकि मुझे बोल रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं है. I mean, it will show the weightage of एक price में कितना weightage theta का, vega का. It will show, but you don't need to know exact value. Yeah, that's fine. No, I just wanted you to anyway know ना कि out of money option will be totally theta value only, right? Right. If some option is out of money, okay, the whole value that it will hold is because of theta only, because of time, because only about your expectation that option can become in the money, right? Right. So you know that the most composition in that is of theta. Right. Okay, so you don't need to actually go and see the weightage. It's just very intuitive. Same thing stocks option में भी implement है. Yeah, obviously यार, options theory is same. सर अगर हम फ्राइडे को कोई पोजीशन में just keep on going.
someone सर is saying here, don't प्रैक्टिकल interrupt. नहीं सॉरी नहीं, सर कोई पहले बोल रहा था, उसको कंप्लीट करने दो। सर फ्राइडे को अगर हम कोई पोजीशन लेने के लिए नहीं सोच, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कोई ट्रेड लेने के लिए, तो हम एक ओटीएम ऑप्शन से शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। तो हाँ, बट ओटीएम का तुम्हें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। मान लो जो तुमने ओटीएम किया, मंडे को आईटीएम हो गया तो हाँ, फिर तो लग जाएगी अच्छे बट से। डीप ओटीएम भी तो कर सकते हैं ना। Yeah, you can do deep OTM. So Yeah. that's what. See, Yeah, I I have mean, done we'll it a discuss lot. it. Start अच्छा. of the month. Okay. I used to short deep OTM option, but which deep OTM you have to short, that will learn in advance. How to decide that. Right, yeah. Okay. तो जो भी ओटीएम हो सर, मतलब अगर अभी अभी फ्राइडे को एटीएम में लिए हैं, फिर मंडे को वो ओटीएम हो गया, ठीक है, तो थर्सडे को तो एक्सपायर होना ही है, तो जीरो पे आना ही है, तो प्रॉफिट तो होगा ना सर। लेकिन ओटीएम तुम्हारा एटीएम आईटीएम भी तो बन सकता है भाई। हाउ डू यू नो? एक मिनट बताओ। 15,750 पे निफ्टी है, राइट? 16,000 कॉल ऑप्शन ओटीएम है, तो क्या तुम 16,000 कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो? क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि थर्सडे को निफ्टी 16,000 के नीचे ही एक्सपायर होने वाली है? डू यू नो दैट? पता है? नहीं। बस वही आंसर है तुम्हारा। ऐसे थोड़े ना ओटीएम कोई भी जाके आप खड़े होकर शॉर्ट कर दोगे। यू हैव टू हैव अ लॉजिक व्हाई दिस ओटीएम। ओके, दैट विल लर्न इन एडवांस, डोंट वरी। ओके, अभी हम आशुतोष, हाँ सर ओवरनाइट थीटा डिके होता है सर? या थीटा डी के टाइम तो हमेशा कम होता है ना। टाइम तो हर समय, हर मोमेंट, हर सेकंड कम हो रहा है भाई। वो तो कंटिन्यूअस होता है। मैं समय हूँ तो फिर ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन था। सपोज हम 500 पॉइंट ऊपर फ्राइडे को कोई शॉर्ट लेके चले जाए, तो 2 दिन का हमें थीटा डिके का प्रॉफिट हो सकता है ना उसमें? हाँ, हो सकता है, मतलब सी हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है डिपेंड करता है ना कि वेयर इज मार्केट ओपनिंग ऑन मंडे। राइट, सो यू हैव टू हैव अ लॉजिक व्हिच स्ट्राइक प्राइस टू शॉर्ट और बाय। ओके, शॉर्ट से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। फ्राइडे को सेल करने में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि सैटरडे संडे आपके कुछ ऐसे न्यूज आ सकते हैं जो मार्केट को एक डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो जब भी एक डायरेक्शन में जाता है ऑप्शन सेलर को हमेशा एक डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है गाइस, सो you always have to have a logic behind trade. It's not that simple कि हाँ आउट ऑफ मनी हमेशा शॉर्ट करोगे पैसा बना। फिर तो सब वही करते हैं ना यार। बैंक से जाते 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते, हर महीने छाप रहे हैं 10-10%। वही सोच के मैं पूछा। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि मतलब जरूरी नहीं है कि थर्सडे को जीरो पे ही प्राइस क्लोज हो। नहीं, जरूर थर्सडे को अगर ओटीएम रह गया तब तो जीरो होगा ना। अगर थर्सडे को ओटीएम रहा ही नहीं, फॉर एग्जांपल अभी ये एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी 35,000, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट विल क्रॉस 35,500 आई गेस, राइट? हाँ, 35,000 only. So I was shorting in morning, but it closed above that, right? So that became ITM. There was and it had a value, intrinsic value. ठीक है? So Vega को explain कर दीजिए। Vega is IV, like I mentioned. So Vega, like I said ना, कि think of it as a perception. Market में क्या perception? Vega is IV. If the market is afraid, okay, if there is a lot of bad news, some event is going to happen which might impact market, so IV will be high. That is Vega. Vega is nothing else but IV. So like we explained, पहले ही समझा चुका हूँ, IV है Vega। ठीक है, तो इसका एक component होता है प्रीमियम। That's it. ठीक है, तो ये ऑप्शन ग्रीक्स हो गया। Yeah, I have just one small question. So I guess few minutes back you said कि फ्राइडे को हम लोगों को ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए because ऑप्शन सेलर्स भी उस टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे ऑप्शन राइट करना है। So can you explain that part कि उससे क्या इफेक्ट होगा, लाइक कैसे चेंज होगा, व्हाट इज द साइकोलॉजी, मतलब वो पार्ट मुझे समझ नहीं आया। लाइक फ्राइडे को क्या हो रहा है? फर्स्ट डे है, राइट, ऑफ न्यू एक्सपायरी। ओके, दैट डे new contracts are there to be traded. Okay, so you don't have the visibility, like are big players writing or are they and if they are writing, at what level they are writing. Say for example Nifty is at 15,750. Okay, now Friday morning I don't know what is happening at the end of Friday. Okay, if I see that a lot of writing has happened at 16,000, okay, then I will be like, okay, it means that on Monday, if Nifty opens at around 16,000 and it falls, I know yeah, I can go short. Okay, because 16,000 bought writing. But similarly, instead of 16,000, say Friday end pay, I see the data and I see there is a lot of call writing instead of 16,500. It means what? It means it's a clear message that people are bullish. They are not
expecting Nifty to stop, come below 16,000 or not cross it. They are actually expecting Nifty to cross 16,000. So in that case, if market on Monday open gaps up, I'll be looking to buy whenever it falls, right? So your decision on whether to buy or sell will depend on the data that you're getting at the end of the day. But Friday morning, you don't have that data. So how you will know what to do for Monday? So that's why I say you avoid on Friday. Okay, so option writing data defines the sentiment of the market, right? Yeah, it's one of the factors which you should use. Okay. सर जी गामा बस्ट एंड एक्सपायरी के दिन जो होता है ना ऑप्शन फीस वो शॉर्ट 30 सेकंड में समझा दोगे, बहुत रिटेलर फंस जाते हैं उसका, तो सबको बेनिफिट हो जाएगा। नहीं समझा मैं यार, फिर से बोल रहे, क्या बोल रहे हो? सर गामा बस्ट एंड ऑप्शन फीस जो हो जाता है ना एंड में एक्सपायरी, हाँ तो क्या होता है एंड में? यही तो होता है ना, जो आपका जो चेंज होता है एंड ऑफ द डे एक्सपायरी पे कोई ऑप्शन आउट ऑफ मनी है, ठीक है। से जैसे अभी ये एक्सपायरी देख लो 35,100 जो कॉल ऑप्शन था बैंक निफ्टी का, वो आउट ऑफ मनी था अराउंड 2 बजे तक, तो उसकी वैल्यू बहुत कम थी, 15-20 रुपए थी, क्योंकि थीटा वैल्यू एकदम जीरो, 1 घंटे बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं एक्सपायर होने में, थीटा खत्म, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। आईवी की वजह से वैल्यू उतनी कुछ ज्यादा होती नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज आता है 2-4-3 रुपए का, वो भी बेस प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस आपका जो डेल्टा था मूवमेंट मार्केट में जो हो रहा था वो उतना हो नहीं रहा था, बचा एक चीज बस गामा। अब जैसे ही एंड 1 घंटे के अंदर जैसे ही आपका मूवमेंट हुआ, फास्ट हुआ, से 10 मिनट में जब बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, सो पीपल स्टार्टेड 10 मिनट में 100 पॉइंट गया तो अगले 1 घंटे में तो 300-400 पॉइंट जा सकता है, तो उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वहां पे पूरा जो चेंज आया गामा की वजह से आया, राइट। सो दैट्स हाउ। अब ये सब चीजें फील करने वाली हैं यार, ये बैठ के कैलकुलेट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके सर एक क्वेश्चन पूछना था, जैसा सपोज इन द मनी एक ऑप्शन मैंने परचेस किया हुआ है, आज 15,600 का मैंने लिया हुआ है, सर ये एंड ऑफ एक्सपायरी इसका क्या होगा? अगर नीचे आया तो इसका एक्सपायरी कहाँ पे होती है, इस पे डिपेंड करता है ना। इन बोथ द सिचुएशंस अगर कम होता है तो इसका क्या होगा, और अगर मैंने इसको जीरो होने दिया, जीरो नहीं हुआ सपोज, तो मुझे इसका यानी डिलीवरी लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी तो हाँ, अगर इन द मनी रह गया आपको तो यू हैव टू टेक द डिलीवरी, ऐसा फिजिकल सेटलमेंट कर दे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि वो स्टॉक नहीं है ना, खरीद के रख तो सकते नहीं हो। फिजिकल सेटलमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जिसका लिस्ट है, देख लो आप, अगर आपका इन द मनी हो यू नीड टू टेक द डिलीवरी। और अभी जैसे 15,700 के ऊपर चल रहा है तो और नीचे आया तो इसके रेट बढ़ेंगे, है ना? डिपेंड करता है ना, कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन होगा, कॉल ऑप्शन तो नीचे आएगा तो रेट थोड़े ना बढ़ेगा, फिर तो कम होगा ना। ओके राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आप जब ट्रेड करते हो तो वीकली ऑप्शन लेते हो या मंथली ऑप्शन लेते हो, और उसमें मैं ऑप्शन वीकली लेता हूँ यार, आई ऑलवेज टेक वीकली बिकॉज लिक्विडिटी इज हाई। ओके, और ऑप्शन ग्रिक का इसमें कितना फर्क पड़ता है दोनों में? हाँ, उसकी बेसिस पे तो वी डिसाइड ना कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, राइट। कैसे ट्रेडिंग करते हैं गाइस वो एडवांस में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो लेट्स फोकस ऑन थ्योरी, नहीं समझ में आस्क मी। ट्रेडिंग में कैसे इसका यूज होता है एडवांस में हम देखेंगे, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट। अब देखो ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं। ऑप्शन की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, 2 तरह की होती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल आपका होता है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, ठीक है, आयन कॉन्डोर, जो कि मैं एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम एडवांस में डिस्कस करेंगे। उसका रीजन है कुछ जिस वजह से मैं नहीं डिस्कस करूंगा, विल टॉक अबाउट इट। ओके, डायरेक्शनल्स विल डिस्कस बिकॉज दीज आर समथिंग व्हिच यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। सो अब देखो ये बुल कॉल स्प्रेड है। अब हर ऑप्शन स्ट्रेटजी हर समय नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज करने के पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, वो देख लो उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये उसका पे ऑफ ग्राफ है, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, पहले तो कंडीशंस, कब हम बुल कॉल स्प्रेड लगाते हैं, जब हमारा व्यू माइल्डली बुलिश हो, मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने का, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई मूवमेंट, वी आर एक्सपेक्टिंग हाँ मॉडरेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में वी आर एक्सपेक्टिंग हाँ 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा दिन में, सो इन दैट केस वी कैन यूज बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। रिस्क क्या होता है इसमें, लिमिटेड होता है, ठीक है। रिवॉर्ड भी आपका लिमिटेड होता है। कैसे सेटअप करते हैं, तो इसमें करना क्या होता है, एक एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना होता है और एक आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन सेल करना होता है, ठीक है। तो आपका बनता है बुल कॉल स्प्रेड। फॉर एग्जांपल 15,750 पे निफ्टी है,
तो आपका 15,800 का कॉल ऑप्शन आप बाई करोगे। उसको अगर मान लो वो नीचे चला गया निफ्टी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन आप सेल कर दोगे। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मॉडरेट मूवमेंट हो। तो मॉडरेट मूवमेंट मतलब ज्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप 50-60 पॉइंट का मूवमेंट कर रहे हो, तो आप उस केस में 15,750 का अगर आपने बाई किया है, तो आप 50-60 पॉइंट का अगर मूवमेंट आपका एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या करोगे, 150 पॉइंट बाहर का आउट ऑफ मनी सेल कर दो, क्योंकि आप उससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हो, राइट। सो दैट्स हाउ दिस स्ट्रेटेजी इज कंस्ट्रक्टेड। ये स्ट्रेटेजी मैंने यूज भी किया था अभी कुछ ही दिनों पहले, अगर आपको याद होगा तो मार्केट में, राइट, सेम थिंग वी यूज्ड, यस सर, हाँ किया राइट। था। So that was mainly because I was not Yeah. very bullish on the market. I was like, हाँ ठीक है, 60-70 पॉइंट का। तो ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप यूज कर सकते हो इंट्राडे में, जब भी आप सपोर्ट पे देखो मार्केट को, रिवर्सल एक्सपेक्ट करो, यू कैन यूज दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको डेबिट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। डेबिट स्ट्रेटजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने जब बाई किया तो एट द मनी थोड़ा महंगा होगा, राइट, आउट ऑफ मनी सस्ता होगा, तो आपने पैसा एक्चुअली दिया है। ठीक है, जब आपने सेल किया आउट ऑफ मनी तो आपको प्रीमियम मिला है, राइट, लेकिन क्या जो आपको मिला है आउट ऑफ मनी वो कम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 15, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा है इजी ना? होगा। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल। ओके, जस्ट एक लिमिटेड रिवार्ड, लिमिटेड रिस्क, 2 lakhs बाय 1, ठीक है, स्टॉक प्राइस, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस सही है, ये तो बुल कॉल स्प्रेड सब हुआ है। hold on guys, I'll just explain you this by example what I mean. Okay, थोड़ा easy इसमें रहेगा। ये दिक्कत है कि इसमें थीटा डीके का फायदा नहीं होता, yes exactly, क्योंकि दोनों, क्योंकि आप बाइंग कर रहे हैं ना एटीएम पे। just hold on guys, I'll just explain it by example, it will become much clearer. Okay, this, so for example अब देखो निफ्टी अभी कितने पे चल रही है, 15,800 पे। ठीक है, तो 15,800 पे चल रहा है, तो आपका हो गया 15,850 का जो कॉल ऑप्शन हो गया, वो आपका हो जाएगा एट द मनी। PPT. We are seeing only PPT. Ashutosh, are you sharing something? Because we are not able to see. Sorry. We are on PPT only. okay, just hold on, sorry यार, मुझे सीखना पड़ेगा अपने सिस्टम से। हाँ, अभी दिख रहा है गाइस? यस। ओके, तब देखो निफ्टी 15,800 पे चल रही है। ठीक है, सो 850 कॉल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एट द मनी, राइट। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट, कब लगाते हैं ये बुल कॉल स्प्रेड, जब आई एम एक्सपेक्टिंग मॉडरेटली बुलिश कंडीशन, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग 50-60-70 पॉइंट का मूवमेंट। ओके, सो उस केस में मैं ऐसा आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीदना चाहूंगा जो उतने मूवमेंट के बाद भी आउट ऑफ मनी हो। ठीक है, सो 800 पे चल रही है, तो 150 पॉइंट बाद का 950 का ऑप्शन जो होगा कॉल ऑप्शन, वो आउट ऑफ मनी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये आउट ऑफ मनी ऑप्शन हो गया। अब मैं इसमें स्ट्रेटेजी में क्या करूंगा, इसको बाई कर लूंगा एक लॉट, ठीक है, और इसको एक लॉट सेल कर लूंगा। दैट इज द स्ट्रेटेजी सेइंग, राइट, दैट्स व्हाट वी लर्न, विल बाय वन at the money call option, right. The strategy is what, at the money one call option will buy, sell one out of money. Why the strategy was built like this, because if I am expecting, I am mildly bullish, okay, so I bought at the money so that 50-60 पॉइंट का मूवमेंट है। अब देखो माइल्डली बुलिश है, तो मैंने क्यों एट द मनी खरीदा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बाहर का खरीदूंगा, 60 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो मेरा ऑप्शन तो अभी भी आउट ऑफ मनी रह जाएगा, उसमें ज्यादा मूवमेंट होगा नहीं डेल्टा वीगा की वजह से, राइट। So that's why we'll select at the money. At the same time, we will sell one out of money call option. Why? Because say example ये गिर गया, my view is only mildly bullish. Possible ये गिर जाए, right? तो अगर गिर गया तो इस केस में क्या होगा? This will give me some profits. So it will reduce my risk. Getting my point? Yes. Because it might be better if you explain it on Sensible. They have this strategy builder which is very useful. Yes, we can do that on Sensible. For example, see. I have a question.
Why didn't we buy ITM call option? ITM, if the market reverses, its premium is anyway high. Market reverses, it becomes OTM. So everything goes against you. The theta, the Vega, the delta, all three will go against you. So that's why you don't buy. Liquidity problem is also here. No, liquidity is the problem only in deep ITM option. Okay. हाँ, so for example, देखो हम क्या कर रहे थे 15 से 800 call option we are buying and 15 950 put option. Sorry, 950 call option we were selling. See, this is it. So you see, maximum your profit is also capped, your loss is also capped. So limited risk reward strategy. So your risk is also capped and your reward. So like your maximum profit can be this 6727, your maximum loss can be minus 4000. So that's the now इसमें क्या हुआ, हमने इस ट्रेड में क्या किया, हमने जीरोधा को 67 रुपीज दिए और हमें वापस सेल करने पे जीरोधा ने 31 रुपीज दिए। तो नेट में हमने ज्यादा पैसे दिए, इसलिए इसको बोलते हैं डेबिट स्ट्रेटजी। ओके, सेम तरीका अब क्या कर सकते, मैं प्रेफर करता हूँ नेट क्रेडिट स्ट्रेटजीज आई प्रेफर। ओके, व्हिच आई विल गो नेक्स्ट। सो दिस इज बुल पुट स्प्रेड, ये होता है नेक्स्ट स्ट्रेटजी होता है, ये भी सेम कंडीशन सेम है, माइल्डली बुलिश। पुट देख के ये मत सोचना है कि सेल स्टार्टिंग में यूज होता है, ये भी तभी हम लगाते हैं स्ट्रेटजी जब हम बुलिश हों। बस इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है, कि ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी होता है। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, वन आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाई करते हैं और सेल करते हैं वन इन द मनी पुट ऑप्शन। ठीक है, अब होता क्या है, इसकी वजह से देखो क्या होता है। Sir, we cannot see your. एक मिनट आंसर हो गया। see my screen now guys? Yes. Yes sir. ठीक है। Yes, sir. देख रहे हैं ना स्क्रीन अभी? यस सर। हाँ, अब देखो हमने क्या किया था, हमने लॉन्ग लिया था। कैसे लॉन्ग लिया था हमने बाई किया था एट द मनी, सेल किया था आउट ऑफ मनी। लॉजिक क्या था कि आउट ऑफ मनी ज्यादा बढ़ेगा नहीं, 50-60 पॉइंट का मूवमेंट है, सो ये आउट ऑफ मनी रहेगा, एट द मनी ज्यादा बढ़ेगा। कॉज वाई, डेल्टा एंड वीगा, दो की वजह से। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई कैन डू, मुझे पता ही है जब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू टेक ए स्ट्रेटेजी जिसमें मुझे डेल्टा का, वीगा का और थीटा का, तीनों का एडवांटेज में। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, डेल्टा वीगा तो अपने एडवांटेज में, बट थीटा का तो इसमें भी नुकसान है। सही, अगर धीरे धीरे मूवमेंट होता है तो प्रीमियम लॉस तो यहाँ पे भी होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ कॉल ऑप्शन हम पुट ऑप्शन से वर्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता ही ये ऊपर जाने वाला है, तो मैं एक इन द मनी पुट ऑप्शन 15,800 पे चल रहा है, तो 15,850 का जो पुट ऑप्शन हो गया वो इन द मनी हो गया, उसको आई विल सेल। क्यों आई विल सेल, कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो देखो इसमें क्या क्या फायदा होगा, डेल्टा से भी हमें पैसा मिलेगा, राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये डेल्टा की वजह से ये गिरेगा इसकी वैल्यू, वीगा की वजह से भी फायदा मिलेगा और थीटा की वजह से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि टाइम तो वैसे भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो सेलिंग करने पे हमें क्या हो रहा है कि तीनों का फायदा मिल रहा है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हो सकता है ना मार्केट हम ऊपर जाने की वजह से नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक आउट ऑफ मनी ऑप्शन जो है बाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक आउट ऑफ मनी 15,000 से 700 का जो पुट है, विल गो अहेड एंड विल बाय दैट जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इन केस अगर मार्केट गिर जाता है नीचे, तो स्टिल वी मेक सम मनी एंड वी डू नॉट मेक सो मच लॉस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। अब इस केस में क्या हुआ, हमने सेल किया था 110 रुपए पे, तो हमें 110 रुपए जीरोधा से मिले और हमने बाय किया था 50 रुपए पे, तो हमने 50 दिया, 110 लिया, तो नेट में हमें क्रेडिट हुआ 60 रुपए, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी। तो सर पहले हमको बाय करना है ना सेल करना है? क्या बोल रहे हो गाइस? सर पहले हमको बाय करना है ना सेल करना है? दोनों एक साथ करो यार। वो तो बाई सेल वो अलग फंडा है, वो जो मैं करता हूँ बाई सेल, वो तो
मार्जिन कम है इसलिए करना पड़ता है वैसे उस तरीके से, ठीक है। वो एक साइड एक टाइम पे Just I have one question. हम्म So this strategy seems to be superior than the previous bull call, exactly, right? So is because there any here you are advantage getting here? benefit of theta also. Here theta is Yeah, so working there is no against use of you. bull call, right? Is there any bull advantage for the bull call strategy? No, advantage is just that, in case, see here your profit is kind of, the only advantage that in bull call spread over bear put is the movement when it happens into direction and it is fast. Okay, it becomes very quickly that ATM will become ITM, right? So ATM में क्या होता है? In ATM, what happens? Your delta is around 20 to 60%. So for every 10-point movement, you are getting 2 to 6-point movement only. But the moment it becomes ITM, its delta will become from 80 to 100%, right? So it will rise very fast. So that's the only advantage you get in bull call spread. Okay, because it becomes ATM becomes ITM, and the rise becomes very fast. So you can make money quickly here. Okay, but to make money quickly, if the same time what happens agar market doesn't move very quickly, then in that case, cause of theta, you will also end up losing also. Okay, so this I prefer is a better strategy. इसको भी strategy So do you building mean सिखाओगे that? एक बार? One second, your statement is completed. Do you mean that erosion happens? Addition happens faster than erosion in the case of a movement? Yeah, The addition premium happens addition faster. happens. Yeah, the moment it becomes ITM, the addition starts happening very faster, because you see, something which was from 20 to 60% is now from 80 to 100%, right? So percentage wise, you see that the effect of an option becoming from ATM to ITM, the moment it becomes ITM, the rate at which the value changes in direction of the trend is very high. So the erosion for the other side, that is in the case of put option, will be at a slower rate than the addition that happens, is it? Yes. Okay. Okay. मैं कह रहा था ये स्ट्रेटजी को भी एक बार स्ट्रेटजी बिल्डर पे देखा जाए 2 मिनट में। हाँ, सेम ही यार ग्राफ बनता है, पे ऑफ ग्राफ आपका एग्जैक्टली सेम बनता है। Actually, Ashutosh, you were saying something, then somebody interrupted. You said you were saying you prefer this or that one. I prefer this, the one which I just showed, the credit strategy. Okay. 10 minutes, I'll be back. Okay. चलो भाई, मुझे रैप अप करना है 10 मिनट में, ठीक है। एनीवेज, या स्ट्रेटजी बिल्डर पे खुद बिल्ड करना अब ये सब आप लोग, ठीक है, और ये सब करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी बिल्डर का यूज हम करेंगे मेनली एडवांस में, बिकॉज जब मैं आपको कुछ हेजिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा, यहाँ पे अभी थ्योरी सीख लो कब कौन सा यूज होता है। ओके, एनीवे, सो ये हो गया आपका बुल कॉल स्प्रेड, ये हो गया बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। ये नाम मैंने गलत लिख दिया, ये कॉल बैक स्प्रेड होता है। नहीं दिख रही सर। क्या पीपीटी नहीं दिख रही? नहीं सर, वो ब्राउजर के साइड पे हम लोग बताना अभी अभी दिखे। अभी जीरो दा ही दिख रहा है। अच्छा, अभी जीरोदा ही दिख रहा है क्या? हाँ। अभी वाइट स्क्रीन दिख रही है? यप। यस। ओके, चलो बढ़िया। तो ये देखो, ये थोड़ा मैंने नाम गलत लिखा है, ये कॉल बैक स्प्रेड होता है, या कॉपी पेस्ट करते समय वही हो गया। ठीक है, कॉल बैक स्प्रेड की अब कंडीशन क्या होती है? कॉल बैक स्प्रेड हम तब यूज करते हैं जब मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, ठीक है। जब हम एक्सट्रीमली बुलिश होंगे तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये क्या बोलेंगे सेल, हम क्या करते हैं इसमें कि 2 आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत बुलिश हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप वेरी स्विफ्टली, तो वी नो that this out of money soon become ATM and then ITM, so its value will increase because Vega and Delta will play in our favor. Okay, so that's why what we do when we are very extremely bullish, mainly जैसे ब्रेकआउट एंड ऑल है, तो हम उस समय ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। हम 2 आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, 1 इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं, ठीक है। 1 इन द मनी जस्ट सेल क्यों करते हैं? जस्ट इन केस ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आने लगे, तो इन द मनी में सबसे ज्यादा प्रीमियम है, राइट। सबसे ज्यादा आपका जैसे ही वो ITM से ATM बनने लगेगा, OTM बनने लगेगा,
उसका थीटा गामा वीगा तीनों आपके फेवर में एक्ट करेंगे, ओके, एंड यू विल हेल्प प्रिजर्व सम लॉसेस। सो इस केस में हम 2 आउट ऑफ मनी खरीदते हैं और 1 इन द मनी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये सेल कर रहे हो आईटीएम, ठीक है, इसका जो कॉस्ट है, ठीक है, इन दोनों के कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये नेट क्रेडिट बनाना है हमें इसमें, तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या इसका मतलब, वो आप बताना आपको। ते सगळं अवघड आहे एकंदरीत काम. So please share your screen. Yeah. Now see what I'm trying. So if I'm extremely bullish, okay, so what I'll do, I know that my this 15950 call can soon become in the money or at the money because I'm extremely bullish. So in that case, I'll buy this 2 lots. Okay, 2 lots I'll buy this, and 1 lot I'll sell in the money option, call option. Now in the money, I have to choose such that the cost of, to see if I'll buy 2 lots, how much it will be, 31 62 rupees, right? Yep. So I have to sell that call option which is more than 62. Okay, so this is perfect. See this, if I sell this one 15,800 in the money call option, let's see how much is this. See, this is 91, perfect. So if I sell 1 lot of this and buy 2 lot of this, I am actually financing my buying by this money only. When I sell this, Jiroda gives me 91 rupees, right? And I spend 62 rupees in buying 2. So I am, Jiroda in net, I am getting 30 rupees more. So this is also a net credit strategy. I am fine here. You are financing your out of money call option by selling 1 in the money call. So that is important. The better, the more this, the better. But obviously you should not also sell very deep in the money option, because if it will become very deep in the money, then it cannot ever become out of money or at the money, so you will not have that benefit. So try to find a balance between the in the money and the out of money in the way that, and that we'll learn in more detail in the advanced class. But theory wise, just keep in mind that the cost of financing your out of money should come from in the money selling. Okay, so in the money selling option, the cost should be more than how much you are putting in buying the out of money. That's the basic of this strategy. Okay, सर क्रेडिट स्ट्रैटेजी जो होती है वो डेबिट से ज्यादा अच्छी क्यों होती है, पर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज आपको उसमें थीटा का फायदा मिलता है, राइट, टाइम लॉस का फायदा मिलता है, इसलिए। ये स्ट्रेटजी bear strategy है क्या? No. This is also when it is bullish. Same things you can do for bear. I am only explaining here the bullish one. Okay, just ulta reverse you can do for the bear. You can do that. Read that from varsity. The rest of the thing. Okay, you'll understand. उसमें पुट ऑप्शंस के लिए करना पड़ेगा। Exactly. Instead of जैसे यहाँ पे buy 2 OTM कॉल किया था, बेरिश होंगे तो हम क्या करेंगे, बाय 2 OTM पुट ऑप्शन करेंगे, सेल 1 ITM पुट ऑप्शन करेंगे, राइट, जस्ट उल्टा कर देंगे अगर हम बेरिश होंगे तो। ओके, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ये कॉल बैक स्प्रेड बोलते हैं, बुल पुट स्प्रेड नहीं बोलते, गलती से कॉपी पेस्ट के समय सही नहीं किया मैंने। फिर आपका होता है बियर कॉल लैडर। हाँ मैं आता हूँ यार, दिख रहा है अभी? No. While sharing the screen, if you select screen, then whatever your screen may be, it will be visible to us. I have actually 2 screens on my laptop. No, that's the problem. Okay, all right. One Sorry. monitor, so I have to select 1 and 2. Anyway, so this is now beer call ladder. Beer call ladder very similar to your call back spread. जो इसके पहले वाला हमने सीखा था ना, देखो हमने इसके पहले वाले में क्या सीखा था। इसके पहले वाले में हमने 2, ये वाला नहीं, हाँ, कॉल बैक स्प्रेड में हमने क्या किया था, 2 आउट ऑफ मनी कॉल खरीदे थे, 1 इन द मनी कॉल सेल किया था, राइट। ये होता है कॉल बैक स्प्रेड। अब हम इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बियर कॉल लैडर में क्या करते हैं, 1 आउट ऑफ मनी खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ 2 आउट ऑफ मनी, 1 एट द मनी खरीदते हैं, और सेल वही सेम, सेल वाला सेम है, इन द मनी ऑप्शन सेल करते हैं,
एक आउट ऑफ मनी बस कॉल खरीदते हैं, और इंस्टेड ऑफ बाइंग 2 आउट ऑफ मनी हम एक एट द मनी कॉल खरीदते हैं। ठीक है, ये भी सेम होता है व्यू, जब हम एक्सट्रीमली बुलिश होते हैं तब करते हैं। और इसमें भी यही ध्यान रखना होता है कि ये आउट ऑफ मनी और एट द मनी का जो टोटल कॉस्ट है दैट शुड बी लेस देन योर इन द मनी। ठीक है, परसों किया था। हाँ, ये परसों किया था। ठीक है, तो इसमें भी यही ध्यान रखना होता है कि ये दोनों का जो मिला के कॉस्ट है वो इन द मनी से कम होना चाहिए। ठीक है, एंड ये भी कब करते हैं, जब हम एक्सट्रीमली बुलिश हों। गाइस जब ये सब थोड़ा आप लोग खुद भी पढ़ना, इम्प्लीमेंटेशन तो हम ऑब्वियसली एडवांस में सीखेंगे, बट गो ये भी एंड क्रेडिट है? हाँ, ये भी क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है ना, जब सेल कर रहे हैं उसका प्राइस ज्यादा है, जो सेल किया उसका प्राइस ज्यादा रहना चाहिए, एंड दैट शुड फाइनेंस द कॉस्ट। देखो लिखा भी मैंने, आईटीएम शुड फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एटीएम एंड ओटीएम, मतलब कंबाइंड कॉस्ट ऑफ बाइंग। तो अगर ये 30 रुपए हुआ, ये 20 रुपए होगा, से आईटीएम 20 रुपए का है, एटीएम 30 रुपए का है, सो दो आईटीएम है, दैट शुड बी 60 रुपीज। ओके, so you are getting 60 rupees and you are paying 50 rupees, so net 10 rupees you are getting back, right? So it should be at the end of the day, should be credit in your account. Okay, सर that इसमें is, एक ओटीएम को रिप्लेस करके फायदा क्या हुआ हमें? उसका फायदा ये हुआ कि मान लो से आपका व्यू तो बुलिश था, ठीक है, लेकिन आपका ओटीएम ही रह गया। से फॉर एग्जांपल 15,800 अभी निफ्टी चल रहा है, मैंने 16,200 के दोनों ओटीएम बाय किए थे पिछले वाली स्ट्रेटजी में, से 16,100 तक जाके ही वापस आ गया, राइट? सो आपका जो ओटीएम है वो तुरंत लूज भी करना शुरू कर देगा, प्राइस उतना है, या इनफैक्ट जो आपका ओटीएम है उसमें प्राइस गेन भी कब होगा, जब ये 15,800 से हमारा निफ्टी 16,000 के आसपास थोड़ा पहुंचेगा, तब जाके तो वो उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस दिखेगा प्राइस में। एटीएम खरीदने का फायदा क्या होता है कि तुरंत थोड़ा से भी मूवमेंट में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, राइट? क्योंकि तुरंत एटीएम आईटीएम बन जाता है जैसे ही थोड़ा भी मूवमेंट हुआ। सो दैट्स द बेनिफिट। सो टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेल्टा यू बाय वन एटीएम हियर, बिकॉज जब तुम ओटीएम बाय करते हो डेल्टा का इफेक्ट आपको बहुत बाद दिखता है, क्योंकि डेल्टा ओटीएम का तो कितना है, 0 to 20%। ठीक है, ओटीएम में आपको डेल्टा का इम्पैक्ट ही तब दिखेगा जब वो एटीएम बनेगा, राइट? सो पहले ही आप एटीएम खरीदे तो उससे आपको फायदा क्या होता है कि जैसे ही आपने एटीएम पहले खरीद लिया, वो एटीएम जल्दी ही आईटीएम बन जाता है, आपको डेल्टा का जल्दी फायदा मिलता है। ओटीएम में आपको डेल्टा का फायदा दिखने में टाइम ज्यादा लगता है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई वी डू दिस वन स्ट्रेटजी। मेरे को ये ज्यादा पसंद है। What if we make the strategy ki buy? One by What one, if we make the strategy buy 2 OTM call option and then sell, but it also at the end of the day it's a credit strategy? Come again? मतलब instead of OTM and ATM दोनों ही अगर ATM खरीद ले call option and एक ITM sell कर दे, but at the end of the day it's a credit strategy, then immediately दोनों ATM. No, so you will never find something, you will have to sell very deep in the money because ATMs also have a good premium value. Right. So to see that two ATMs and find one ITM which has value higher than 2 ATMs, it will be very difficult for you. You will have to go very deep in the money, and if it is very deep, say 15,800 पे निफ्टी है, okay, और आपने 15,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया, अब एक दिन में 300 पॉइंट निफ्टी गिरने वाली नहीं है ना, राइट? सो अगर वो गिरना शुरू करी तो आपको मैक्स फायदा किस चीज का मिलेगा? सिर्फ आपको डेल्टा का वीगा का फायदा मिलेगा, थीटा का तो मिलेगा नहीं ज्यादा, राइट? जबकि आपके एटीएम में यू विल बी लूजिंग ऑल ऑफ 3, डेल्टा, वीगा, थीटा। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट्स नॉट एडवाइजेबल। सर रिवॉर्ड जो होता है वो ओटीएम कितना दूर लेना होगा? ओटीएम वही डिपेंड करता है ना आप कितने बुलिश हो। अब आपको लगता है कि एक ही दिन में 1000 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो आप ले लो आराम से 800 पॉइंट दूर। अगर आपको लगता है कि बुलिशनेस इज डिपेंडिंग ऑन, सी ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच बुलिश यू आर, राइट? डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली वी आर टेकिंग दीस ट्रेड्स। So if I'm like moderately bullish, I'll take 50 to 100 point. So accordingly, depending on how bullish you are. First, you have to have a view of market, guys. Then only you can do any of this. Correct. Okay. So at the time of target, we are expecting the longer OTM time to frame as well. Yeah, it works on any time frame. All of these strategies I do for monthly. All of this, many of this I do, and that I'll teach in advance. I'll teach you guys 2-3 monthly strategies which you can do every month to make 4%, 5% easily every month with no risk almost. And how to figure out the view of the market, that also will cover the Yeah, obviously all of that will cover. So right now we are covering the theory part, and all the implementation will cover in advance.
And Yeah. at what level do we fix the stop loss for For this? only Nifty or for others also? Stop loss here you decide based on the price action of that trade. Okay. And these are limited risk strategies. See, the risk is limited. So when you take these strategies, you forget about stop loss. You already know. You take this strategy when you know that my loss is 5,000. Only if you're okay with 5,000 loss, you take the trade. Okay. Wonderful. Asutosh, one question I have. These all strategies works on only Nifty or for other It stocks? works on everything. Okay. Every for stock, the every practice index, every commodity, every forex, everywhere it works. Now this is synthetic long. Synthetic long क्यों करना होता है अगर आपके पास futures खरीदने का पैसा नहीं है? Okay, so you use options to behave and you use options in a way कि वो futures की तरह behave करे. इसमें बस करना क्या होता है कि जैसे आपको market में आपको लग रहा है ऊपर जाएगा market, futures का आपके पास margin नहीं है, ठीक है, कम है. So what you do? You buy one out of at the money call, you sell one at the money put. उसका exactly फ्यूचर्स की तरीके का ग्राफ हो. अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड मार्केट ऊपर जाएगा आपको पैसा मिलेगा, नीचे जाएगा लॉस होगा. ठीक है, तो इसका मेनली यूज तभी करते हैं व्हेन योर मार्जिन इज लेस. ओके, और से आपका अब जैसे एक लॉट कोई भी स्टॉक का अगर आप फ्यूचर खरीदो, मोस्टली टेक कॉस्ट यू अराउंड 5 लाख to 7 lakh for any stock. If you want to just mimic the future, you can just buy one at the money call option, sell one at the money put option. It will cost you around 1.5 lakh. So you can buy actually 5 lots of the same stock in the same amount of money. So that's the use of this particular strategy. But obviously this strategy also you should know that this is an unlimited risk and unlimited reward strategy. Okay. Hello guys, that's it. Done for the day. This intermediate class is over. लास्ट स्ट्रेटेजी में दोनों तो ट्रेड एक ही डायरेक्शन में थे, तो वहां पे मार्जिन ज्यादा क्यों हुए? दोनों कहाँ ट्रेड सेल किया था ना तुमने इन द मनी कॉल ऑप्शन. पुट सेल किया था. पुट सेल किया मतलब हमारा भी ऊपर की तरफ था, कॉल बाय किया तो वो भी ऊपर की तरफ है. कॉल सेल किया था, पुट कहाँ सेल किया था? कहाँ देख रहे हो भाई? सर पुट लिखा है, वो गलती से लिख गया होगा. फिर कॉल लिखा है यार, कहाँ लिखा है मैंने? नहीं सिंथेटिक लॉन्ग स्टॉक में देखो ना. अच्छा ये लॉन्ग में, हाँ तो ये तो वही है ना डायरेक्शनल स्ट्रेटजी. इसमें तो इसलिए हेजिंग नहीं है. ये फ्यूचर्स आप खरीदते हो, क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, नीचे आता है लॉस होता है. सेम नहीं राइट. मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे मार्जिन ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारा तो डायरेक्शनल मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें आपको. इसमें बस ऑप्शन क्योंकि प्रीमियम कम होता है ना. एक ऑप्शन सेल करने में आपको 1.5 लाख लगा, ठीक है. तो आपका अब देखो फॉर एग्जांपल एट द मनी पुट ऑप्शन आपने सेल किया 1.5 लाख रुपए लगा. एक एट द मनी कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, मान लो से 50,000, 2 लाख रुपए ही तो लगे आपके ना. जबकि सेम अगर आप फ्यूचर्स खरीदने जाते तो आपको 5 लाख लगते हैं. ओके okay, so that's the benefit of this you use only to reduce your cost of buying a future. Instead of buying a future, you go and do this. That's the only use of this. ठीक है, got it guys? Okay. Yes sir. Okay sir, thank you. हो ही गया यार पूरा. अभी कुछ बचा है क्वेश्चंस? सर इसमें अगर हमें ऑप्शंस की प्रैक्टिस करनी हो, पेपर ट्रेडिंग करनी हो, तो उसके लिए कोई वेबसाइट, कोई ऐप अगर यार नियो स्टॉक्स है, यूज कर सकते हो. सेंसिबल यूज कर सकते हो.